तरह के बॉल नहीं करने चाहिए, आपको बाउंड्री ही लगेगी यहाँ पर। और वही देखिएगा, फुलर वन बॉल लेग स्टंप से बाहर, पेस का यूज़ किया और गाइड कर दिया उसको फाइन लेग की जानिब, और एक आराम से एक बाउंड्री हासिल की यहाँ पर। फ्री हिट था ये सलमान के लिए, और पूरा फ़ायदा उठाया, पूरा महसूस हो इससे। अली यूनुस और सलमान तशरीफ ला चुके हैं और बहुत जल्द ये माइक्रोफोन संभालेंगे। ऑफ साइड पर पेश के 1 रन का इजाफा हुआ, तो इस तरह 5 ओवरों का खेल मुकम्मल हुआ। फाटा 42 विकेटों के नुकसान पर। मेडल प्लीज, मेडल सर, मेडल जी जी, मेडल मेडल। लेग स्टंप कौन सा है, ये कौन सा? Few important men as far as sponsorship is concerned for this tournament. 40 for 2. 5-over chance. No, not to be. They've been steady. Fata region 41 for 2. We're into the 6th over. This is day number 4, match number 7. DMJ has been really good in the previous game. Just need to repeat the performance. Yeah, not quite the right throw. Could not quite keep the balance. A direct hit surely would have made a difference. But they must be very proud of the effort they put in the last game, DMJ. Up and over. But there is protection. Just one more run. Salman Butt, the former captain, alongside me. Salman, DMJ, they tied the game, the previous one. They've done a really good job. They must be proud of the effort they put in this tournament. Thank you, Mr. Ali Yunus. It's good afternoon to all the people watching this game. It has to be said that they have really done well. They have come out and played against sides who have players with a lot more exposure, some internationally exposed, and still they are putting up decent fight. And this is again good fielding at point. The pitch is good, but watching Fata players bat, a lot of their batting you can relate to proper slogging rather than actual batting. You watch the T20 World Cup being played parallel to this tournament, and on TV you watch teams today. A young boy, 18-year-old, scored 100 against New Zealand from Canada. Then there was Pathum Nissanka the other night against Australia playing a brilliant knock. Then you see the New Zealanders chasing now totals of 118, 15 overs. But actual cricket is being played. There is not an element, not an iota of slogging when they approach. And this is something that needs to be taught to the youngsters at an earlier age. Batting should be defined as the art of scoring runs with minimum risk and maximum output. And a good batter, how you differentiate him with an excellent batter is that he is able to score off good balls without getting out. So this has to be explained well, and the meaning needs to be understood. Once again, down the ground, use of the feet, just one bounce and into the fence for 4. Rehan, this is how he plays. 14 of 12. There's 2 wickets that have fallen, and then there have been occasions where the ball has been hit in the air. It's just been trying to smack it out of the park without being in the correct position, without notifying that the ball was either it was there to hit or not. It's just a kind of predetermined mindset that is so visible. Absolutely, you make an excellent point. When you use the term slogger, that has to be
that he has to play at number 6 or 7. You cannot have a slogger at top 5 batters. They need to be proper batters. We'll get back to the discussion. 6 over done. 48 for 2. कप्तान सेम जगह पे जाऊंगा हां मैं पॉइंट पे नहीं जाओ जाओ अली को इधर करो यार अली को इधर अली इधर आओ फरहान बाहर जाओगे अली इधर आओ आप भी बाहर जाओगे हेलो Yeah, the signal from Irfan Haider indicates 6 overs are done. The power play is gone. Fatah has done good. They've scored 48 runs. They've lost 2 wickets though, but there has been no change in intent. Both Rehan and Salman, they're looking to be positive, looking to score runs. Coming down the track on lots of occasions. DMJ on the other end, they'll be relatively happy getting a couple of wickets. And that too of good batters, Naeem and Server. Yeah, coming back to the same discussion, Salman had made a great point about the technical aspect of the game, about the mindset that new batters that they're developing in them, thinking like sloggers, that needs to change. And when we say slogger, that has to be an all-round term. But if you're an all-rounder, then you can be a slogger, but not a proper batter, Salman. I mean, there is nobody denying the modern madness in the game that everything has come, you know, a level up in terms of scoring rates, in terms of that is chopped onto the stumps, trying to be cute, and the inside edge has just gone onto the stumps. This is unlucky for Salman. It was a slower one. Credit to the bowler. The ball did actually off the surface just turn a bit. We haven't seen the spinners turn on it as yet, the games that were played yesterday, but the fast bowler has been able to extract just that bit of turn. He's just bowled an off-cutter. Just have a look at his hands. Yeah, and it does come back. And that was enough to get the inside edge and onto the stump. Salman Khan gone for 8. Fatah 49 for 3. Khushdil Shah played a beautiful inning in the previous game, single-handedly took the game away. 94 runs or 57 deliveries he scored in the previous game. Shows that he's in good touch because he's here, because Shahid has bowled a beautiful delivery. A great one, his second wicket of his spell. He's into his second over. Yeah, just rolling his fingers on the ball. The length also very good. He wanted to guide it towards third, but not to be an inside edge. An opportunity missed for young Salman, and jubilation, and why not? They're a proud team with excellent shirt color. I just love it. I have to say it. Yeah, wide called. Yeah, you got to keep your excitement a little low as they bring up their 50. Fatah, because they've done a good job, DMJ. They've taken 3 wickets. Play proper cricket, basics, follow the basics. Yeah, that's a good call, Ali. That, okay, that you've done well. You have strong footing in the game to start with. 50 for 3 Fatah into the 7th over. But then you want to just stick to the basics and allow the batters to make a move. In excitement, don't lose the plot. Shot and pulled, but straight to fine leg. He'll be off the mark with this one. He's a very strong player of his legs. Favors the onside for his big strokes as well. And this is how the power play panned out. And this was beautifully bowled. And there was an appeal. Then there was a couple of shots. This was a big 6 by Naeem. He's
very good hitter down the ground. This was another one. And then was the way he got out, hitting it to mid-off. And then the next batsman came in. This one has been pulled. And the fielder does well. Restricts it to just one. Yeah, that's where DMJ has been better than the others, young sides. The fielding and the energy that they've shown, the attitude they have. They want to challenge big sides. They're a proud side. And the captain at the toss, he was very confident that they do want to put these senior teams under pressure. And they've done well. Hyderabad really struggled against them. Oh, chance. Oh, now that's a smart throw. Khushdil Shah was not expecting the throw to be coming at his end. Those expressions don't tell a good story. He's not sure, Ali. He's not sure whether he's made it or not. But this is good intensity from the pink team. Murad Jamali, with your favorite color on them. They're a bundle of energy. Decision is pending, and Fata would be very concerned because he's the man who bailed them out in the last game, scoring 90 plus and in very good time. 17 to Rehan. He's reasonably set. Khushdil has just walked in, and Fata would not like to be 52 for 4 here. And yeah, he's back. He's made it. So Fata can now breathe easy. But well done to the bowler. He switched onto the ball quickly and rocketing back the throw into the stumps. Wonderful cricket. He's surprised, rather shocked, Khushdil Shah, because it was Rihan Afridi on the other end struggling. He was halfway down on the pitch. And he was expecting the throw would be on his end, but he surprised him. Threw at his end. Yeah, that's why I love this team, Dera Murad Jamali. The energy they have. This is what happened. Just back on time. By the barest of margins, as Ian Smith would say. Yeah, not confident. Still finding it tough to middle at the moment. Khushdil Shah, 7 done, 52 for 3. Bairo. Bas. Fahad Hussain, the slow left arm orthodox. Some spin being brought into the action. Captain bringing himself on. Chalo. Yeah. Ek Flights it and throws it up to see if there's a bit of turn or not. Nothing of mention on this delivery. Shabba Fadi. It's played through point region for 1. Middle. Right, Fatah is one of the teams to look for in this tournament. They've got plenty of talent. They've got plenty of exposure and the experience behind them. And they've got a very good coach also. Riaz Afridi, the former international cricketer, former fast bowler. He's here with us. I'd like to talk to him. Riaz bhai, ki aapko hamari awaaz aa rahi hai?
हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब बिल्कुल खैरियत से। आप खुश होंगे इस टीम की परफॉर्मेंस से कि जिस तरीके से पहला मैच आप जीते हैं? हाँ, बिल्कुल हर कोई जो मैच जीतता है खुशी होती है और बड़ा अच्छा मैच हुआ है हमारा क्योंकि स्पेशली मैं खुशदिशाल की बात करूँगा जो एक्सीलेंट करे जो उसका टीम के लिए था उसने पूरा ज़िम्मा लिया और उसने ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। उसके बाद अगर आप देखें उसकी जो फील्डिंग थी ज़बरदस्त था और कैच ने सारा कुछ चेंज किया आई थिंक और उसके बाद जो मेरे बॉलर्स और फील्डिंग ने जो किया एक्सीलेंट। राज भाई, थोड़ा मैं आपकी से जानना चाहूंगा कि आप क्या सोच रहे हैं, ये जो नया बॉल इंट्रोड्यूस कराया है बीइंग अ फास्ट बॉलर पीसीबी की जानिब से, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि क्या अलग होगा स्ट्रक्चर में? देखिए अभी तो फर्स्ट टाइम T20 में यूज़ हो रहा है नॉट बैड और विकेट्स भी है और हाई स्कोर मैचेस भी हो रहे हैं। फिलहाल तो बड़ा ज़बरदस्त है। अभी आगे देखेंगे कि पूरा टूर्नामेंट इसमें कैसे चला जाता है लेकिन वेरी गुड बॉल है नॉट बैड। अस्सलाम वालेकुम रियाज, सलमान बात कर रहा हूँ। वालेकुम सलमान, क्या हाल है? ठीक हो? ठीक हो आप? अच्छा रियाज, आप यहाँ हेड कोच हैं फाटा में और पिछले कुछ सीज़न से आप इनके साथ काम कर रहे हैं। ये बताइए कि क्या वहाँ पर ऐसा स्पेशल हो रहा है केपी साइड में कि वहाँ से टैलेंट जो है वो काफ़ी सारा हमें नज़र आ रहा है, चाहे आप एज ग्रुप्स में देखिए चाहे आप ऊपर देखिए, तो बहुत सारे प्लेयर्स वहाँ से आ रहे हैं उनमें और ये बाकी जगहों में, क्योंकि अब आप क्रिकेट टीम के साथ साथ घूमते हैं, तो क्या एक्टिविटी का ऐसा फ़र्क है या जगहों में जिसकी वजह से ये फ़र्क आगे नज़र आ रहा है? देखिए सलमान, सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पे ज़्यादातर फाटा के जितने भी लोग हैं क्लोज टू पेशावर है। पहले केपी में मैं ओवरऑल केपी की बात करूँ, पहले केपी में ग्राउंड्स इतने नहीं होते थे, एक ही ग्राउंड था अरबाब नियाज स्टेडियम और जमखाना जो अभी चेंज हुआ इमरान खान स्टेडियम बना है। अभी हर जगह पे लोगों ने अपने उस हिसाब से अपने छोटे छोटे ग्राउंड में पहले टेनिस बॉल ज़्यादा कर लेकिन अभी उसी ग्राउंडों में क्रिकेट बॉल से खेलना शुरू कर दिया और काफ़ी टैलेंट आए क्योंकि देखिए जिस तरह वहाँ पे आप देख रहे हो जिस तरह चीज़ें चल रही हैं उस हिसाब से टैलेंट बहुत ज़बरदस्त है लेकिन हमारे लड़कों को ये था कि थोड़ा सा पॉलिश करना था और अब अल्हम्दुलिल्लाह पीसीबी का थैंक्स कि पीसीबी ने एक जो वहाँ पे कोचेज़ हर डिस्ट्रिक्ट में रखे हुए हैं वो भी सारे फर्स्ट क्लास या लेवल 2 क्रिकेटर्स हैं जो क्रिकेट को समझते हैं। तो इसलिए क्रिकेट की बहुत ज़्यादा बेहतरी हो रही है केपी में और आपको नज़र आ रहा है हर जगह पे टैलेंट केपी से। रियाज, आपके ख्याल में फ़र्क पड़ता है अगर कोच अच्छी क्रिकेट खेला हो और साथ उसने कोचिंग के कोर्सेज भी किए हों, उससे फ़र्क पड़ता है बच्चों की तरबियत में? देखिए सलमान बिल्कुल एक तो होता है प्रैक्टिकली जैसे हम क्रिकेट खेलते रहे और साथ में कोर्स करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो टेक्निकली होती हैं तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है बिहेव से फ़र्क पड़ता है कि बच्चे को कैसे बताना होता है कैसे सिखाना होता है तो आई थिंक बहुत फ़र्क पड़ता है स्पेशली इसका मैं तो कहूँगा कि फाटा में जितने भी मेरे साथ टीम है टीम वर्क है डिस्ट्रिक्ट के वो सारे माशाल्लाह एक ज़बरदस्त क्रिकेटर रह चुके हैं फर्स्ट क्लास और वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से सिखाते हैं। ये होता है कि आप कोर्सेज करो तो आपको तरीका आ जाता है कि बच्चे के साथ कैसे बात करनी होती है उसको कैसे सिखाना होता है तो क्रिकेट टॉक्स होती है वो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। कंडीशंस आपके मतलब की ज़्यादा है, आप भी फास्ट बॉलर थे, गेंद स्विंग हो रहा है, कैरी हो रहा है, तो कितने रन्स आपके ख्याल में यहाँ पर देखिए आपकी टीम सोचेगी करने का? बिल्कुल सलमान, देखिए मैं तो हर टाइम अपनी बिलीव करता हूँ क्योंकि हर जगह पे आप देखें तो आप जैसे अभी आपने बोला कि केपी में टैलेंट बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो फास्ट बॉलर है सीजन प्लेयर्स हैं और टैलेंटेड और अभी सीज़न में आउट करके आए तो कंडीशन भी बहुत ज़बरदस्त है विकेट भी उस तरह है बॉल भी चेंज हुआ है तो इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि हम टॉस जीतेंगे तो हम बैटिंग ही करें 160 देंगे इंशाल्लाह हम इसको कवर कर सकते हैं। अच्छा, एक और लास्ट क्वेश्चन आपसे मेरी तरफ से, वो ये है कि एक यंग फास्ट बॉलर को, लेट्स से कि वो टीनेजर है, 17-18 साल की उम्र में है या इससे आगे है, जी तो प्रैक्टिस में उसे आपके ख्याल में कितनी बॉलिंग करनी चाहिए? उसको डेली कितनी बॉलिंग उसकी होनी चाहिए? देखिए सलमान उस पर वर्कआउट ऐसे होनी चाहिए कि डेली आप उसको करा सकते हैं देखो जितनी रिपीटिशन होगी क्योंकि उसके मसल इतने स्ट्रांग नहीं होते आप उस पर बंडल नहीं डाल सकते आप उसको इस हिसाब से अगर मैं उसको आउट स्विंग सिखाऊंगा तो उसको कम अज़ कम 24 से 36 बॉल करनी चाहिए जो लर्निंग प्रोसेस होता है। अगर वो रेडी टू प्ले और अकेडमीज़ हुए और 3-4 महीने की अकेडमी तो रिपीटिशन से फिर उसका रिदम बन सकता है तो आई थिंक उसको नेट्स में से 4 से 6 ओवर करनी चाहिए। चलें रियाज भाई, आखिरी क्वेश्चन आपसे जाते जाते, पिछली बार टॉस पे आसिफ आफरीदी ने कहा था कि हम सिर्फ ये टूर्नामेंट नहीं, हम अगला सुपर 8 भी वी आर आइंग ऑन दैट, तो क्या यही इरादे हैं कि अब ये नहीं अगला भी जीतना चाहेंगे एज अ टीम? इंशाल्लाह इसी उम्मीद पे आए और यही लड़कों को मैं हर मीटिंग में कहता हूँ कि देखिए हम खेलने नहीं हम जीतने आए और इंशाल्लाह ये करके देंगे जिस तरह फाटा का एक
पूरे रीजन्स में एक वो प्योरिटी में नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि इस तरह जैसे हमने 4 डे में क्वालिफाई किया, फिर टॉप 5 में रहें, तो इस तरह मैं चाहता हूँ कि वाइट बॉल भी हम टॉप पे रहे। और केपी में जो टूर्नामेंट हो रहा है, तो मेरी ख्वाहिश है जो 2 टीमें केपी की गई है, तो तीसरी टीम भी उधर होनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रियाज हमसे बात करने का. Thank you so All the much. best for the game. Thank you. Yeah, that was Riaz Afridi, the coach of FATA. 328 first-class wickets. He's a good fast bowler of his time. Represented Pakistan in Test cricket. Now is coaching. But meanwhile, we were talking. We've seen 3 very good drives from Riaz Afridi. This one being the latest one through extra cover for 4. So they're just going on the merry waves, looking to win another game. 71 for 3. Fata at the moment. I like what the coach said. He said, we're not here to play. We're here to win. That sort of an attitude you want to put in your boys at this level. Always striving to win. 9 overs gone, 71 for 3. Captain has done well. His own performance is impressive. He's led the boys well. He's kept them active and on the toes. There is an opportunity. Opportunity taken. Khushdil Shah was struggling. He goes. Great celebrations from Fahad, the captain, because they know how big this wicket is for Dera Murad Jamali, and Mohammad Shahid taking a good smart catch under pressure. 9 overs done, 71 for 3. For 4 now, in fact. Latest one being Khushdil. Yeah, there is absolutely no problems with that ball. The ball's angle was taking it away. There isn't any turn available. Khushdil wanting to hit it straight. He would have been better off trying to hit it over extra cover. Because he tried to cut the angle, and he now has to depart because he wasn't able to do so. Gone for 2. Fata 71 for 4.
Right, these are the wickets. They've fallen. Naim being the biggest one, he was looking good. Salman chopped it on. And the latest one, Khushdil Shah, again looking to go towards the onside. And was in no position. Got stuck. And a very neat catch. Tera Murad Jamali is on a roll. They've taken 4 wickets. They must be very proud of this effort. Another wicket here for Sholi will put them in a driving seat. Sarwar Afridi, the captain, new man in. They'll have to do a bit of rebuilding from here on. Yeah, I'm a bit disappointed with Khushdil's way of getting out, and so with Mohammad Naeem as well. These two, Khushdil especially, is a very, very senior and established cricketer. And he's been on several occasions in the Pakistan side, played lots of international cricket and otherwise league cricket internationally. So you got to pick up the minds of top players and how they approach their batting innings. You have to just start to think like a batter. You just cannot come and think of yourself as somebody who's just going to have a bit of an impact and then leave the ground. And because all the youngsters look up to these seniors of the team. And Khushdil has that ability. He's scored many centuries. So he's somebody who, even in the last game, batted for 90 plus runs. And he was the main lead scorer who led the side to that total, and eventually they won the game. And for him to just come and go like this is something that you cannot or should not attribute to your senior batter. Yeah, sometimes I get a feeling it takes the team to be in trouble to switch on Khushdil Shah. Good to see families here watching National T20. Good weather, good cricketers, great competition. Tera Murad Jamali is definitely giving them a hard time. Surely 76 for 4. बॉलिंग में तब्दीली और रसूल बख्श लेग ब्रेक गुगली. लाइन और लेंथ पे खासा ख्याल रखना होगा इनको, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ओवर पिच कर जाएं, अभी बैट्समैन के लिए आसानी होती है. अगर आप अपनी लेंथ को थोड़ा शॉर्ट कर दें तब भी पूरा मौका मिल जाता है बैट्समैन को. तो लाइन एंड लेंथ इज़ एवरीथिंग फॉर रसूल बख्श. देखते हैं कहाँ बॉल करेंगे सर्वर को. रेहान जो हैं वो एक सीनियर पार्टनर हैं और 30 रन बना चुके हैं. सूरत हाल गंभीर नहीं है लेकिन खुशाइंद भी नहीं है. 10 ओवर 3 गेंदें 79 रन, 100 के करीब रन होने चाहिए थे. ये फुल टॉस है, इससे भी इस्तेफादा नहीं किया और महज 1 रन का इजाफा होगा. तो बॉलर बाज़-औक़ात बड़े जेनरस हो जाते हैं, वो लंबी फ्लाइट देते हैं, फुल टॉस भी कर देते हैं, लेकिन इसका इन्हिसार पर बैटर पर होता है किस तरीके से वो रन्स में तेज़ी से इजाफा करने की कोशिश करते हैं. ये जिसे कहते हैं काफ़ी लंबी फ्लाइट थी रसूल की, और जो लेग स्पिनर होते हैं इनके खिलाफ आप कदमों का इस्तेमाल कर सकते हैं. यहाँ पर कोई ऐसी वेशियस स्पिन नहीं है लेकिन बहुत ईजी ट्रैक भी नहीं है. इस बार ये बेहतर पोजीशन थी. मैं इस अमर की और इस जुस्तजू की
और इस कोशिश की अहमियत पर जोर देता हूं। जैसे ही देखा गेंद शॉट है, बड़े अच्छी तरीके से पीछे आया और जोरदार तरीके से एक जन्नाटेदार पुल की रेहान ने और शानदार अंदाज से गेंद को पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन के ऊपर से बाहर। ग्यारह ओवर के अख्ताम पर फाटा 86 पर 4। गेंद को तलाश भी करना होता है और ये जिम्मेदारी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेहनती और फर्स्ट क्लास ग्राउंड स्टाफ की है। बड़ी जल्दी से गेंद को हासिल कर लेते हैं और हर स्टेडियम की तरह गद्दाफी स्टेडियम में भी काट कबाड़ है, वहाँ पर गेंद गुम हो जाती है, लेकिन ये सब जानते हैं, तलाश कर लाते हैं, कर लाते हैं गेंद को बड़ी जल्दी। इस गेंद को जोरदार तरीके से खेला, ऑन साइड पर पुश किया और पावरफुल पुश थी और 2 रन हो जाने चाहिए थे और हो गए हैं। यहाँ पर सर्वर के बारे में अगर अब तक जो देखा है, ये मुतहर्रिक हैं और तेज़ दौड़ते भी हैं, बड़े कीन क्रिकेटर दिखाई देते हैं, अच्छी पुल है। गेंद ज़्यादा शॉर्ट नहीं थी, 1 रन बनाया, 1 रन ही का इजाफा होगा। तो रेहान 40 पर हैं, सर्वर 12 पर हैं, ये रफाकत जो है हम हो सकती है। अभी जो छक्का लगा है, इससे कोई तहरीक मिली है फाटा के बैटर्स को। 11 ओवर 2 गेंदें, 88 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। मिस फील्डिंग यहाँ पर जाहिर है कि ये एक बड़ा टूर्नामेंट है, ये वो फैमिली हैं, बच्चे हैं और उनको मैच दिखाया जा रहा है। ये वालिदैन की शदीद जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी ये भी है कि आप बच्चों को तफरीह के मेयारी मौके फराहम करें। गद्दाफी स्टेडियम से अच्छी जगह कोई हो नहीं सकती, वसी और ही शानदार और पुरशको मनाजर हैं, अच्छे स्टैंड्स हैं। यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि पीसीबी के यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर इसने डेवलप किया है, इसमें बड़े हाइजीनिकली क्लीन वॉशरूम्स आर देयर बिसाइड, ब्यूटीफुल एम्बियंस है। स्टैंड्स जो हैं वो ऐसे हैं जो कि अब खेल का जो वेन्यू है, जो मैदान है, इसके काफ़ी करीब हैं। 89 for 4 फाटा फहद गेंद करेंगे। तो जो क्रिकेट मैचेस के दौरान सनसनीखेज लम्हात हैं वो तो हम आपको दिखाते रहते हैं, रिप्लेस भी दिखाते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखाते हैं, डाटा आपके सामने पेश करते हैं। इसके साथ साथ आपको इर्द गिर्द के मनाजर भी दिखाए जाते हैं। ड्रोन इस सिलसिले में एक अहम किरदार अदा करता है, ये मैदान के चारों तरफ से अक्कासी करने के साथ साथ आपको गद्दाफी स्टेडियम के इर्द गिर्द जो इमारत हैं उनकी भी सैर कराता है। तो इस तरह ये राजा इंक्लोयर है, राजा मीन वसीम राजा एंड रमीज राजा। तो इस तरह 12 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ, फाटा 90 4 विकेटों के नुकसान पर। रसूल बख्श जारी रखेंगे अपनी गेंदबाजी को। पहला ओवर कुछ खास अच्छा नहीं रहा था, आखिरी बॉल पर रिलायंस को शॉर्ट कर दिया था और एक बहुत ही जबरदस्त 6 रन के लिए भेज दिया था सर्वर ने। अच्छी गेंद, लेकिन इसको पिछले कदम पर पुश किया है, ऑन साइड पर 1 रन का इजाफा। यहाँ पे जो क्रिकेटर हैं वो अपनी एनर्जी को महफूज रखते हैं, कंजर्व रखते हैं, बिला वजह तेज दौड़ते नहीं। और जब ये अंदाज़ा हो जाए कि सिर्फ 1 रन बनना है, फिर चहलकदमी के अंदाज में ये फ्रीजर सर अंजाम देते हैं सिंगल का। बेहतरीन गेंद मिडल और ऑफ स्टंप पर। तो जो मनाजर का मैं जिक्र कर रहा था उसमें इम्तियाज़ अहमद, ग्रेट क्रिकेटर, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, ही वाज जेंटलमैन क्रिकेटर और अपनी ज़िंदगी की आखिरी तकरीब उन्होंने यहीं पर
उसमें शिरकत की थी जब ऑस्ट्रेलियन सर्विसेज की टीम आई थी। इस गेंद को जोरदार तरीके से खेला है ऑन साइड पर और गेंद जाएगी 6 रन के लिए बाहर। बड़ा जबरदस्त छक्का। और ये मैं जो एंटिसिपेशन है, जो बर वक्त दाग बेल डालना है फॉर अ बिग बिग हिट, तो सर्वर ने ऐसे ही किया, पिछले कदम पर आए और शॉर्ट गेंद को एक नादर मौका जानते हुए, परखते हुए एक ऊंचा स्ट्रोक खेला 6 रन के लिए। और ये देखिएगा एक मरतबा फिर वही लेंथ, वही बॉलर, वही बैटर, वही शॉट और वही नताइज। 6 रन के लिए खेल दिया सर्वर ने और दूसरी मरतबा लेंथ शॉट की दूसरी मरतबा खामियाजा भुगता इसका रसूल बख्श ने। तो सर्वर ने ये पुल शॉट किया और इसमें जो इम्तियाज अहमद क्रिएट जिनकी अभी आपके इंक्लोजर की तस्वीर आपने देखी, उनको यदुल्ला हासिल था पुल और हुक पर। ये पुरानी शॉट्स हैं, इसके को 14 तरीके से कट किया और एक और चौका। तो इस तरह सर्वर का जो बल्ला है वो रन उगलता हुआ, चक्के के बाद ये एक शानदार बाउंड्री, स्कोर बढ़ता हुआ अब 100 से तजावज कर चुका है 102 4 विकेटों के नुकसान पर। बड़ा अच्छा टाइम किया हुआ ये स्ट्रोक, पलक झपकते ही बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर गया चौके के लिए। यह सरवर अफरीदी कप्तान है और आज कप्तानी की जिम्मेदारियां निभाते हुए रूम बनाया, बड़ा जबरदस्त कट किया, एक बार तो फिर पुल कर दिया है सरवर अफरीदी ने। नताइज वही होंगे जिसका हमने जिक्र किया आपसे। एक और 6 रन। सूरत हाल अच्छी नहीं रसूल बख्श की। 6 रन से एंड किया इस ओवर को। महंगा ओवर था। 13 ओवर के अख्ताम पर फाटा 108 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। ये बुलंद बाला इमारतें हैं। लाहौर एक अब तरक्की याफ्ता शहर दिखाई देता है और इससे बेहतर कोई तस्वीर हो नहीं सकती। जो मॉडर्न डे क्रिकेट है, इसके आप लाइट टावर्स देख रहे हैं, पस मंजर में आप ऊंची बुलंद बाला इमारतें देख रहे हैं। तो ये सब क्रिकेट ब्रॉडकास्ट के मरहून मिन्नत है। जो ड्रोन है और अब ये तलाश कर रहे हैं किस बदली के विषय छुप चुके हैं गेंद, अब वो तो इनको दिखाई नहीं दे रहा। और ऐसी जगह पर भी देख रहे हैं जहाँ पे एलिमेंट ऑफ अनएक्सपेक्टेड है कि गेंद वहाँ जा सकती है। इनकी तेज़ आंखें जो हैं वो ज़ाहिर है कि मुतलाशी है गेंद की, गेंद कहाँ है। और ये देखिए अब ये नई 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 तामीर शुदा जो सेक्रेटेरिएट है, जो पीसीबी का हेडक्वार्टर है, उसकी तस्वीर है आपके सामने। ये पूरा साइश है, वसी है, कुशादा है, खूबसूरत है। और ये ऊपर से आप सब इसकी मंजर अगर आप खुद भी देखें नेकेड आई से आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा। दाएं बाएं ऊपर से हर जगह से आपको इसकी सैर करवाई जा रही है, दिखाया जा रहा है कि गद्दाफी स्टेडियम की जो नई लुक है वो कैसी है। बड़ी शानदार है, पुरशको है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं। इसमें बड़ा ग्रेंजर है और इसमें ज़ाहिर है कि जो तज़ीज़ और आइश है उसका सिलसिला सारा साल जारी रहता है। ये कभी कंप्लीट नहीं होते। जो बड़े इदारों की इमारतें हैं या जो इवन घर भी होते हैं, इनमें सिलसिला इनकी तामीर नौ का जारी रहता है। ये पीसीबी का लोगो है, ऑफिशियल लोगो है, बड़ा खूबसूरत है और खिलाड़ियों के लिए और बोर्ड के लिए ये काबिल फ़ख्र निशान है। और इसको खिलाड़ी अपने सीने पे सजाना, और ये ज़ाहिर है वो शबी है जिस पर हम बजा तौर पर फ़ख्र कर सकते हैं। ये खिलाड़ी जो हैं, हमने जो शर्ट्स पहनी हुई हैं उस पर भी जा बजा ये लोगो मौजूद है और ये पाकिस्तान के क्रिकेट की पहचान है। आप देख सकते हैं कि फाटा ने 108 रन बना लिए हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। रेहान 42 रन पर नॉट आउट हैं अच्छी बैटिंग करते हुए, सीधे बल्ले के साथ ड्राइव। जो तेज़ बैटिंग उन्होंने की उससे उनको कुछ एतमाद हासिल हुआ है। फहद चेक करने आओ। चौथा ओवर कर रहे हैं। विकेट हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि प्रेसिड है, इसमें कुछ सपोर्ट बॉलर्स के लिए मौजूद है, ख़ासतौर पर पेसर्स के लिए। ज़बरदस्त कट है पॉइंट की जानिब और मिस फील्डिंग हुई। ऐसा नहीं होना चाहिए, बार बार ऐसा हो रहा है। और जो फील्डिंग कोच हैं ज़ाहिर है कि वो डेरा मुराद जमाली के, वो देख रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हम देखें शॉर्ट ऑफ लेंथ को ज़ोरदार तरीके से कट किया, ये अच्छी कट थी।
फील्डर आएंगे और पहली कोशिश में हस्बे रवायत जहाँ पे अब ये सिलसिला तसलसल से जारी है कि गेंद हाथ से निकलती है। अभी तो ज़ाहिर है कि ड्राई आउट फील्ड है, ड्यू या शबनम का फैक्टर नहीं है, कलाई का अच्छा इस्तेमाल है। ये काफ़ी आगे गेंद की रफ्तार और ज़ाहिर है कि फ्लाइट में और लेंथ में रद्दोबदल करते रहते हैं फहद। 13 ओवर 3 गेंदें 111 4 विकेट के नुकसान पर। ये हौसला अफजा पोजीशन है फाटा की। फहद सर्वर को गेंद करेंगे वाइड, ये क्विकर बंद था, थोड़ा सा अंदर आया जो आर्म के साथ और बैटर इसको फ्लिक नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी वाइड का एक रन हासिल हो चुका है फाटा को। फहद थोड़े से प्रेशर में है। ये बहुत बेहतर गेंद थी, एक रन बनाया है, एक रन ही का इजाफा। आज खुद गए हैं फहद गेंद के पीछे, पीछे बैकअप कर रहे थे मिड विकेट पर फील्डर, तो इस तरह एक रन का और इजाफा। तो स्ट्राइक जो है वो रोटेट हो रही है, एक डॉट बॉल इस ओवर में हो चुका है। इस मैच में डेरा मुराद जमाली की कमान संभाली है फाहद हुसैन ने, और आज इनकी बॉलिंग जो है वो काबिल दीद है। सिर्फ 17 रन देकर एक विकेट हासिल की, और ये देखिएगा ज़्यादा रूम नहीं दे रहे, बीच में तेज डिलीवरी भी करते हैं और लगातार वेरिएशंस हैं, जिसके बायस हम देख रहे हैं कि बेहतरीन फिगर्स हैं फाहद के आज। ऊंचा खेला ऑफ साइड पर, उस जगह पर जहां पर फील्डर को दूर से दौड़ के आना पड़ेगा। फील्डर आए, गेंद को फील्ड किया और सिर्फ एक रन का इजाफा हो। ये अच्छी कोशिश थी, बरपत गेंद को हासिल किया, थ्रो किया, तो इस तरह 14 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ। फाटा 114 4 विकेटों के नुकसान पर। ये क्रिकेट की वो अशरफिया है जिसने इस मैच का इंतज़ाम किया है। डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट अब्दुल्ला खुरम नियाजी, सैफ आजम साहब, ये सब यहाँ पर मौजूद थे। और ये गद्दाफी स्टेडियम का वसी और अरीज़ और जामे एक मंजर है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा जो ड्रोन है अंडर द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्टर, वो किस सम से आपको दिखाएगा इसका इंतखाब करना। ज़ाहिर है कि उसके लिए भी जो स्टोर हाउस ऑफ माइंड है उसमें तजर्बा होता है कि शायकीन क्या देखना चाहते हैं, टीवी व्यूअर्स क्या देखना चाहते हैं। ये सब कुछ आपके सामने। अब ये जो एक लाइट टावर है जो तादाद में 6 हैं आपके सामने थे। इस गेंद को पुल करने की कोशिश की, गेंद भले पर नहीं आए, या आई ये देखना होगा। विकेट कीपर बाहर रिसीव हुआ है। नासिर खान बॉलिंग में तब्दीली की गई है क्योंकि रसूल बख्श को काफ़ी रन्स मिल गए थे, तो अब नासिर खान को मैदान अमल में उतारा गया है डेरा मुराद जमाली के लिए। विकेट इस वक्त हासिल करना ही होगी, सरवर आफरीदी हो या रेहान हो, इस वक्त बड़े ही सेट हो चुके हैं विकेट के ऊपर। रेहान 47 पर, सरवर 31 पर, तो मौका है इनके पास, स्टेज सेट है। 180 185 रन बआसानी बनाए जा सकते हैं यहाँ पर। जो मैटर ऑफ कंसर्न है वो 8.07 की औसत है। अगर ये 7 वाले हिंसे में आ गई तो फिर थोड़ी काबिल तशवीश होगी। यहाँ से इनको उठा लेना होगी। अब 7.93 हो गई है जो इस वक्त करंट रन रेट है। जो इस वक्त मतलूबा रन रेट है वो तो मतलूबा तो नहीं है, लेकिन इसको जो इस वक्त होना चाहिए वो 9.5 10 का होना चाहिए। कवर्स की जानिब स्ट्राइक रोटेट हो गई जिसका इंतज़ार था, तो नासिर ने अच्छी बॉलिंग की है। ज़रा ये हवा नहीं देते गेंद को, जिसे एयर देने देते हैं। और ये वो क्रिकेट बोर्ड के क्यूरेटर हैं, ये इस इंतज़ार में हैं कि शायद इन्हें अंदर जाना पड़े। ये जो ऑटोमोबाइल है इसके ऊपर बैठे हुए हैं। तो आज कल जो ग्राउंड स्टाफ है, जो क्रिएटर हैं, वो मीट्रियोलॉजिस्ट भी होते हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट भी होती हैं, जियोलॉजिस्ट भी होते हैं, मीट्रियोलॉजिस्ट भी होते हैं। ये काफ़ी खूबियों के हामिल लोग होते हैं साइंस। और ये भी हंसते हुए, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, आप इनके चेहरों से देख सकते हैं, गर्मी हो सर्दी हो। मुबारक भी साथ बैठे हों, ये क्रिकेट बोर्ड के एक ऑफिशियल हैं और ग्राउंड स्टाफ आपके सामने है। पुल पूरे तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आई, सिर्फ एक रन का इजाफा होगा। तो इस तरह अब 15 ओवर का ख़ात्मा हो चुका है। फाटा 118 4 विकेटों के नुकसान पर।
Right, 118 for 4. Last 5 overs, 30 deliveries to come. The current run rate 7.87. It's a bit of a cameo from the captain himself, the stand-in captain, Sarwar Afridi, 33 of 20 deliveries. They needed an inning like that. And he bangs one down the ground, out of the ground for a huge hit. Sarwar Afridi is a very strong man, and when he hits, it stays hit. Not a very big man, but stockily built, and he backs a punch when he hits the ball. And this one was right in the slot. And he really dismissed this one from its presence and just put it into the stands behind the screen. Just have a look at this. The important thing was the head position, the eye locked on the ball. And this will earn him some runs as well. A possible boundary, but the fielder does well, slides and stops it. Should be 2 more. So Fata now in a very good position after an earlier setback when they were 60 odd for 3. And then Khoshdil came in and he went early. So they had a fair share of trouble, but thanks to Sarwar and Rehan, who are both now into their 40s. Rehan 2 short of his 50, Sarwar 9 short, but 22 balls for his 41. It's one thing rescuing, and the other part is doing it very quickly. 127 for 4, still 4 overs and 3 balls exactly to go. If they can get a 50 more, they'll have a wonderful total. And with their bowling, with their paces in this condition, they will be a handful. That will be a boundary. And 50 to Rehan Afridi. His third 50 at this level. A very timely 50 for his team. When wickets were falling on the other end, he was the one glued to one end and has done a remarkable job scoring his 50. 52 not out at the moment of 40 deliveries. But the job is not done. He's got more strokes to play, more quick runs to play. Yeah, off-cutter, misdirected onto the legs and very well placed by Rehan, who has moved to 52 with this boundary. Once again, with the angle on the middle stump. This time, just 1. So the good thing Rehan has done that since the arrival of Sarwar Afridi, he's just played the second fiddle. And that is how you build up partnerships. That is being intelligent at the crease. Not getting in a competition with your own teammate. And this is how you build partnerships and you take your teams out of trouble. Already 14 of the over. Once again, beautifully weighted on a slow one. And in the end, just a deft touch. Good enough to place it in the gap. Another boundary. 18 of the over. A big one. 16th over gone. 136 for 4, Fata. Yeah, this camp will be a calm camp at the moment now. You can see Asif Afridi also not playing this game. He had a niggle. Sameen Gul in the background also. He would have liked bowling on this surface, Salman. He's a good swing bowler, as you said. Yeah, he is. The last game he played for Gunning Glass in President's Trophy, he picked up a 5-fer. And talk about swing bowlers, he definitely can swing the ball. Wide of the crease, angling the ball in, and like we expected, no turn. It's a long distance throw, so you can probably run one in the throw always.
It's a great combination of these two, Rehan and Sarwar Afridi. Rehan, as you said in the previous over, is playing a role of a side hero. Just giving the strike back to Sarwar Afridi, who likes to go big, who's strong enough and can hit them long. So that's a good combination to have. It would be interesting to see how many more they can get. If he stays on, Sarwar Afridi, we know what he's capable of. There will be many runs. Edgy. He will take it. Everything working for Sarwar Afridi as he brings up his 50 also. A very good, positive, attacking, full of intent 50 from Sarwar Afridi. Yeah, wonderfully played, striking at 200. And it's the fastest 50 of the tournament of this ABS National T20 qualifiers. 50 of 25, exactly 200 the strike rate. And the captain has done it for his team when most required. And launches this one, but straight to the fielder. Single at the speed of a rocket. Salman, that's the difference between the sides, the young sides. When they had things in control, they could not quite hang on to them. This is where the learning is from teams like DMJ. How to get control, how to keep the control rather. Yeah, it will come with time. When Fatah in their early days, they've also been through the same situations. Now that the players have matured, plenty of experience. Oh, this ball stayed down and was pulled away for one. End of 17 overs, 146 for 4 Fatah. Yeah, those towers after 10th over, certainly going towards Fatah region. And if these two stay, Sarwar Afridi in particular, you'll see a lot more those skyscrapers there. As the captain of DMJ goes back to his premier fast bowler Salim, who's bowled well in both the games that he has played. It's still swinging. It's very heartening. The ball is doing a bit into the 17th over also after 17 overs. Inside edge, 77-run partnership now between these two of 48 deliveries. This may turn out to be a match-winning partnership. This is what is happening. The ball, earlier we saw these pictures. Khurram Niazi, the head of domestic cricket, he was just showing the balls to other sponsors or the other stakeholders because he's very excited about it, because this is the first time that PCB has introduced their own ball which is being used, which is a good step. It's just a trial basis on this tournament. This is a good Yorker. Although a very small sample size, Salman, but so far we're into the 7th game. He's been hurt. Well, I'll come back to that. This can surely hurt this Yorker length on his toe. Remember, he's a wicket keeper. He has a job to do again after this inning. Yeah, it can be very nasty.
very painful. Hopefully there is just a little bit of pain, and with the magic spray things will work out. Just have a look at this. It was off the bat actually, and it must have hit on the side, which at the time of impact you can be, under a lot of pain. Yeah, there is the magic spray. As the doctor will treat him, he'll make sure that the boy is up and running, because the team is just about ready to launch. 149 and 2.4 overs to go. And this is Sarwar, and how he panned out in the time that he has spent. Those big sixes, anything short, he was very square on, cutting the ball, pulling the ball off the back foot, and a strong player. Whenever he hits, the ball stays hit. Yeah, and the most impressive part was how quickly he checks the length of the ball. His footwork is very, very good. He understands where the ball is pitched, and then he adjusts his footwork accordingly. But he's been well supported by Rehan Afridi, who scored his 50, also third at this level. It took his time. Whenever given the opportunity, he's pounced on that and scored runs, came down the track also. A very mature inning, nothing fancy about it, but still very effective from Rehan Afridi, well supported. And he's up again, on his feet, ready to roll. Hit hard, really hard for 4. This is how Sarwar Afridi plays. He brings up 150 for his team. Yeah, it was smashed to the cover boundary. Once again, looking to ball in the block hole and missing the length. And Sarwar Afridi opening up his front leg, glimpses of Abdul Razak's feet movement, and then smashing one through the covers. Bringing up 150 for his side. And this is in the arc and is hit right in the screws, and up she goes over the boundary. It's a boundary fest at the moment. 63 goes to of 30 deliveries only. Partnership 88 of 51. That's a glorious hit. Again, clearing his front leg, making his room for himself. Extension of the arm. Supported by the power he has. Have a look at this. Great balance also. Strong back. That is why it has gone so far. Yeah, he hasn't found the real middle of the bat. Fielder under it and takes it. Looking to get one more boundary out of this over. Sarwar Afridi. You really cannot blame him. He had to go big because that's how he plays. A very important catch. This can surely make a difference in where the inning finishes. No worries at this end. Again, wanted to go straight. The bat rolling in his hands. That's why he could not get the elevation. And a good catch taken by Ali. Salim gets a wicket. 63 runs of 31 deliveries for the captain, Sarwar Afridi. 159 for 5.
Swing. Very unlucky for Salim that a good delivery will find a boundary. You shouldn't be unhappy about it because it was beautifully bowled. Wasim gets an outside edge and gets a boundary. 18 gone, 163 for 5. It's wide. Yeah, I'm going to come back to the same point with Salman Butt, the former captain, which we had a discussion the previous over. The ball doing a little bit still. It's swinging around. The previous delivery we saw it was an in-swinging Yorker. Although a small sample size, we're into the day 4, 7th game. How you would rate the ball so far? Are you happy or satisfied with the condition? We'll come back to it. And this one is just pushed past the third. Awaits the fielder successfully. 4 more to the total, so it's raining boundaries. And now DMJ, they are conceding lots of runs towards the end. Talking about the ball, Ali, the ball has, kept well. It has maintained the shape. It's not very hard, something that the batters and the fielders don't, like if the ball stays very hard. So this ball has done well. It's not very hard, at least the one that I saw after the innings. And then I think it has a bit more lacquer than I would like. And it's a T20 game. It's the 19th over. And it is still, carrying a lot of lacquer. So it has to grow old at some point. Although these pitches are also grass covered, so they're not some abrasive surfaces as yet. Once we go to the bare pitches, then we shall know that how this ball behaves on those surfaces. Wide delivery once again, trying to bowl that wide Yorker. The fashion these days is to bowl wide Yorkers, have the deep point. There's the third behind on boundary, and there's the deep point back on the boundary. If we can see the field, and that is the reason why the bowler is trying to bowl wide Yorkers. And he also has a deep cover. So on the leg side, there's fine leg in the ring, square leg in the ring, mid wicket on the boundary, and mid on in the ring. And yeah, so he will not give a boundary of 1 ball, but he'll give 4 runs without bowling a legitimate ball. Now you need to be experienced enough, you've played enough cricket to execute a plan like this, because it surely can go against you, because you need a lot of control, you need a lot of accuracy bowling in that channel. Have a look at this. This is the third wide, because he's attempting that delivery outside the off stump, because the field is set accordingly. Deep third, deep point, deep cover, as you said, and long off in place, everyone on the offside. So that's there in the bowler's mind, that he needs to be there outside the off stump. There's the ball. Khurram Niazi still holding it, can't get over it. He's just loving it. And why not? He's tried doing something different. Yeah, he's working hard to save some money and to have his own product, which is the right way forward. I mean, spending like $250 on a kookaburra ball, by the time it gets to Pakistan, the shipping cost, the custom cost, and then you always have to wait for the shipments.
So why not have your own ball? And I think we should have 2 or 3 models of our own balls, hand stitch ones, machine stitch ones, something like a Kookaburra, something like a Duke. And then we can use them according to our requirements and wherever we want to. Even in test cricket, once you get to that standard, teams, every nation is allowed to use their own ball in a test match. India does it, so does England and Australia. So this is a good move, and with time they'll get to a point where they really have a good product in their hands. That's why not? Because we've always been that country that has made products, sports products especially. Swing and a miss outside the off stump. Finally he's getting it right, because the margin of error is so minimum for Ranullah that a meter towards the offside it will be called a wide. So it's all a learning for DMJ. At its very best, this is a defensive planning because you're not looking to pick up a wicket. So stopping the flow of runs with this plan is never going to be easy. There you go. This is smashed and this has gone through. This is the boundary. No, it's gone for 6. The umpire has raised his arms, and that hard flash by the batter has taken it distance. And we've seen that this new ball we just spoke about, it flies a lot. So it goes through the air and it covers more distance than the Kookaburra would. This is a flat one. Remember, it's a catch drop and then went out, but still anyway it could have crossed the line. Six. It's another one, this time wonderfully struck over extra. This is a great cricket shot, and Rehan is now making the most of the width that was provided according to this plan. Nothing wrong by the bowler. He bowled according to the plan given to him. Just a great cricket stroke that. Great use of the wrist and perfectly positioned, got the elevation required and got the distance. 184 for 5 after 19. .74 of 50 deliveries. Rehan Afridi has played a remarkable inning. As we come to the last over of this inning, 184 for 5. They're appealing for it. Umpire not interested, suggesting that the bat has touched the turf. That's what he said. Saqib Khan, the umpire. 184. At one point, we thought Dera Murad Jamali have done a good job. They took the early 4 wickets, but then that partnership between Rehan and Sarwar Afridi just taking the game away from them. Yeah, same plan. They've got a deep third, deep point in place. Sometimes you do get predictable as a bowler that the batter is expecting that you are going to bowl outside the off stump, like Rehan Afridi did in the previous over. Absolutely, Ali. With the field making it so obvious, how can a bowler then, if he has to take a chance otherwise, then he'll also be taking a chance to make his captain look like a fool. Because then in case you want to double bluff, there is no field for the bluff. If you get it wrong, it's going to be runs anyway.
This is where he looked to go the other way around, but this time there was a fielder down the mid wicket and where it went. But he didn't have any protection behind square or behind fine leg. It's okay that modern cricket does offer you such plans, but I think if you can bowl accurate Yorkers, there's far more likelihood of picking up a wicket and stopping the flow of runs. This is much better. Bowling Yorkers and bowling them closer to the stumps, aiming the stumps. Once again, we go back to the era where the 2Ws would clean up even the best of batters once they were with the old ball in the hand, and so perfect with the Yorkers they were. Even Umar Gul, he was outstanding with the Yorkers. In the age of T20 cricket, that's why I say Umar Gul, because he was at one time the leading wicket taker in the world in T20 circuit. This is brilliantly bowled, another Yorker within the stumps. So Umar Gul, at times towards the end of innings, he was unplayable for the best players in the world. Now we see slow ones and wide Yorkers. Lot of variety, but lot of runs being conceded. And it's been smashed and it goes over the fielder. So that wide Yorkers once again proving mighty costly. And it's gone to 194 with this 6. At the end of 20 overs, Fata would have taken that at the time of toss. Even after being into trouble, the batters Rehan 76 of 52 and earlier the captain Sarwar Afridi scoring a 200 plus strike rate have pulled their team across the line, and they have gotten a very good and a big total. 194 and 195 for DMJ to get. Yeah, 6 signalled, 194. They lost 5 wickets. DMJ would be very disappointed, especially with the last 10 overs that they bowled. They did relatively good job in the first 10 overs, but the last 10 overs costed them a lot of runs, courtesy Rehan Afridi and Sarwar Afridi. Both Afridis doing a great job. And now they have a job to do when they come out to bat. Dera Murad Jamali. Yeah, lots of talks been going around what they could have done better, what should have been done. They tried different tricks, tried different field positions. The match started with Fata winning the toss and batting first. They lost early wicket. Naeem looked really good, really threatening. He had some great hits down the ground, but one too many. Went straight to the fielder, Rehan Afridi on the end, quietly scoring runs, and wickets fell on the other end. Quaishal Shah went early, that was a big blow. Then came the mighty Sarwar Afridi and started hitting those big monstrous hits. When he hits, they're long, they're big. That's how he plays. Rehan quietly supported him for his 50. Then Sarwar Afridi lost his wicket, trying to go big one more time. But it was Rehan Afridi with that glorious hit over covers, and on the very last delivery, another 6 was hit from Fata. All right, let's head down to Mir Zishan. She's got a player interview lined up. This is ABS Developers T20 qualifiers, and I have Rehan Afridi with me, जिन्होंने अभी 76 रन्स किए हैं. रेहान, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब बहुत अच्छी इनिंग्स खेली हैं आपने. दूसरा, आपकी ये कंसेक्यूटिव अगर हम देखें तो 50s तो आपकी आ ही रही हैं, बट स्टिल इट वाज अ बिगर स्कोर, क्योंकि 90 इससे पहले आपका जो है वो हाईएस्ट स्कोर था. कैसा फील कर रहे हैं? इसमें सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा परफॉर्म हुआ. दूसरा है कि थोड़ा सा स्टार्ट में जो बॉल बल्ले पे नहीं आ रहा था, तो हमने थोड़ा टाइम ले लिया और उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह स्कोर हो गया टोटल.
चले ज़बरदस्त। दूसरा ये है कि आपने एंडिंग बड़ी अच्छी की है आज के, मतलब अपनी इनिंग्स की आपने लास्ट में भी मतलब काफ़ी एक हार्ड हिटिंग की तरफ जाने की कोशिश की है, तो कुछ प्रैक्टिस वगैरह मजीद कंटिन्यू कर रहे हैं आगे ताकि 100 भी आपकी हो जाए? बिल्कुल प्रैक्टिस तो रेगुलर कर रहे हैं हमारे हेड कोच और सनसेट कोच के साथ रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारा ये प्लान होता है कि एंड तक जाए और हम टोटल करें इंशाल्लाह। चले बस लास्ट क्वेश्चन, सर्वर के साथ पार्टनरशिप, वन वर्ड फॉर इट। बिल्कुल वो तो क्रूशियल पार्टनरशिप था, जिस तरह सवर आया तो उसको मैंने कहा कि थोड़ा सा टाइम ले लो, विकेट पे बॉल सही नहीं आ रहा, तो जैसे सेट हो गया तो उसके बाद माशाल्लाह रन हो गया और अच्छा टोटल हो गया। चले, थैंक यू Thank सो you, sir. मच। दिस वाज रेहान आफरीदी, ओवर टू द कॉम बॉक्स। Man of the moment, Rehan Afridi played a beautiful inning of 63 was Sarwar Afridi. He scored 76 runs not out. 21 runs were scored by Naeem. Farouk went without scoring. 8 runs for Salman. And in the end, Wasim got 13 as he hit last ball 6. 194 runs after losing 5 wickets. 118 runs came of the last 10 overs for Fatah region. That shows that Diramraj Jamali's bowling was all over the place in the last 10 overs. They did struggle getting wickets. 2 wickets for Salim, 2 wickets for Shahid, a wicket for Fahad. But that economy on the higher side almost from every bowler other than the captain himself. He was a ray of hope. 4 overs for just 18 runs and he got a wicket too. But still the bowlers gave away too many runs as Fatah posted 194 for the loss of 5 wickets in 20 overs with extras 11 towards them. Right time for the break. We'll come back with the run chase.
Right, we're all set for the run chase. Fatah has done a brilliant job batting first, winning the toss, boasting a king-size total. It's been brilliant. They did lose few wickets early on, but then they recovered. That's what good teams do, they recover. Courtesy Sarwar Afridi and Rehan Afridi scoring 50s, posting 194 runs to win. 88-run partnership between them, and when now DMJ need to score 195 at 9.75 runs per over. It's not gonna be easy because we know what Fatah's bowling is about. They've got pace, they've got aggression in them. But Sarwar Afridi, what a wonderful job he did. He hits them long. He's a very strong lad. He's got a very good footwork, realizes when to go back, and then he just bamboozles the bowling. That's the sort of batter he is. He's a good all-round cricketer. As the two umpires for the evening, Saqib Khan and Irfan Haider, making their way in for the run chase. Murad Jamali, they would be disappointed because first 10 overs they were very good, and then this just lost a little bit of way in the last 10, giving 118 runs in the last 10 overs. The Fatah boys, they're up and ready. They've got some venom, they've got some pace as far as their fast bowling is concerned. Afaq Afridi getting a fifer in the previous one. The boys in pink, they have nothing to lose, all to express, all to impress. Nobody's really expecting them to win, but what we are expecting is a fight. Just give them a little tough time, because Fatah, they've got the quality, they've got the pace, and it's the games like this which really tests you as a young team. So what you can bring out is what we are looking at. Not just me, but the former captain Salman Butt alongside me. Yeah, Ali, you don't spare me any time at all. And your favorite color is back in. It's pink all the way. Yeah, not just the color. I like this team also. Although the result have not gone their way in the previous one, but they really gave a hard time to Hyderabad. They lost in the super over. Imagine a young side giving a tough time to players like Sharjeel Khan. Shahnawaz Thani, I guess, plays for Larkana. So players like him, they really gave them a tough time. That's what I want to see from them in this game also. Keep fighting, keep hustling. One player maybe of caliber of Basit Ali, we've seen him before in Pakistan Junior League. He was very impressive back then. With him is the left-hander Nasir Khan, batted really well in the previous game. 51 runs he scored of 35 deliveries. But they're up against Afaq Afridi. Got a fifer, his second at this level. Afaq Afridi to take the new ball and kick off from the pavilion, and he's also a very skillful swing bowler. And straight away you see an example of that, pitching in the right zone, and this would have been a great ball to any batter. Yeah, starting off from where he left Afaq Afridi in the previous game, it was marvelous. And here also some extra bounce. He's tall, he's got a high arm action, he bangs in it, that hard length. That's what you want to see. Purposeful bowling. It's a test for the youngster Basit. This is well played, well timed. Straight to third. Just the one, but it was good cricket all around. He's a tall, strong boy.
and likes to hit the lengths and extract movement. Yeah, my first time when I saw him was in Pindi playing in the Champions Cup, and he was playing for Wakar Bhai's team, and he took a fifer. He bowled wonderfully well and impressed one and all over there. Nice use of the wrist. Just for one though. He's a good lanky fast bowler. We used to see in 90s, although we were very young, but we used to see fast bowlers like him. Well built, strong, tall, good aggression, never give up attitude. That's very important. It's good to see such fast bowlers still coming. Talk about Afaq Afridi. He's played 3 T20s. He's got 2 fifers. So there are youngsters coming up every now and then who come and show you some brilliance in what they do. The important thing is to just make sure that they keep progressing and that their talent is made to be much more useful at the biggest level. Oh, this is a short one. The batter realizing it really late. Basit Ali was very uncomfortable in the end. Just managed to leave it. Another youngster comes to my mind is Faik Butt. 4 T20 games, 200s in National T20, and showed immense promise, immense talent, very fit, good fielder. And this boy also 3 games, 2 fifers. But does that surprise you, Salman? Both of these young players, Afaq Butt you mentioned, Afaq, not being picked in HBL PSL. I'm sure lots of headhunters will have their eyes on them. We'll get back to it. It's end of the first over, 2 for none. I've just been told, so that's good. That's what you want to see, youngsters with talent, with potential being picked by the headhunters. Afaq Afridi surely is one you should have your eyes on. Sirajuddin also, he's got time but still is quick. He can swing. Yes, Sirajuddin, first time I watched him was here at the Gaddafi Stadium, Lahore, playing in a first-class game representing Multan. And he was the quickest among the lot playing that season. He's well-built, strong boy. And that was a pure batting track, white in color, and the batters just did not get out on that track, but he bowled his heart out. Yeah, this pitch has a lot of encouragement for the faster men. There's a bit of swing, there's good carry, although not the amount of carry that we saw on the first pitch, the first 4 games in the first 2 days played on a pitch which is on the left side of this pitch. Fastest 50s of National T20 qualifiers this year. Sarwar Afridi scoring at 200 plus strike rate today, 50 of 25. Nasirullah 27 balls and Rizwan used 28. And Nasir Khan, man currently batting, getting it off 33. So there have been innings of substance, a number of them. And we are only in the 4th day.
That's a encouraging sign for Dera Murad Jamali. One of them getting in that list of top 5 batters who've scored quick 50s. That's a good sign. Down the track. Didn't quite hit it where he would have wanted to. It happens, Salman, that from teams like Dera Murad Jamali, Larkana, the younger sides, it just takes one player to inspire others. Somebody like Nasir can inspire others that if he can be there in that list, so can we. Well, yes, anybody who climbs up the ladder and gets prominence due to his good work, due to his performances, then he also inspires people around him, around his area, the locals, and they see somebody make good progress and improve his lifestyle, get into a zone where they see national stars, international stars, then obviously the people around start telling young children, encouraging them to do the same. And that is how generations come along in a certain game or a sport. When you have champions, you talk about Muthaya Muralidharan, how many people try to be that sort of an ball with such an action? After Saklan Bhai, how many off spinners wanted to develop that dusra? Bakar Bhai was imitated. Every street had somebody bowling in his action. 2 overs complete. DMJ 3 for none. Yeah, when we talk about inspiration, it's good to see young kids coming here, getting inspired from these cricketers. It's very good to see. Not just the little boys, but little girls also coming to the ground and getting inspired. Afaq Afridi right there. Best bowling figures for Fata region in T20s. Irfan Khan, 5 for 17. The leg spinner Amir Yamin. He played for Fata in one season, 2016. That was Maz Khan, the leg spinner. Asif Ali also in that list. But he's taken a couple of them. A bit of aggression also from Afaq. No bowler, no fast bowler in particular likes the batter use feet against him. But soon, if not this year, probably by the next year, I'm pretty much sure those headhunters will have eyes on Afaq Afridi, provided he maintains his fitness, because it looks good, looks like a good deal. A wider slip in place. Still backing away. It's a very good start from Fata fast bowlers, both giving nothing away. Only 4 runs been scored in 15 deliveries that they've faced in the power play. Talk about inspirations. Who inspired you really, Salman, when you started watching cricket or started playing cricket, that you wanted to be like him? Because he swings and misses. Yeah, this is a wild hike, not looking at the ball and not making any contact. Well, I had this wonderful pair to look up to when I grew up as a child. It was Amir Sohail and Saeed Anwar, the two brilliant left-handers, both very attacking players. Lots of shots they had up their sleeve, and two different batters. I remember watching Amir Bhai score a double hundred in, I think it was Old Trafford against England.
And then Saeed Bhai with his brilliant 194 against India in Chennai. And so many other occasions when these two played in Australia. When Pakistan won that Carlton and United series, Wasim Bhai was the captain. Amir Bhai was the permanent opener on one side. Saeed Bhai then wasn't there. And then we saw Saeed Bhai scored those magnificent hundreds in 99 World Cup, in the Sharjah Cup so many times. There is so much from them, and there is the name, the great Saeed Anwar Encloyer. And he was one elegant player of his time, and till date not many have superseded the kind of elegance that he possessed. And Amir Bhai was a very smart operator as a batter and as a captain as well. 3 overs bowled, 4 for none. Yeah, run scoring has been very tough for these two at the moment because of the pace, the swing, and a bit of bounce. And they've been very accurate, both Siraj and Afaq, bowling in tandem. Have a look at this. The last one, this is just beaten outside the off stump. They're such a good side, Fata. They'll be hard to beat. Rawalpindi looked like coming close, but not to be, because they both are in the same pool. Only one will go in the final. Down the track, smacks it straight to the fielder. It's been that sort of an inning where they're trying, but it's just not working for them. Rawalpindi will be in action against Bahawalpur in the next game. Starts at 8:30. Pace. Wide signaled. They won't mind it. It's good aggression. Yeah, way ahead. Way over his head. Good take by Rehan behind the stumps. Only 5 runs have been scored in this power play so far. Slowest, I would assume. Rawalpindi scored 24. That's what he's suggesting. Just hold on to your horses. Just take it easy. I've got pace. You cannot treat me like this. Every now and then coming down the track. Really well in the previous game, struggling at the moment because of the raw pace and the intelligence of the bowlers, mixing it up, slower in pace this time, and a smile to go with it. 12 deliveries for just 3 runs for Nasir. How quickly things can change in the game of cricket. One day you are a superstar, smashing bowlers all over the place, and the very next game you're struggling to even touch the ball. Still no run. Fata surely are on top. Well, DMJ are going nowhere with this
start 5 for none, and it's 23 balls into the innings, and there's wide also in this 5. Only 4 singles off the bat and 1 extra, and this is just a ball to go, so you can well imagine how well Sirajuddin and Afaq have bowled this new ball. Yeah, probably the 6th run. We'll wait if it's a leg by, and the umpire has signaled a leg by. So 2 extras in the 6 of 4 overs, DMJ. For Nasir and Basit that they've seen off Afaq's pace. Now you see, this is something that I find very interesting in T20 cricket, where 2 bowlers are bowling exceptionally well. Rather than going for the kill, you just save them for the end of the game when they still require 189 runs of 16 overs. So this is what most captains do these days. They'll come out with a plan and they'll stick to a plan, and they will not see what's going on inside. Because talk about a power play, because now they will have to make a move. Otherwise, they're going to lose the game. So 2 bowlers bowling that well, they've squeezed the innings, and you just change them. Just predetermining that maybe in the end you want them. There will come a situation when you might need those 2 bowlers. My point is, why get to that situation if you are in such a dominant position? They're appealing for it, and he's given it. He surely has given it. Hubab strikes. Basit and Nasir were struggling. And now it's Hubab who's taken a wicket. No worries at this time, at this end. It's the other end. The ball moving away after pitching. Rehan Afridi makes no mistake. Struggling 1 by Basit. It's 7 for 1. Daud Khan at number 3. He's come at a time when the team is struggling big time. In pursuit of 195, they're 7 for 1. He has to come and come big. The required run rate about 12 now for Dera Murad Jamali.
Yeah, finally the agony ends for Basit Ali. 1 of 11. He was struggling to meet the ball with the bat. And in the end, a faint edge straight in the keeper's gloves. And this time around, there is surely intent from everyone who has batted so far for DMJ. But the application or the resource available or the skill that you want to have is the struggling part. And credit to the bowlers. And the batting hasn't been up to the mark, to say the least. 4.4 overs, 7 for 1. Probably one of the slowest starts seen. And this one is off the top edge, and this one will run away to the boundary after bouncing a few times. So some relief for DMJ. First boundary of their innings is off the top edge, and it's gone over the keeper's head. And Dawood is the person who's just come in and is looking to be positive, because that is what his team requires. Yeah, his team requires him to be ultra positive. Positive pro. Because they're struggling. Pro Max. This is single to end the fifth. It's 12 for 1. ABS developer National T20 qualifier 2025 and 6 का तो मैच है डेरा मुराद जमाली एंड फाटा. सरवर आफरीदी कप्तान बॉलिंग के भाग दौड़ अपने हाथ में लेते हुए. फुलर बॉल था जिसको खेलना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से बीट हुई. नजर डालें अगर स्कोर बोर्ड की तरफ तो छठा ओवर चल रहा है. ये सिर्फ रन्स 12 बनाए हैं और एक विकेट गंवाई है. तो जो हदफ है 195 रन्स का, उसका ताकुब अगर इस अप्रोच से जारी रहेगा तो खासी मुश्किलात होंगी डेरा मुराद जमाली के लिए. एज लगा है लेकिन एक दो बाउंस होने के बाद गया विकेट कीपर के पास. हल्का सा फंबल हुआ. बात कर रहे थे रिक्वायर्ड औसत की. इस वक्त खतरनाक हद से ज्यादा तजावुज कर चुकी है. और जिस तरह का पिछला मैच डेरा मुराद जमाली ने खेला था, अब ये देखिएगा मतलब फिर फुलर वन बॉल ड्राइव मारना चाहते थे लॉन्ग ऑन की जानिब, लेकिन पूरी तरह से नाकामयाबी इनका मुकद्दर बनी. राज साहब, छठा ओवर है और सिर्फ 13 रन बनाए हैं डेरा मुराद जमाली ने, जबकि हदफ 195 का. देखिए ये एक बड़ा चैलेंजिंग टारगेट है. क्रिकेट का खेल है, इसमें आप कुछ कह नहीं सकते. और अगर ये दोनों बैटर मौजूद रहे, इस तरीके से स्ट्रोक दोहराते रहें, चौके लगाते रहें, स्ट्राइक रेट को मेंटेन रखें. और पहला जो पावर प्ले है वो बड़ा मायूस कर रहा है. अभी तक 5 ओवर 3 गेंदें, सिर्फ 17 रन बने हैं और एक विकेट भी खो दी है. तो ये गैर मामूली तौर पर एक मेरे ख्याल में बगाड़ पैदा हुआ है. अगर हम इस गेंद को दोबारा देखें, ऑफ द टोस अच्छे तरीके से गेंद को मोड़ा, बैकवर्ड स्क्वायर लेके जाने और 4 रन हासिल किए. यहाँ पर तबादर के साथ चौके लगाने होंगे. जब 195 का हदफ हो T20 में, तो फिर आपको स्कोरिंग शॉट्स चौकों और छक्कों की सूरत में लगानी पड़ती है. इस गेंद को अच्छे तरीके से प्लेस कर दिया है थर्ड मैन की जानिब, ये 4 रन होंगे. तो क्रिकेट का खेल है, इसमें आप हतमी तौर पर कुछ कह ही नहीं सकते. लेकिन फिर भी ये एक आगाज हुआ है. नासिर ने बल्ले को खोला है, लेकिन तबादर के साथ जो स्कोरिंग शॉट्स हैं वो चौकों और छक्कों में बदलनी होगी. तावक्त कि आप उस नहज पर आ जाएं. इस वक्त जो सूरत हाल है उसके मुताबिक 60 रन होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. और अभी सिर्फ एक विकेट गिरी है. नासिर और दाऊद को बल्ले को खोलना होगा और बार बार अटैम्प्ट करनी होंगी बड़ी शॉट्स. सर्वर फ्रेंडली पेस से गेंद कर रहे हैं.
चलिए सिंगल ले लिया, जल्दी करना होगी अंडर आर्म थ्रो, लेकिन रन मुकम्मल हो चुका था। वैसे भी जाकर गेंद स्टंप्स पे नहीं लगी। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र हम देखें कि विकेट भी नहीं गंवाई, रन्स भी नहीं किए, तो इस वक्त स्ट्रगल करते दिखाई दे रहे हैं, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। अब पावर प्ले का बेहतरीन यूज़ होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। ताकुब रन्स का जब आप कर रहे हो तो पार्टनरशिप के साथ साथ जो औसत आपको दरकार होती है उसको भी मद्देनजर रखना होता है, क्योंकि ह्यूज टारगेट 195। सिंगल, बहरहाल ये बेहतर ओवर हुआ है अब तक, और हमने देख लिया है कि जब सूरत हाल बेहतर होती है तो फिर मद्दे मुकाबल टीम है उस पर किसी हद तक दबाव होता है। लेकिन फिलहाल फाटा कहना होगा राइट ऑन टॉप आफ्टर 6 ओवर्स। तो पावर प्ले का खेल खत्म हो चुका है, 23 पर 1, डेरा मुराद जमाली। पावर प्ले का ये सिग्नल है कि 6 ओवर जिसमें सिर्फ 2 फील्डर जो बॉलिंग साइड है वो सर्कल के 30 गज के सर्कल के बाहर रख सकती है। तो अब वो कदगन या पाबंदी ख़त्म हो चुकी है। दाऊद और नासिर दोनों विकेट पर मौजूद हैं। बॉलिंग में तब्दीली की गई है और पहली गेंद को कट करने की कोशिश की और उसमें नाकामी हुई। चेस किया, पीछा किया गेंद का। खुबैब बॉलर हैं और करीब था कि गेंद बैट के बाहर वाले किनारे से लगती। यहाँ पर जो मैसेज जा रहा है टू द बॉलर्स के आप हमें आगे करें, कभी इनकरेज नहीं करना चाहिए बॉलर को। और ये T20 क्रिकेट है, इसमें आपको खासतौर पर जो पहले ओवर है जब हदफ 195 का हो तो हिट आउट करना होता है, ड्राइव्स करनी होती हैं। सिंगल्स आर इम्पॉर्टेंट, लेकिन बिसाइड द पॉइंट अगर आप चौके नहीं लगाएंगे तो आपका जो मतलूबा रन रेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता चला जाएगा। बजा फरमाया सिंगल्स इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन सिंगल से कुछ डैमेज नहीं होगा फाटा की टीम को। पावर प्ले का फ़ायदा नहीं उठाया गया। अब जो फील्डिंग की पाबंदियां हैं वो हटा ली गई हैं। अब देखिए 5 फील्डर्स बाउंड्री पर तैनात हैं, तो आसानी होती है जब 2 फील्डर्स होते हैं, तब आप बॉलर के हेड के ऊपर से मार सकते हैं, फील्डर के ऊपर से मार सकते हैं, लेकिन अब सिंगल से काम नहीं बनेगा। जो ओपनर होते हैं वो अहम तरीन बैटर होते हैं T20 क्रिकेट में, लेकिन वो ज़ेर दबाव रही। वाइड गेंद, खुबैब को विकेटों के अंदर गेंद करनी चाहिए क्योंकि ज़ाहिर कोई ख़तरा नहीं है। नासिर ने महदूद एग्रेशन शो किया है। दाऊद अंडर प्रेशर हैं, बिलतरतीब 18 और 9 गेंदें खेल चुके हैं 13 और 8 रन के लिए, जो कि किसी भी तरीके से मतलूबा रन रेट के मुताबिक नहीं है। 195 एक बड़ा स्कोर है और इस इवेंट में अब तक जो बैटिंग परफॉर्मेंस है उसमें ये एक बहुत ज़्यादा स्कोर है। खड़े खड़े ड्राइव करने की कोशिश की, ऐसा नहीं करना होगा, आपको जाना होगा गेंद पर, और अगर गेंद आपको खुद आकर बल्ले को नहीं लगती देन यू हैव टू हिट आउट। आपको रश करना होगा, कदमों का इस्तेमाल करना होगा। ये जो धीमी रफ्तार की शॉट्स हैं ये पर्पसफुल नहीं होगी। यहाँ पर दाऊद को दाएं और बाएं देखने के बाद अब ज़ाहिर है कि फील्ड की प्लेसमेंट का तो पता चल गया है, लेकिन गेंद को कहाँ खेलना है इसका इन्हिसार इनकी ताकत और टाइमिंग पर है और शॉट सिलेक्शन पर है, जो ज़ाहिर है कि बड़ी हिट से मुतल्लिक होनी चाहिए। खुबैब गेंद करेंगे, कट थर्ड मैन की जानिब। देखते रहे कहाँ से आया कहाँ गया, लेकिन बिल आखिर गेंद को हासिल कर लिया। 2 रन का इजाफा हुआ है। ये किसी तरह स्कोर बोर्ड को चलाते रहना होगा। हर सिंगल, हर डॉट बॉल के बाद जो तादाद है डॉट बॉल्स की, ये अच्छा स्टीयर किया। बेहतरीन डाइविंग एफर्ट, 2 स्कोर बचाए अपनी टीम के लिए और थोड़ा सा तलाश करते रहे गेंद को। तो बढ़ती जो तादाद है डॉट बॉल्स की, उसे प्रेशर जो अल्टीमेटली है वो डेरा मुराद जमाली पर ही पड़ने वाला है। बीट हो गए, दबाव पड़ चुका है। 6 ओवर 4 गेंदे, सिर्फ 28 रन। ये T20 क्रिकेट के नॉर्म्स के, बल्कि 6 ओवर 5 गेंदें अब हो गई हैं। 7वें ओवर की आखिरी गेंद होगी है। खुबैब नब्बी बॉलिंग कर रहे हैं। ये दूसरा ओवर है, सिर्फ 11 रन दिए हैं। इब्तदाई ओवर्स में रन पड़ते हैं बॉलर्स को, लेकिन यहाँ
ये अक्सर मुख्तलिफ सूरत हाल है। ये दोनों बैटर ज़ेर दबाव हैं और लग नहीं रहा कि वो जस्तजू में हैं, कोशिश में हैं कि तेज़ शॉट्स लगाए जाएं। सिंगल ये तो जो मतलूबा रन रेट है उसके मुताबिक नहीं है, हिट आउट करना होगा। 7 ओवरों का खेल मुकम्मल हुआ। डेरा मुराद जमाली 29 से 1 विकेट के नुकसान पर। बॉलिंग करने के लिए सर्वर के हाथ में गेंद है, ये गेंद करेंगे। दाऊद इनके सामने है। ये एक फ्रेंडली पेस की गेंद थी। दाऊद ने खड़े खड़े इसको ड्राइव करने की कोशिश की। ना इस गेंद में अच्छी लेंथ वाली गेंद थी, लेकिन जिसको हिट आउट करना चाहिए था। ये तरीका देखिए, कोई लेटर मूवमेंट नहीं थी, कोई उछाल नहीं था। एक टप्पा लगने के बाद विकेट कीपर के ग्लव्स में गेंद गई। तो सर्वर फ्रेंडली पेस से गेंदें करें, और ये जो फ्रेंडली पेस है इसमें आप लैटिट्यूड या आप कुछ आज़ादी ले सकते हैं। इस तरीके से आपके बल्ले से धमक बॉलर तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन गाहे गाहे हम देख रहे हैं मास वाइज सिंगल्स का कुछ हो नहीं रहा, वो एक्टिविटी हो नहीं रही जिसको शायकीन ने क्रिकेट और जो डेरा मुराद जमाली के जो सपोर्टर्स हैं वो तवक्को कर रहे हैं। ये वो यंगस्टर्स हैं जो कि चाहते हैं कि तेज़ रन्स बने, चौके छक्के लगें, लेकिन हर हाल में ये खुश हैं अगर देखा जाए। और इन्हें ज़ाहिर है कि ये टॉप एज लगा है, कोई दानिस्तान स्ट्रोक नहीं था, 1 रन हासिल कर लिया। तो सिंगल्स विल नॉट सर्व द पर्पस, दे हैव टू गो ऑल आउट, हिट आउट करना होगा। और इसमें ज़ाहिर है कि अपने आप को जुम्बिश देना होगी। जी ये बड़ी अच्छी बात है कि कानून की पासदारी कीजिए। ये हेलमेट पहनी हुई है, लेकिन इन तक फिल वक्त कोई ऐसी जद पहुंचने वाली नहीं है गेंद की सूरत में। और ये मैदान से बाहर हैं, इनको गेंद भी नहीं लग सकती। नानको की बॉलिंग कर रहा है इस वक्त, ऑन साइड पे प्लेस, आसानी से 1 रन। चौके और छक्कों वाली जो इनिंग्स है, हो सकता है एक दौर ऐसा भी आए कि इतनी ज़्यादा क्रिकेट हो जो शायकीन क्रिकेट है वो भी अपने सर की हिफाजत करें। या शायद इतना जुर्माना अदा कर चुके हैं कि डर रहे हैं, पैदल फिरते हुए भी हेलमेट ऑन रखा हुआ है इन्होंने। यहाँ शायद इतना जुर्माना दे चुके हैं कि अब मजीद जुर्माना देने के ताप नहीं ला सकते। ये भी एक वजह हो सकती है कि फील्ड में भी हेलमेट पहन के बैठे हुए स्टैंड में। पुल किया है और ये गेंद गई है। काफ़ी अरसे के बाद ये एक छक्का लगा है। इस समल को दाऊद को बार बार दोहराना होगा, बार बार जो ज़ोरदार शॉट्स इनको लगाना होगा, ताबड़तोड़ हमले करने होंगे बॉलर्स के ऊपर। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अभी बहुत पीछे हैं, 37 रन बने हैं। अगर ये छक्का हम दोबारा देखें, शॉट ऑफ लेंथ पुल, और गेंद मिलाकर 6 रन के लिए बाहर चली गई। इसी तरह की इंटेंट जारी रखनी होगी, इसी तरह के जारहाना स्ट्रोक्स आते रहने चाहिए, क्योंकि अब वक्त नहीं है, अभी नहीं तो कभी नहीं वाली बात जो है वो आ पहुंची है डेरा मुराद जमाली के लिए। और इस छक्के से थोड़ी हौसला अफजाई हुई होगी दाऊद की। बहुत प्रेशर नासिर और दाऊद जो महसूस हो रहा है कि फील कर रहे हैं, दबाव है इनके ऊपर, और उनके जो चेहरे हैं वो उसके असरात अयां करते हुए 20 के और 12 ओवर मजीद डिलीवर होंगे। तो होप कर रहे हैं शाहीकीन क्रिकेट भी, डेरा मुराद जमाली के फैंस भी, कि शायद कोई स्लॉगिंग हिटिंग देखने को मिले। लाखर 1 रन लेने में कामयाब हुआ है। तो इस तरह 8 ओवरों का खेल मुकम्मल हुआ। डेरा मुराद जमाली 38 पर 1।
ये हैं विजिलेंट क्वालिफाइड रेस्क्यू 112 के स्टाफर्स, ऑफिशियल्स हैं। किसी भी इमरजेंसी निपटने के लिए इनके पास ज़रूरी साजो सामान यहाँ मौजूद है बॉलिंग करने के लिए। अब देखना ये होगा कि जिसको भी लाया जाएगा उनके लिए काम फिल वक्त काफ़ी आसान है। दाऊद नासिर में वो एग्रेशन दिखाई फिल वक्त नहीं दे रहा है, जो कि इस वक्त इनकी बैटिंग का खासा होना चाहिए। माज खान बॉलिंग करने के लिए आए हैं, इस गेंद को ऑफ साइड पर प्लेस किया। तो जहाँ तक माज का ताल्लुक, आपने देखा उन्होंने काफ़ी आगे गेंद की। वो जानते और समझते हैं कि दाऊद भी और नासिर भी इस वक्त जो हिटिंग कर रहे हैं, जो इनका इस वक्त मोरल है या ओवरऑल एटीट्यूड है टुवर्ड्स बॉलिंग या रन्स करने के नुक्ता निगाह से, जो पेस है उसमें सुस्त रवि है, वो एग्रेशन नहीं है जो कि T20 का खासा होता है। वो चाबक दस्ती नहीं है जो 195 के असूल के सिलसिले में इनमें मौजूद होनी चाहिए। खाल खाल बाउंड्रीज लगी हैं, सिंगल्स हो रहे हैं और क्रिकेट कहना होगा कि क्वाइट है, खामोश है। वो जो चौके छक्कों की बारिश है वो होनी चाहिए, क्योंकि अभी ये एक विकेट गिरी है। ये वो प्लेसमेंट थी ऑफ साइड पर, उजलत में जल्दी में गेंद को हासिल किया, लेकिन अच्छा तालमेल था दोनों के दरमियान। इस गेंद को जोरदार तरीके से पुल कर दिया है ऑन साइड पर और फील्ड में बहुत गिरावट। कोई अच्छा ये तरीकाकार नहीं था गेंद को रोकने का। गेंद के करीब आने से पहले ही नीचे गिर गए, अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख सके। गेंद उनकी बाईं तरफ थी और जब वो थोड़ा संभले गेंद उनके करीब से बाउंड्री लाइन के लिए बाउंड्री लाइन के पार जा चुकी थी। इस तरीके से या मिड विकेट पे खेला था इस मरतबा और स्लाइड करने की जरूरत नहीं थी। पता नहीं क्यों एक स्लाइड करने का दिल में ख्याल आया, स्लाइड की और 4 रन्स के लिए चला गया। स्कोर 45-45। सिंगल से काम आसान नहीं होगा, सिंगल्स को वेलकम कहेंगे फाटा के बॉलर्स। बाउंड्रीज दरकार होंगी हर ओवर में कम से कम 2। ऑफ सबसे बाहर गेंद और इसको ऑन साइड पे खींचने की कोशिश की नासिर ने। बाएं हाथ से खेलने वाले बैटर हैं, आगे है कि इनके लिए और मुश्किलात होंगी अगर रन रेट में काबिल जिक्र इजाफा ना किया गया। महाज ने पितुली बॉलिंग कर रहे हैं, कोई रन नहीं। तो इस तरह 9 ओवरों का खेल मुकम्मल हुआ। डेरा मुराद जमाली 45 पर 1। छियासठ गेंदें 150 रन, काफ़ी मुश्किल काम है, कोई आसान काम नहीं है। 11 ओवर बाकी हैं। जो 66 गेंदें बनती हैं कम से कम, जो ऑल लीगल डिलीवरीज हैं, ओवर स्टेपिंग हो, लो बॉल हो, वाइड हो, वो अलग बात है। लेकिन जो कुछ आपके सामने हम दिखा रहे हैं आपको, वो तो मुश्किल काम है। फिल वक्त स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद। बॉलिंग में तब्दीली और खुशदिल शाह मायानाज ऑलराउंडर पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। सो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी अपने हाथ में ले चुके हैं। और जो औसत की बात की आपने 66 गेंदों पर 150, तो अगर अभी से पुल कर दिया है इस मरतबा, वेट किया और गेंद किया बाउंड्री लाइन के पार। इसी तरह के शॉट्स हर ओवर में लगने चाहिए और एक से ज्यादा लगने चाहिए, फिर जाके शायद डेरा मुराद जमाली की वापसी होती दिखाई देगी। T20 क्रिकेट है ना, इसमें बॉलर आपको सहूलत फराहम करते हैं। ये खुशदिल की सहूलत थी, फैसिलिटेट किया बैटर को पाँव में जिसे हम कहते हैं गेंद की, और ऐसी कोशिश थी जो कि उनको ज़ाहिर करनी चाहिए। बड़ा आसान स्ट्रोक होता है शॉर्ट गेंद को पुल करना। अब कदमों का इस्तेमाल किया है, इस बार दलेरी दिखाई है लेकिन नहीं, नाकाम हुए। गेंद सीधी मिड ऑफ पर गई। तो इस तरह ये दूसरी विकेट गिर चुकी है और नासिर अपनी विकेट खो चुके हैं। ये काफ़ी आगे पड़ी हुई गेंद थी और एक कमज़ोर हिट, एक कमज़ोर अटैम्प्ट और खुशदिल को कामयाबी हासिल हुई। गेंद को मुंह में किया था जिसे उर्फ़ आम कहते हैं। अगर हम दोबारा देखें गेंद तो ज़ाहिर है लीगल थी, और दूसरी तरफ अगर हम एक शॉट का अंदाज देखें, ऐसे नहीं होता, आपको हिट आउट करना पड़ता है विद एनर्जी, पावर एंड टाइमिंग। बिल्कुल ऐसा नहीं था।
तो इस तरह ये दूसरी विकेट गिरी। नासिर खान आउट हो चुके हैं, 25 रन बनाकर आउट हुए। कैश वसीम, बोल्ड, खुशदिल 50 पे 2, डेरा मुराद जमाली। यहाँ पर अब ड्रिंक्स इंटरवल होगा। मोहम्मद खान बैटिंग करने के लिए आए हैं और इनके लिए काम आसान नहीं है। एक बगाड़ पैदा हो चुका है। जो असल मसला है वो पुअर पर ओवर का है, रन रेट का है, और इसमें जब तक ड्रास्टिकली इम्प्रूवमेंट नहीं होगी मसाइल होंगे। डेरा मुराद जमाली के लिए आते ही ऊंचा स्ट्रोक खेल दिया है और गेंद इस तरीके से 6 रन के लिए बाहर गई है जो आपके सामने है, दूर, बहुत दूर स्टैंड्स के ऊपर। तो ये चार्ज लिया है। देखिए मोहम्मद खान ने आते ही वो कुछ करके दिखाया है जो कि बहुत पहले शुरू होना चाहिए था। एक ऐसा स्ट्रोक जो कि देखने में दिलकश था और जैसे ही बल्ले से निकला खुशदिल शाह को पहले अंदाजा हुआ और हमें बाद में अंदाजा हुआ कि गेंद उस जगह पर जाएगी जहां पर दूर दूर तक कोई फील्डर मौजूद नहीं होगा। खूबसूरत और जानदार, शानदार, जोरदार स्ट्रोक मोहम्मद खान का। जी हाँ, फुल वन बॉल था और जिस तरह की अप्रोच दिखाई है मोहम्मद खान ने, ये बहुत पहले आगाज होना चाहिए था इसका। मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए खेल दिया जो पहला ही बॉल उन्होंने फेस किया। ऐसा लग रहा है कि ड्रेसिंग रूम से सेट होकर आए हैं। ये है मोहम्मद खान, राइट हैंड बैटर। खुशदिल शाह ने विकेट ज़रूर ली है लेकिन स्कोर 11 दे चुके हैं अब तक। इनको काफ़ी हद तक दूर धकेल दिया था मोहम्मद खान ने। 62 गेंदों पर 139 दरकार। जो हिंसे आपके सामने है, मुश्किल तरीन काम है, लेकिन अगर मोहम्मद खान ने हिट आउट किया और दाऊद ने उनका साथ दिया तो फिर मैच दिलचस्प हो सकता है। लेकिन 195 एक मुश्किल हदफ है फिल वक्त, जबकि 57 पर 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और 10वीं ओवर की आखिरी गेंद फेंकी जाएगी। दाऊद 26 पर हैं 21 गेंदों का सामना करने के बाद। शायद कुछ शैडो कास्ट किया हो मोहम्मद खान की उस जोरदार हिट का। ये चौका हो गया। मिस फील्डिंग भी हो रही है। ये कोई टॉप क्लास फील्डिंग का मुजाहरा नहीं है। डाइव की और गेंद जिसम के नीचे से होती हुई फील्डर के 4 रन के लिए बाहर चलेगी। तो इस चौके के साथ 10वां ओवर खत्म हो चुका है। 61 पर 2
Dera Murad Jamali. Relax now, come on boys. Come on, Maza, ha. Sit up, mid wicket, the large mid wicket, bana khore. Sir, leg stick dega. Thank you. Now, Maza. Da, andar takawa Maza. Dil da lagya usakha. Kawa. On the leg spinner into his second over. It's none for 7. The first ball bowled. The batter trying to go big, but no connections. This one almost yawking the batsman. Just the leg by. Maaz Khan comes from the development program of Lahore Qalandars. His early days, where he went under development work, played a season for them, was along the team for a couple of seasons, and now into this. And this is his strength. This was a straighter one, a quicker one coming in. He's pretty skitty customer, and if you haven't seen him as a batter, he doesn't turn the ball a lot. This was a flipper, and well bowled one, but this is right in the screws. It's big, it's huge, it's a monstrous hit. 6 runs. 6 to welcome Mr. Ali Yunus. Should I hand over the mic, sir? Thank you very much. Such a humongous hit, you would call it. It was huge. It was pitched up, picked it up. As you said, he doesn't turn the ball much, so it was easier for him to understand it. And he just demolishes it. That was a huge hit for 6. So since the arrival of Daud, things have started to happen. And we know what Mohammad Khan can do. Scored a beautiful 38 of 17 deliveries probably in the previous game. I think, Salman, those first 4 overs when they scored only 5 runs, that's going to hurt DMJ. Because there was lack of skill facing that extra pace. Yeah, but they spare at the crease, and the ones to come, they cannot think like that. They have to just keep going. Once again, it's been hit hard, and it's just gone over the fielder. Hit his hand as he tried to latch onto it, but to no avail. 6 more. Maaz Khan being put under pressure after first 3 balls, which were good enough, 1 leg by and 2 dots, and then 2 back-to-back sixes. Daud surely inspiring others also by his brutal hitting. He likes it in that zone, right in front of his eyes, and he just puts it away for 6. Very simple. He's keeping it very simple. 11 overs gone. Yeah, that's an expensive one. He must be unhappy about it. 75 for 2. Enough of spin, said Sir, but Afridi has gone back to his pacer, Khubaib Khalil. Bowled 2 overs, given away 12 runs and a wicket. Edge 4, yes! It's all working for Daud at the moment. Even the edges are going towards the boundary. Runs coming thick and fast now, as Daud very clearly is intending to go after any bowling that's coming towards him, because his team needs that, and they will require an inspiring knock, somebody to challenge the opposition, and that would inspire the entire dugout. 47 of 27.
Once more, he wanted to cut. It was there to cut. Unfortunately for him, he just missed it. It would be interesting to know what the vibe is in the camp of Dera Murad Jamali. So we've been joined by the head coach Hussain Khoso alongside us. No better person to ask how it feels to be here with the big boys, challenging them. So we'll have a word with him after this delivery as Daud smacks one for another boundary. Wonderful hitting. Sensational 50 from Daud against the run of play, against the bigger opponents. He's being very courageous and brave to get his 50 of just 29 deliveries. Yeah, he is showing the light. It's the bat in hand, but it is working as a torch for him and his team. This is the way forward. 51 of 29. And the amount of runs they require and the overs left demand for such a knock, such attitude at the crease. This isn't a wide, and the appeal has been successful in avoiding the wide ball. Hussain Khoso is the coach, and he'll be with us, and we'll talk to him. राइट हुसैन भाई, क्या आप हमें सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल। खुश होंगे काफ़ी इस ऑनस्लॉट से जो दाऊद इस वक्त जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं? जी जी, पहले जब अभी ये ब्रेक हुआ था, ब्रेक पे उनके साथ बात हुई कि क्या प्लान है, किस तरफ जाना है, तो वो जो मोमेंटम नहीं पकड़ पा रहे थे, दोबारा उन्होंने वो मोमेंटम पकड़ा है और अपनी जो नेचुरल इनकी क्रिकेट होती है वो उस पर चले गए। तो क्या वजह लगती है आपको, जो पहले जैसे अपने ओपनर्स को देखा वो थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए, काफ़ी पावर प्ले में ज़्यादा रन्स नहीं बना सके, तो क्या आपको लगता है कि उसकी वजह यही है कि उस थोड़ी सी पेस है इनकी जो है ना उससे ज़्यादा थी और थोड़ी सी बॉल सीम हो रही थी जिसको ये पूरी तरह जज नहीं कर पा रहे थे। आप हेड कोच हैं तो कैसा वाइब है जो जिस तरीके से पहले मैच खेले आप, सुपर ओवर तक गए, अब ये मैच भी आपने पहले 10 ओवर बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, तो क्या वजह लगती है आपको कि पूरा मैच उस तरीके से अपने ग्रिप में नहीं ला पा रहे हैं? जो जिस तरह हमारी पहले बॉलिंग आई थी उसमें यही प्लान किया था कि जो टारगेट सेट किया था उसमें कुछ ओवर्स ऐसे थे जहां पे हमारा मोमेंटम टूटा, लंबे रन्स पड़ गए, उसकी वजह से थोड़ा सा आउट ऑफ प्लान चले गए। अदरवाइज़ हमारी कोशिश ये थी, ये जो इस वक्त फाटा की टीम है मेरे हिसाब से डोमेस्टिक सर्किट की सबसे बेस्ट बॉलिंग साइड इन्हीं के पास है। आप पेस को देख लें, पेस है इनके पास, अच्छे बैक ऑफ द हैंड वेरिएशंस कराते हैं, साथ में एक अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बॉल करते हैं। तो इसके अगर अगेंस्ट हमारी लिए टीम खेल रही है, लेक ऑफ फैसिलिटेशन, इतनी अवेयरनेस नहीं है, उसके बावजूद अच्छा खेल रही है। कोशिश हमारी यही है कि जो टारगेट हमने सेट किया है हम उसी को अचीव करने के लिए जाएँ और उसी में आप देख रहे हैं तगदो कर रहे हैं लड़के, इंशाल्लाह अच्छा खेलेंगे। तो थोड़ा सीन बताएंगे कि डेरा मुराद जमाली में क्रिकेट कैसे खेली जाती है, किस तरह का टैलेंट और यंगस्टर्स में आ रहा है, कुछ एक्सप्लेन करेंगे वहाँ पे क्रिकेट का क्या रुझान है? बेसिकली डेरा मुराद जमाली इस वक्त जो डोमेस्टिक सर्किट में देखें सबसे एक छोटा रीजन है और इसमें 5 अजला हैं। 5 अजला के साथ 2-2, 3-3 डिस्ट्रिक्ट टैग हैं, यानी कि कुल मिला के कोई 10 से 12 डिस्ट्रिक्ट बनते हैं। उस तरह की फैसिलिटेशन नहीं है, पिचेस का स्टैंडर्ड वो नहीं है जहाँ पे आपको थोड़ी सी पेस वाला बॉलर या पेस वाली पिच मिल जाएगी तो हमारा बैट्समैन वहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रगल करता है। तो कोशिश यही कर रहे हैं, अब जब डोमेस्टिक डिपार्टमेंट जिस तरह की कोशिश कर रहा है, कैंप्स लगाना, वहाँ की पिचेस को अपग्रेड करना, तो एक सिलसिला जो डेरा मुराद जमाली रीजन जब बना था 2013 में, उससे लेकर 2018 तक हमारी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। उस वक्त तक हमने तकरीबन कोई 5 से 6 प्लेयर पाकिस्तान यूथ को दिए थे जिन्होंने अंडर 16 और अंडर 19 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। लेकिन जब पिछला सेटअप रीजन वाला ब्रेक हुआ तो उसमें हमारी जो क्रिकेट की डेवलपमेंट थी उस रीजन में वो एक ब्रेक हो गई थी। अब दोबारा जब रीजन बहाल हुए तो अब दोबारा हम ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने उस क्रिकेट जो पिछले छोड़ी थी वहीं से हमने स्टार्ट लिया है। थोड़ा सा टाइम लगेगा प्लेयरों को ग्रूम करने में और उनको फैसिलिटीज़ के साथ जो इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट या इस वक्त जो मॉडर्न डे की क्रिकेट चल रही है उसमें एडॉप्ट करने में। हाँ जी, अब बहुत ही अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। और अब इस मैच को अगर हम बात कर लें, 195 रन का टारगेट है, दाऊद और मोहम्मद के ऊपर काफ़ी उम्मीदें होंगी आपके कि इस मैच को यहाँ से जितना करीब लेके जाया जा सके। जी बिल्कुल, कोशिश यही है कि मैच को हम करीब ले जाएं और विन करने की कोशिश करें। दाऊद अच्छा खेल रहा है, उसके साथ मोहम्मद खान उतना ही अच्छा साथ दे रहा है। पीछे हमारे पास जो है एक पावर हिटर है जो अच्छी फिनिश करता है। पिछला मैच आपने देखा होगा, मोहम्मद शायद उसने बड़ी अच्छी गेम खेली थी, उसको वो टोटली उसके लिए तैयार किया गया है, वो हमारे पास मौजूद है। फ़हद हुसैन पीछे बैठा हुआ है और एक यंगर लड़का है मोहम्मद अली जिसको पहली मरतबा उसने डेब्यू किया है। वो भी इंशाल्लाह कोशिश यही है कि वो उसी पे जाएंगे जो प्लान किया है। हम विन की तरफ जाएंगे, हम खेल ही रहे हैं और हमारी टीम का जो मोटो है प्ले फॉर विन है।
चलिए बहुत शुक्रिया हुसैन आपका, और हम दुआ गो हैं कि आपकी टीम अच्छी फाइट दिखाए और अच्छा यहाँ पे लड़ते रहे, यही हम देखना चाहते हैं यंग साइड से. इंशाल्लाह. That थैंक was यू the सो मच. head coach of Dera Murad Jamali. Oh no, he's gone. Maybe, yes, he will have to refer to the third umpire. Khan wanted to just heave it very hard and just beaten. And an appeal for stumping. Clever Khushdil, slowing up the pace, mixing up the pace. The first three balls were slow ones, then he darted in a quicker one, and now once again he's just bowled slower than what he normally bowls. Batter looking to go big, fair delivery. Yes. That slowness. Look at how late the ball arrives, and no problems. This is gone. So easy decision. Khan gone for 8 of 7. Muhammad Khan a 6 and a couple of more runs. DMJ 85 for 3. Right, just when we thought that that partnership between Mohammad and Dawood is looking threatening, Khushdil Shah has been able to break it. And now we see Mohammad Shahid moves in. 85, they've lost 3 wickets. Such a handy cricketer Khushdil Shah is, especially at this level. If he won't score runs, he will get you wickets. This is very smart operator. Look the pace that he is bowling at. Very slow. 2 for 19, his figures in 2. He took the last wicket, bowled it very slow and far away from the batter. Beaten by pace, you would say. Beaten by slow pace, you would say. 86 for 3. बैंकिंग के साथ ऐसे बोल जब बैंकिंग नहीं आई थी ना तो बहुत क्लास और बड़ा लेवल टीवी चैनल्स भी जब नए आए थे तो बड़ा विद द टाइम गॉन फ्रॉम बैट टू पार्शियन है ना वाड़ के रखा edge away from the keeper, another boundary for DMJ. This time it's Shahid edging it to third for 4. Once again, the edge taking the ball past the keeper on this pitch because the carry is so good. There's pace in the track. So the edges fly off the bat. This one wasn't even a push. He just played at the delivery. Maybe the keeper could have gone for it. It wasn't a great deal away from him. And a top edge. And lucky that the ball didn't reach the fielder at mid-off. 1 in the end for Shahid. He goes across to the non-striker's end and brings back the aggressive Dawood on strike. 52 of 33. And Dawood really has been playing the lone hand, showing a lot of intent, playing big shots, pulling, cutting, playing in the gaps, and he's been rocking on the back foot, on the front foot, hitting big over the cow corner, and this is in the air. So this is a chance,
and accepted. So this is time up for Daud. It's end of his time at the crease. He fought alone, 52 he got of 34. And now DMJ are in further trouble because the mainstay is gone as they lose their 4th wicket. Yeah, no problem here at this end. Yeah, one too many. He had to go big. There was no other option. Naim taking a smart catch. Daud Khan walking back and probably taking the hopes of DMJ with him to win this game. It's 91 for 4. The captain, Fahad Hussain, what can he do? Can he entertain us all? Can he take his team closer to the total? He might not be able to win it from here because the required run rate is 16. And to do it for 7 to 8 overs, it's a little tough. A very satisfied camp, Fatah, coached by Riaz Afridi, the former Test cricketer, and as the head coach of Dera Murad Jamali accepted that they're a very good side, and that's how the last wicket fell. Wanted to go big, couldn't really time it, ballooned up, the catch taken by Naim. This is apart from Daud's innings, the rest has been an absolute display of total dominance from the Fatah region. Bowlers, they've just come out and squeezed the runs. And as Ali Yunus was talking to the head coach of Dera Murad Jamali, and he told that conditions back home do not allow them to be practicing a lot of pace, and the Fatah bowlers were quick and the ball was doing a bit, so they found it hard earlier on. It's another over bowled, a successful one. It's Khushdil Shah again, and he's been pulled towards the square leg for one. Lots of experience for Khushdil. He does a very good job with the ball in hand as well. We have seen him do the job for Multan Sultans, for Karachi Kings, and multiple other franchises around the world. 3D player, you would call, for somebody who can bat, ball and really catch well as well. And he can also hit the big ball. It's just that in his career, the amount of talent that he possessed, he could have gone a lot further with it. Yeah, once again, cutting in on the length, watching the batter till the end tells you about how observant he is while he's running into bowl. It's just that if he had developed some more shots on the offside. Oh, this has been smashed, but it's gone up very high. There's a chance, and it's been taken. Well taken, and this is Maz, the leg spinner. In the end, it went well for him and Team Fatah,
because had there been a misunderstanding, we might have seen an unfortunate collision. We have seen them in the past, not to be, thankfully. Front foot behind the line. And trying to go big, didn't get the ball in the middle of the bat. Fahad Hussain, the captain of DMJ, goes for one. 96 for 5 it is. A game that promised so much when it started has really not lived up to the expectations, as Muhammad Ali come in at number 7. First 10 overs of the game, we all thought that Dera Murad Jamali are in for a fight, but then Sarwar Afridi happened and took the game away from them. There has been no coming back from them, and now they're on the verge of the second defeat of the tournament. Khoshdil Shah, if he won't score runs, he will get you out. He's that sort of a cricketer. This one being the latest one, he wanted to go big. He had no choice but to do so. Yep. Edge not given. Yes, given. Took his time. And then decided that yes, there is an edge, because for a second I thought I've heard something. Umpire took a little bit of time and gave him out. Khoshdil Shah takes his 4th. You just cannot keep this man away from the action. This is what happened. No worries at this end. Yeah, there was a certain noise. Rehan Afridi behind the stumps, he was certain. Shahid goes for 9, 97 for 6 after 15. नए बैटर मैदान में आ चुके हैं। खुशदिल शाह छाए हुए हैं। 4 विकेट 23 रन देकर हासिल किए हैं। 97 पर 4 यकीनन ये कोई अच्छा मंजर नहीं है डेरा मुराद जमाली के फैंस के लिए, सपोर्टर्स के लिए, उनकी टीम के लिए। 15 ओवरों का खेल भी मुकम्मल हो चुका है, तो फाटा ने इस मैच पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है। सिर्फ 30 गेंदें बाकी हैं। 98 रन, जो कि एक मुश्किल तरीन काम है, वो हासिल करना है डेरा मुराद जमाली को। ऑफ साइड पर प्लेस, 1 रन का इजाफा। तो यहाँ पर गैर मामूली परफॉर्मेंस दिखाना होगी, चौके और छक्के लगाने होंगे। अगर हम देखें जिस तरीके से आखिरी बैटर आउट हुए, आगे गए, और विकेट कीपर के जो जेस्चर थे वो तो जाहिर है कि तासुब दे रहे थे कि एक एज लगा है। खुशी का इजहार किया, खुशी से उछले, और अंपायर ने ताखीर के बाद आउट थे, लेकिन बैटर समझ चुके थे, बॉलर समझ चुके थे, विकेट कीपर जानते थे कि एक विकेट गिर चुकी है। डेरा मुराद जमाली 98 पर 6, तवक्को नहीं थी, और ये टॉप एज लगा है, चौके के लिए जाएगा। ये दानिस्तान स्ट्रोक नहीं था, लेकिन इन दी एंड पता चल गया था बैटर को, जैसे ही गेंद उनके बल्ले को लगी कि ये पीछे जाएगी, जहाँ पर दूर दूर तक कोई फील्डर नहीं था। तो इस तरह बिलाखिर चौका लग गया। अंपायर्स चौके को दर्ज करते हुए एम आरिफ और उनके साथ उनके सीनियर कोलीग हैं। अगर हम इसको देखें, इसमें कोई एतमाद नहीं था। और इसी चौके की मदद से 100 स्कोर भी पूरे किए डेरा मुराद जमाली ने। स्कोर 102। अब ये 8वें नंबर पर
बैटिंग करने वाले बैटर हैं, इनसे हम ज़्यादा तवक्को नहीं कर सकते। यूज़फुल बैटर होते हैं 8वें 9वें 10वें और 11वें नंबर के भी। ये वाइट बॉल है यहाँ पर। बहरहाल कोशिश करना होगी। खुशाइन बात यह है कि डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट अब्दुल्ला खुरम नियाजी मौजूद होते हैं और जो प्रोडक्शन के रूए रवां हैं सैफ आज़म वो भी यहाँ मौजूद हैं। गुलाम अली बहावलपुर के हेड कोच हैं। बहावलपुर बड़ा नाम है और इनके साथ क्रिकेट की बड़ी कामयाब दास्तानें हैं, खिदमात हैं। टेस्ट सेंटर है पाकिस्तान का और कायदम ट्रॉफी के पहले चैंपियन भी बहावलपुर की टीम थी। और रियासत बहावलपुर हसन महमूद साहब ने क्रिकेट की बड़ी खिदमत की। तो जो फिलंथ्रॉफी है और क्रिकेट ये हमेशा शुरू से क्रिकेट के साथ साथ रही। जैसे अब हम देख सकते हैं बैंक्स हैं, ये इस गेंद को फुल टॉस को भी समझ नहीं पाए। तो ये ज़रा मुश्किल काम होगा अली के लिए, शुएब के लिए। तेज़ तरार गेंदें हैं, बॉलर छाए हुए हैं, हर तरह की गेंदें कर रहे हैं, बेहतर अंदाज से खेले। इस गेंद को ऑफ साइड पर जल्दी करना होगी और लेकिन बड़ी चाबक दस्ती से, महारत से, ये समझ बूझ से एक मुकम्मल किया। सिंगल्स तो ज़ाहिर बॉदर नहीं करेंगे फाटा को, वो फराग दिलाना अंदाज से सिंगल्स देते चले जाएंगे। लेकिन बॉलर्स जो हैं उनका जो एतमाद है, हर किस्म के तजुर्बे कर सकते हैं, आगे पीछे गेंद कर सकते हैं, तेज़ स्लो। वहीं उनके लिए हम वक्त यहाँ पर विकेट हासिल करने के मौके मौजूद हैं। जी हाँ, आज बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तमाम शोबाजात में बड़ा मुतासिर किया है फाटा की टीम ने। और बल्ला निकल गया हाथ से, क्या ये आउट होगा? फील्डर के जेस्चर तो आउट है। और जी हाँ, अंपायर की उंगली फिजा में बुलंद हुई। एक और धचका डेरा मुराद जमाली को। अब सिर्फ एक चीज है कि शायद ये ओवरस्टेप कर गए हों, उम्मीद कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं लगता। पे बॉलर ऐसे हैं जो इसके लिए जाने नहीं चाहते। अगर हम देखें बिल्कुल तो ठीक। बिल्कुल ठीक गेंद थी, लीगल डिलीवरी थी। दूसरे जावी से देखें कि किस तरीके से बल्ला भी हाथ से छूटा और विकेट कीपर के पास बैट को लगने के बाद पहुंची। तो एक और नाकाम बैट्समैन रहे शुएब अहमद, 4 रन बनाकर आउट हुए। कैच हैंड बोल्ड सिराजुद्दीन। डेरा मुराद जमाली 105 7 विकेटों के नुकसान पर। रेहान अफरीदी ने विकेटों के पीछे 4 कैचेस पकड़े। सातवें विकेट गिरने के बाद नए आने वाले बैटर हैं सलीम मल। पहली कामयाबी सिराजुद्दीन ने हासिल की। फाटा की टीम बहुत ही मजबूत पोजीशन में और फिर दूसरी फतह के नहायत ही करीब इस वक्त सलीम मल। मुश्किल सूरत हाल है। बॉल्ड हो गए। ये पहली ही गेंद को उन्होंने उठाकर मारने की कोशिश की और गेंद सीधी स्टंप के ऊपर लगी और इस तरह सिराजुद्दीन ने लगातार 2 गेंदों में 2 विकेटें हासिल कर ली हैं। अगर हम तसल्ली कर लेंगे, देख लेंगे, जाहिर है कि ये तसल्ली करेंगे अंपायर कि जब गेंद की गई तो वो लीगल डिलीवरी थी या नहीं। उसके बाद फिर बैटर आउट हुए, ये बिल्कुल दुरुस्त है, कोई इसमें शुबे की बात नहीं है। सीधी स्टंप्स के ऊपर और रुखसत हुए बैटर। तो इस तरह एक और नुकसान उठाना पड़ा है। सलीम मल आउट हुए। 105 पे 8, 16 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। रसूल बख्श बैटिंग करने के लिए आए हैं। हमारी कौमी क्रिकेट में एक सईद बख्श नाम के बड़े बड़े मोतबर क्रिकेटर थे, कारोबारी शख्सियत भी थे, मीरम बख्श थे। तो ये बख्श नाम के लोग जो हैं ये बड़े नामी ग्रामी रहे हैं क्रिकेट में। ऑन साइड पर ड्राइव, और मीरा बख्श ने तो तवील उम्र में टेस्ट मैच खेला था। रावलपिंडी से इनका ताल्लुक था। 47 साल की उम्र में
डेब्यू किया था, तो ये रिकॉर्ड जो बड़े बड़े रिकॉर्ड हैं उनमें से एक रिकॉर्ड ये भी है। अगर जिस तरीके से विकेट गिरी और उससे पहले जो एक बैट छूट गया हाथ से, फिर एक और विकेट, तो लगातार 2 गेंदों पे 2 विकेटें गिरी। खुशदिल 4 विकेटें हासिल कर चुके हैं। देखिए बड़े क्रिकेटर की ये निशानी होती है, जो ऑलराउंडर होता है, अगर वो आज बैटिंग में कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने बॉलिंग में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। 3 ओवर 2 गेंदे 24 रन और 4 विकेट। सही डेंट तो खुशदिल ने डाला है। डेरा मुराद जमाली की बैटिंग लाइनअप में इस गेंद को मोड़ दिया है लॉन्ग लेग की जानिब, एक बनाया और फील्डर गेंद के पीछे आए। जब तक वो गेंद को फील्ड करते, एक रन का इजाफा हुआ। तो यहाँ पर अब लगता है कि किसी वक्त डेरा मुराद जमाली की इनिंग्स जो है वह सिमट जाएगी। 16 ओवर 3 गेंदें हुई हैं, 8 बैटर खो चुके हैं और किसी भी बैटर ने कोई ऐसी इनिंग नहीं खेली जिसे कहा जा सके कि उन्होंने टेकअप किया है वो चैलेंज जो कि 195 रन का है। फाटा ने आज उनके बैटर्स ने धुआंधार बैटिंग की, मैदान के चारों तरफ स्ट्रोक खेले, डीप पॉइंट पर फील्डर मौजूद। तो यहाँ पर आज एक तरफा कार्रवाई हुई है अब तक, और मुझे लगता है कि इसमें कोई तब्दीली होने वाली नहीं है। रसूल बख्श 1 पर, मोहम्मद अली 5 पर। ये आखिरी उम्मीदें हैं या आखिरी एक रुकावट है फाटा की मुमकिन तौर पर कामयाबी के सिलसिले में। रन्स बन नहीं रहे, विकेटें गिर रही हैं, खड़े खड़े खेलने की कोशिश और उसमें नाकामी। तो खुशदिल शाह निप से गेंद कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छे लेफ्ट आर्मर है, बुरे नमाद हैं, वो जानते हैं कि आई एम टू गुड अंडर द करंट जो सिचुएशन है, जो स्टेट है क्रिकेट की। खड़े खड़े घुमाया स्क्वायर लेग की जानिब। यहाँ पर तारीफ करना होगी जो ग्राउंड्समैन है, बड़ी अच्छी विकेट उन्होंने बनाई है। बॉलर्स को भी मदद कर रही है, बैटर्स को भी मदद कर रही है। 17 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ। डेरा मुराद जमाली 110 विकेटों के नुकसान पर। ज़ाहिर है कि डीएमजी डेरा मुराद जमाली की जो बैटिंग लाइनअप है उसका तो हुलिया बिगाड़ दिया आज खुशदिल शाह ने। 4 विकेटें हासिल की ऊपर तले, और ऐसा सोचा नहीं था कि डेरा मुराद जमाली की जो बड़ी प्रॉमिसिंग साइड है इससे ज़बरदस्त मुज़ाहमत की तवक्को थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्रिकेट में ऐसा हो जाता है, दे शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड। और ये अपील है और काफ़ी ज़बरदस्त अपील दी अंपायर ने, हंसते हंसते आउट दिया है कि आप खुद क्यों बाहर नहीं जा रहे। अब इसमें हंसने की वजह जो है वो ज़ाहिर कुछ ना कुछ होगी, बेवजह आमतौर पे अंपायर नहीं हंसते और काम आसान हुआ है। अगर हम इस गेंद को देखें, ये लीगल डिलीवरी थी, और दूसरी तरफ से देखिए आगे गए, आउटरेज लगा, और आज कामयाबियों के मजे लूटे हैं विकेट कीपर ने भी। 5वां कैच है ये, तो 5 कैच अब तक आफाक हासिल कर चुके हैं। रेहान इज अ विकेट कीपर। आफाक को कामयाबी हासिल हुई है, तो इस तरह 9वीं विकेट गिर गई है 110 पर। बिल्कुल गैर मतवक्कुआ तौर पर आज डेरा मुराद जमाली के बैटर्स जो हैं वो मुकाबला नहीं कर सके। जो फाटा की बॉलिंग थी, नैगिंग लाइन और लेंथ थी। फिर फरहानुल्लाह बैटिंग करने के लिए आए हैं। ये डेरा मुराद जमाली के पेसर्स हैं, आज उन्होंने बॉलिंग भी की। फरहानुल्लाह ने कोई इतनी बड़ी कामयाबी उनको हुई नहीं, क्योंकि जो नीचे आप देख रहे हैं 195 रन ये फाटा ने बड़ी कामयाबी से बनाए थे। आफाक गेंद करेंगे, क्या होगा इस गेंद पर ये देखना होगा। विकेट तवातर के साथ कर रहे हैं, फुल टॉस खाता खोल लेंगे। यार सिर्फ आज दाऊद ने थोड़ा सा कार्रवाई करने की कोशिश की थी, उसके अलावा दीगर जितने भी बैटर थे वो बिल्कुल भी मुकाबला ना कर पाए फाटा के बॉलर्स का। बिलखसूस खुशदिल शाह की आज तारीफ करनी होगी, बैटिंग में परफॉर्म ना कर पाए, लेकिन जो कसर थी उन्होंने अपनी गेंदबाजी से निकाली। ये नेक्स्ट टीम है इस वक्त इंतजार करती हुई, रावलपिंडी, और उनके अगेंस्ट आज भावलपुर मध्य मुकाबल उतरेगी।
रावलपिंडी और बहावलपुर ये बड़ी टीमें हैं, पुरानी टीमें हैं और इनको जाहिर है कि तवक्कुआत होंगी। और आज ये दूसरा मैच उम्मीद है कि बड़ा कांटेदार होगा। ये देखिए जिस तरीके से आखिरी गेंद को ऑफ साइड पर प्लेस किया, बाल बाल बच गए। गेंद अगर स्टंप्स के ऊपर जाके लगती है, अगर एम सही किया था लेकिन वो एंगल ऐसा था कि सिर्फ ऐसी सूरत में आपको 1 या 2 विकेटें नजर आ रही होती हैं, वो मुश्किल से ऊंचा खेलने की कोशिश और इसमें नाकामी हुई है। फरहानुल्लाह बुनियादी तौर पर तो पेसर्स हैं, फास्ट बॉलर हैं। जो तमाम फास्ट बॉलर्स होते हैं उनको बैटिंग करने का शौक़ होता है। बड़ी ज़ोरदार हिट लगाने की कोशिश की थी, वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ कर लें रुखसत होने से पहले, क्योंकि अब ये आखिरी विकेट है जो कि हासिल करनी है फाटा को। डेरा मुराद जमाली 112 पर 9 बैटर आउट। अब तक जितने मैच हुए हैं वो दिलचस्प हुए हैं, सनसनीखेज हुए हैं। डेरा मुराद जमाली की इसकी टीम से तवक्को थी कि वो अच्छी फाइट बैक करेंगे, लेकिन ऐसा आज हुआ नहीं। अब T20 में बड़े बड़े मार्जिन से भी टीमें हारती हैं, एक तरफा मैचेस भी होते हैं। वो इसलिए हम एक तरफा कह रहे हैं कि 20 ओवर्स का खेल जो है इसमें फिर 10 विकेटें हासिल करना होती हैं। और आज फाटा ने मैदान मारा है और छा गए, हावी हो गए। खुशदिल शाह ये जिस तरीके से बल्ला नहीं ला सके गेंद के पीछे, इस पे बॉल भी हो सकते थे, एज लग के स्टंप्स पे भी हिट हो सकता था बॉल। और बहुत कम T20 क्रिकेट में हमने देखा है कि पूरी 10 विकेटें जो हैं उनको मौका मिल जाए बल्लेबाजी करने का, और आज शायद ऑल आउट हो सकती है डेरा मुराद जमाली की टीम। ये अच्छी शॉट, लेकिन गैप ढूंढने से कासिर रहे। बॉल जाएगा सीधा डीप पॉइंट पे खड़े हुए खिलाड़ी के पास। 18 ओवर के इख्तिताम पर डेरा मुराद जमाली 114 9 विकेट के नुकसान पर। गुलाम अली भी यहाँ पर मौजूद हैं, बहावलपुर के हेड कोच, और उनसे हम रब्ता करेंगे, उनसे बातचीत दिलचस्प होगी। बड़े थिंकिंग क्रिकेटर रहे हैं। बस एक ज़माने की बात है जब ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। बहरहाल इस दौरान खेल शुरू हुआ, ये तवातर के साथ हुआ है। बैट और बॉल का मिलाप ज़रा हुआ है लेकिन कम हुआ है, और जिस तरीके से बल्ले पर गेंद लगनी चाहिए थी आज डेरा मुराद जमाली के जो टॉप ऑर्डर्स हैं, ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पर अभी रसूल बख्श और फरहानुल्लाह नेचुरली स्ट्रगल कर रहे हैं। सिराज की नबी तुरी बॉलिंग है, टाइट लाइन और लेंथ है, जिस तरीके से बैटर नसीब हुए। रेहान अफरीदी खासी तवज्जो का मरकज़ रहे हैं इस मैच के अंदर, और जिस तरह की डाइव्स लगाई हैं उन्होंने, जिस तरह गेंदों को पकड़ा है, 5 कैच, ख्वाब होता है किसी भी विकेट कीपर का। अब ये आइडियल गेंद थी रसूल बख्श के लिए, वो ऑफ साइड पर खेलना चाहते थे। कोई ऐसी गेंद नहीं थी जो कि ज़रा मुश्किल हो। और नाजरीन के लिए बताया चलो कि 5 कैचेस के साथ साथ एक स्टंप भी किया है रेहान अफरीदी ने, तो एज अ विकेट कीपर एक बहुत बड़ा दिन होगा और एक यादगारी लम्हात है इनके लिए। यहाँ पर गेंदों का मुआयना किया जा रहा है, और अच्छी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब जो बॉलों की तैयारी है उसकी खुद निगरानी करता है, और इस गेंद को जोरदार तरीके से खेल दिया है ऑफ साइड पर, और गेंद जाकर गिरी है बाउंड्री लाइन से बाहर छक्के के लिए। तो ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि अब काफ़ी देर हो चुकी है। तवातर के साथ अगर शुरू में कुछ इस किस्म की कोशिशें होती, कुछ अटैम्प्ट्स होती, तो फिर हम कह सकते थे कि शायद डेरा मुराद जमाली के बैटर्स कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं। अगर चाहिए दिलकश शौक था, अच्छा लगा देखकर। या मिड ऑफ के फील्डर अंदर की तरफ थे, अच्छी शॉट, अगेन उसी जोन में टारगेट किया, लेकिन इस मरतबा डाइविंग एफर्ट, रुकावट साबित किया खुद को और बाउंड्री के दरमियान। स्लिप में कोई फील्डर नहीं है, फील्ड काफ़ी फैली हुई है। तो हम बात करते हैं ना कि थोड़ी देर के लिए चमक रहे हैं, छक्का भी लगाया है बैटर ने, लेकिन
कोशिशें मुतवातर के साथ करनी चाहिए थी और ये बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था। क्रिकेट में आप कोई चीज़ रफ़े आखिर नहीं होती, आप इंतज़ार करते रहते हैं, बाज़ का ड्रामाई अंदाज से नक्शा बदल जाता है। अच्छी बात यह है कि गाय गाय हमने देखा है कि लोग आकर लुत्फ़अंदोज़ रहे हैं इस माहौल से। दो चीज़ें, एक तो क्रिकेट है और उसके साथ साथ फिर माहौल है चकाचौंध, और उसके साथ साथ जो रंग बिरंगी किट्स हैं खिलाड़ियों की, नामी ग्रामी क्रिकेटर हैं, लाइव ब्रॉडकास्ट भी है, डिजिटल स्क्रीन भी है, तो ये सब कुछ जो कुछ है ये एक बेहतरीन तफरी है। आउटडोर बेहतरीन तफरी है, बेहतरीन मौसम भी है। प्लेस कैच गेंद को ऑफ साइड पर। अब यहाँ पर लोग गद्दाफी स्टेडियम में आना चाहते हैं, इसको देखना चाहते हैं कि अंदर से कैसा है, और ये एक आइडियल मौका है उन लोगों के लिए जो कि इस मंजर से लुत्फानंदोज़ होना चाहते हैं। 19 ओवरों का खेल मुकम्मल हुआ, डेरा मुराद जमाली 120 9 विकेटों के नुकसान पर। बड़े मुतजस्सिस चेहरे हैं और ऐसे लगता है जैसे एयरपोर्ट के बाहर लोग खड़े अपने प्यारों के इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन ये क्रिकेट का मैदान है। यहाँ पर प्यारे क्रिकेटर हैं, हर दिल अजीज़ क्रिकेटर हैं, स्टार्स हैं, लोकल स्टार्स हैं, इंटरनेशनल स्टार्स हैं। पस मंज़र में आप गद्दाफी स्टेडियम का सदर दफ्तर देख सकते हैं। ऊंचा शॉट है, इसमें टाइमिंग है या नहीं इसका अंदाज़ा अब आपको होगा। गेंद सीधी लॉन्ग ऑफ पर गई और इस तरह कामयाबी हासिल कर ली एक बड़े मार्जिन के साथ। यहाँ पर आज फाटा ने और चकतरफा कार्रवाई हुई, डोमिनेट किया बैटिंग में, बॉलिंग में, और फाटा को में एक शानदार मुबारकबाद मिलनी चाहिए जिस तरीके से आज उन्होंने रन्स के अंबार लगाए और फिर उनके बॉलर्स हावी हो गए। खुशदिल शाह ने कमाल बॉलिंग की, 4 विकेटें हासिल की और विकेटों के पीछे बेचारे के विकेट कीपर ने बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस दिखाई और 5 शिकार किए मजमूई तौर पर, जिसमें 4 कैचेस और 1 स्टंप था। एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए जो फाटा के क्रिकेटर्स हैं, लंबे तड़गे हैं, सेहतमंद हैं, ये एक खुशाइन बात है पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए। और ये जो आपस में तालमेल है, एक दूसरे को मुबारकबाद देना है, आपस में भी टीम अगर एक दूसरे को अच्छे तरीके से मुबारकबाद देती है खुले दिल के साथ, तो ये ज़ाहिर है कि एक यूनिट की और एक प्यार मोहब्बत भाईचारे की फ़िज़ा कायम करती है। ये मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से आए हुए नौजवान हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, सोशल मिंगलिंग होती है, और इसका एक समाजी और दायरे के माशरती पहलू है क्रिकेट का जो कि बड़ा शानदार है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज़ को यकीनी बनाता है कि फाटा हो या डेरा मुराद जमाली हो, इनको इक्वल टर्म्स और मौके मिलने चाहिए। और इस मैच में हमने देखा गो कि फाटा ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है, लेकिन डेरा मुराद जमाली का आज दिन नहीं था। आप इतना कह सकते हैं, या आप ये नहीं कह सकते कि ये टीम कमज़ोर थी या इसमें सलाहियत नहीं थी। कभी कभी ऐसा हो जाता है बड़ी टीम में, जो आपने वर्ल्ड कप में देख लिया, ऑस्ट्रेलिया जो है उसको नाको चने चुपवा दिए, श्रीलंका अगरचे कमज़ोर टीम नहीं थी लेकिन हॉट फेवरेट थी ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर भी आज हम देखें तो फाटा दे प्रूव देमसेल्फ टू बी टू गुड अगेंस्ट डेरा मुराद जमाली। आज डेरा मुराद जमाली का दिन नहीं था और 195 रन बन गए और फिर खुद ज़ाहिर है कि एक बड़े शगाफ से वो बंडल आउट हो गए, एक दूसरे से गले मिले जा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, इसको बार बार दिखाना चाहिए। बड़ा अच्छा लगता है देखकर कि दोनों टीमों के खिलाड़ी जो हैं वो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से मिल रहे हैं, और हारने वाली टीम जो है उसको जीतने वाली टीम जो है फाटा डेरा मुराद जमाली के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रही है, उनसे मिल रही है। तो जो शिकस्त का एक दाग होता है वो मिट जाता है। ये नहीं कि वो लुटियाँ डालना शुरू कर दें या ओवर जॉयड हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। क्रिकेट का जो मुकाबला है वो मैदान में होता है, बाहर सब दोस्त होते हैं, फ्रेंडशिप होती है। तो हम हाईलाइट्स देखेंगे, बड़ी शानदार हाईलाइट्स हैं फ्रॉम दी फाटा पॉइंट ऑफ व्यू। विकेट कीपर को देखें, वो हम वक्त होशियार रहे, चौकस रहे, गाहे गाहे शॉट्स लगी, लेकिन ये तादाद में और बल्कि किसी हद तक मैं कहूँगा मेयार में ही बहुत कम थी। उनको ज़ोरदार चौके और छक्के लगाने चाहिए थे डेरा मुराद जमाली के बैट्समैन को, उनमें सलाहियत मौजूद है। हमने गाहे गाहे इसको देखा, ये स्टंपिंग चांस था और ज़्यादातर गेंदें जो हैं वो खेलने में नाकाम रहे। आज जो शॉट्स के लिए उन्होंने डेरा मुराद जमाली के बैटर्स ने, बीच में तासुर मिलता था कि वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फील्डिंग का मैार, ग्राउंड फील्डिंग का मैार बहुत अच्छा रहा। ये देखिए जो विकेटों के पीछे चाबक दस्ती थी और रेहान छाया रहे। आप देखें विकेटों के पीछे उनकी कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। ये सीधी टॉप पर फील्डर के हाथ में, तो इस तरह इस मैच में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है आज फाटा ने और डेरा मुराद जमाली
की टीम को 120 पर ढेर कर दिया। 52 रन बनाए दाऊद ने, 20 रन बनाए नासिर ने। उसके बावजूद हम देखें कोई खिलाड़ी जो डबल फिगर दोहरे हंसे में दाखिल नहीं हो सका। एक्सेस के साथ रन थे। 19.1 ओवर में 120 रन बनाकर डेरा मुराद जमाली की टीम, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, ढेर हो गई। उनका शराजा बिखर गया और इसमें खुशदिल शाह जो है जा बजा आपको नजर आएंगे। उन्होंने आज बड़ी उम्दगी से बॉलिंग की और 4 विकेटें हासिल की। 28 रन देकर 3 विकेटें हासिल की सिराजुद्दीन ने 4.1 ओवर्स में। तो ये एक तरफा मैच था। कुछ मैचेस जाहिर है कि ऐसे होते हैं और ये मैच जो था मुझे लगता है कि इस पे शिकस्त का शिकार जो था बहुत ज़्यादा बड़ा वसी था। ये मैच समरी है। ये फाटा ने बनाए 194 रन, इनमें नुमाया रहे रेहान अफरीदी 76 रन बनाए, सरवर ने बनाए 63 रन, नईम ने बनाए 21 रन, डेरा मुराद जमाली दाऊद ने बनाए 52 रन और नासिर ने बनाए 20 रन। बॉलिंग की अगर बात करें तो सलीम ने 2 विकेट्स हासिल किए, लेकिन काफ़ी महंगे साबिर है। शाहिद ने भी 2 खिलाड़ियों को आउट, लेकिन 50 रन दे दिए। फाहद ने 1 विकेट हासिल की। खुशदिल शाह जो फाटा रीजन के हैं उन्होंने 4 विकेट्स हासिल की। सराजुद्दीन ने 3 और खुबैब ने 2 विकेट्स हासिल की। 74 रन का फाटा के नुक्ता निगाह से एक बहुत बड़ा मार्जिन है। काफ़ी एकतरफा कार्रवाई हुई जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ और इसमें डोमिनेट किया आज फाटा ने। अगला मैच जो है वो रावलपिंडी रीजन वर्सेस बावलपुर के दरमियान होगा। ये ज़ाहिर है कि बड़ा ज़बरदस्त टाकरा होगा कि दोनों पुरानी टीमें हैं, नामी ग्रामी टीमें हैं, नामी ग्रामी क्रिकेटर हैं और यहाँ पर जो कुछ होने वाला है वो आपके जज्वी तौर पे सामने है। प्रेजेंटेशन होगी, लेकिन इससे पहले कि प्रेजेंटेशन शुरू हो हम एक ब्रेक लेंगे।
Yes, another fabulous performance by Team Fatah as they beat Dera Murad Jamali by 75 runs to get the second win of ABS Developers National T20 qualifiers. And we are all set for the presentation ceremony. In the presentation party, we have the pleasure of having Mr. Tariq Sarwar, who's the member Board of Governors, Pakistan Cricket Board. Now time to talk to the losing captain first for Dera Murad Jamali, Fahad Hussain. टफ लक बट पैचेस में टीम अच्छा खेल रही है जिस जो एक सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए कैप्टन के लिए। जी जी बिल्कुल फिर वही बात करूंगा कि नए लड़के हैं, यंग लड़के हैं, अंडर लाइट इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो वो चीज़ें काफ़ी हमें जो है ना हिट कर रही हैं। और दूसरी बात थ्रू आउट वही बात आ रही है पिछले मैच की तरह कि हम फिनिश अच्छा नहीं कर रहे हैं, मोमेंटम हाथ से फिसल नहीं दे रहे हैं। इस चीज़ को आप बाखूबी जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि जब आप यहाँ से वापस जाते हैं अपने रीजन में, क्या इन चीज़ों पे काम होता है या वैसे ही आ जाते हैं? पहली बात तो ये है कि वहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है जिस तरह यहाँ पे विकेटें हैं, वहाँ पे ऐसी कोई विकेटें ही नहीं है, स्लो विकेट हैं, हालांकि सीमेंट विकेट भी नहीं है। तो अंडर लाइट मेरे ख्याल में यहाँ से जाने के बाद मुझे नहीं लगता है कि हम में से कोई भी लड़का वहाँ पे बलूचिस्तान में अंडर लाइट खेला हो, वहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ हैं ही नहीं, तो उसकी भी बहुत जो है ना हमें कमी है। चलिए, आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपके इन बातों के बाद शायद अब डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नज़रसानी करेगा, क्योंकि आपकी टीम में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत एनर्जी है, जो कि खुशाइन बात है। नहीं इंशाल्लाह, ज़ाहिर सी बात है, डायरेक्टर साहब से भी बात हो रही थी इसी मामले में। इंशाल्लाह पीसीबी से यही उम्मीद है कि वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, हमारे सूबे के लिए कुछ अच्छी चीज़ें डेवलप करे जिससे हमारी क्रिकेट और निखार आए। एक मैच अभी भी बाकी है इस टूर्नामेंट का, तो 2 मैचेस बाकी हैं आपके, तो आप काफ़ी कुछ है जितना सीख के जाएंगे यहाँ से। इंशाल्लाह, क्योंकि चीज़ें 2 हैं, या तो आप हारते हैं या तो सीखते हैं, तो मैं समझ रहा हूँ ये हमारे लिए लर्निंग प्रोसेस है। इंशाल्लाह इसी से लर्न करके आगे जो है ना चीज़ें बहुत बेहतरीन करके आएंगे इंशाल्लाह। Thank you very much. All the best for the remaining 2 games. Thank Fahad you. Hussain, the captain of Dera Murad Jamali. Now time to talk to the captain of Fatah, who happens to be the player of the match also, Mr. Sarwar Afridi, for his 63 runs of 31 deliveries. I would request Mr. Tariq Sarwar, he will hand over the check of 25,000 to Sarwar Afridi, who decides to dedicate his award to Rehan Afridi for his brilliant inning, rightly deserving. Rehan scored runs, got 5 catches behind the stumps also. Captain leading from the front with the bat and also with the captaincy. चलिए, दोनों से बारी बारी बात करते हैं। रेहान, आपसे भी बात कर लेते हैं, पहले आपसे बात कर लेते हैं क्योंकि आप प्लेयर ऑफ द मैच है, कैप्टन से बाद में बात करेंगे। टीम मुश्किलात में थी जब आप अंदर बैटिंग कर रहे थे, तो क्या थॉट प्रोसेस था, किस तरीके से इनिंग को लेकर चलना है? हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा बॉल बल्ले पे सही नहीं रहा था स्टार्ट में, तो जिससे 2-3 हमारे जल्दी आउट हुए, तो जिस तरह कप्तान आया और उसने कहा कि थोड़ा सा टाइम लेके खेलेंगे और एंड तक जाएंगे तो इंशाल्लाह स्कोर हो जाएगा, तो इसी तरह एंड तक गए और स्कोर हो गया। हमने देखा कि पहले 10 ओवर अप्रोच थोड़ा अलग थी, लेकिन आखिर में जब आप सेट हो गए, बॉल अच्छे पे बल्ले पे आना शुरू हो गया, तो बड़ी हिट्स भी खूब लगाई। बिल्कुल, स्टार्ट में यही कब हमारे 3-4 जल्दी आउट हो गए, तो कप्तान से यही बात हुई है कि थोड़ा सा टाइम लेके एंड तक जाएंगे, और वही हुआ और अच्छा टोटल मिल गया। और एज अ विकेट कीपर बिहाइंड द स्टंप हमेशा ही बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं, आज भी शानदार कारकर्दगी रही पीछे। बिल्कुल, विकेट कीपिंग पे थोड़ा सा काम भी किया है 1-2-3 सालों से, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो रहा है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर रिमेनिंग गेम्स रेहान आफरीदी। नाउ द कैप्टन, प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस थी वैसे आपको, लेकिन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट आपने ज़रूरी समझा कि रेहान को अवार्ड दिया जाए। जी बिल्कुल, पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि हमने मैच जीत लिया। ये फर्स्ट टाइम था फाटा से लीडिंग का, तो मैं आई थिंक उनका बनता है क्योंकि उनके 80 रन भी थे और 5 आउट भी थे, तो मैंने सोचा रेहान का बनता है, तो इसलिए मैंने उसको डेडिकेट कर दिया। एज अ कैप्टन थोड़ा कंसर्न हुआ आपको क्योंकि पहले 10 ओवर में 4 विकेट्स आपकी गिर गई थी, वो तो आपकी और इनकी पार्टनरशिप ना लगती तो शायद रिजल्ट मुख्तलिफ हो जाता। जी बिल्कुल, प्लान यही था। जब मैं गया तो रेहान से यही बात हो रही थी कि हम 14-15 ओवर तक जाएंगे, उसके बाद प्लान करेंगे। जो मैनेजमेंट से भी प्लान का वो आ रहा था, तो उस पे चले हम, कामयाबी मिली। और खुशदिल शाह के बारे में क्या कहेंगे? वो रन्स नहीं करते हैं तो विकेट्स हासिल करते हैं, बहुत ही हैंडी क्रिकेटर हैं टीम में होने के लिए। जी जी बिल्कुल, ऐसे प्लेयर जब किसी टीम में हो ना, तो कुछ भी कर सकता है। फील्डिंग में भी उसने अच्छा किया, बैटिंग में तो अच्छा नहीं किया उसने, नहीं हुआ, बैड लक रहा, लेकिन माशाल्लाह बॉलिंग में भी उन्होंने बहुत अच्छा किया। 2 विन्स आउट ऑफ 2 विन्स, अब 2 गेम्स, तो अब आप कॉन्फिडेंट है एज अ टीम अगले राउंड के जाने के लिए?
जी जी बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह जिस तरह हम खेलें पॉजिटिव खेलेंगे ये नहीं देखेंगे सामने कौन है तो इंशाल्लाह पॉजिटिव हो जाएंगे इंशाल्लाह Congratulations once again and all the best for the remaining games. थैंक Sarwar यू Afridi, थैंक यू the captain of FATA, Sarwar Afridi. And now it's time for the next two games. The action will return in a few minutes. It's Bahawalpur taking on Rawalpindi. So see you very soon. That will be a boundary. And 50 to Rehan Afridi. As he brings up his 50 also. Very high. There's a chance, and it's been taken. क्या ये आउट होगा? फील्डर के जेस्चर तो आउट है और जी हाँ
G. ABS Developers National T20 qualifiers. It's match number 8, Pool B. Rawalpindi region taking on Bahawalpur region. Live from Gaddafi Stadium, Lahore. The two teams were warming up earlier, and we'll quickly go down to Ali Yunus, who is with the two captains for the toss. Right, match number 8 of ABS Developers National T20 qualifiers. It's Rawalpindi taking on Bahawalpur for the first time they're in action. I've got the two captains alongside me, Haider Ali for Rawalpindi and Imran Randhawa for Bahawalpur. Mr. Iftikhar Ahmed, match referee, all in readiness. Randhawa, or no, it's Haider Ali who's got the coin. Tails is the call. Heads it is. Haider Ali has won the toss. जी सर बैटिंग करेंगे पहले पिच कैसा लग रहा है सबसे पहले तो इसकी बात होनी चाहिए आई थिंक पिच काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि लास्ट मैच भी हुआ है तो पहली इनिंग में 195 हुआ तो आई थिंक हम भी हमारी बैटिंग थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और तो कोशिश करेंगे पहले बैटिंग करने की थोड़ा मायूस हैं कि पहला मैच आप हार गए क्योंकि वो जो एक टसल थी आपकी और फाटा में से एक ही टीम आगे जाएगी तो एज अ टीम क्या माहौल है नहीं बिल्कुल पहला मैच हमें जीतना चाहिए था जैसे हमने उनके लिए आउट कर दिए थे तो हमें वो मैच जीतना चाहिए था लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं जीत सके पार्ट ऑफ गेम है तो हम हर मैच को न्यू मैच लेके समझेंगे और अपने कोशिश करेंगे आज का मैच अच्छे रन रेट मार्जिन से जीतें तो क्या आपको लगता है कि इस मैच में अलग करना चाहिए जिसकी वजह से पिछला मैच हार गए थे कोशिश करेंगे कि हमारी बैटिंग पे पार्टनरशिप ज़्यादा हों तो उससे हम हाई स्कोर टारगेट दें तो कोशिश यही है तो इंशाल्लाह आगे बाकी टीम में कोई चेंज नहीं सेम टीम के लिए ऑल द बेस्ट हैदर अली थैंक यू इमरान रंधावा पहला मैच इस साल नेशनल T20 का कैसा मोराल है क्या टीम में लग रहा है जी सबसे पहले तो अल्लाह ताला का नाम लेके शुरू करते हैं अल्लाह पाक बेहतर करे टीम भावलपुर के लिए और हमारे लिए तो टीम तो हमारी बहुत बैलेंस है 4 डे के लड़के खेले हैं 4 डे में भी परफॉर्मेंस की है तो लास्ट ईयर T20 खेले हैं यही लड़के थे लास्ट ईयर जो खेले हैं इस साल भी वही लड़के हैं तो अच्छी टीम है इंशाल्लाह अच्छा खेलेंगे अभी तक के मैचेस देखें आपने जो यहाँ इस पिच पे हुए स्पेशली टॉस आप हारे हैं बॉलिंग करनी पड़ी पहले जी टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बताता तो मैं टॉस जीतता तो मैं भी बैटिंग ही करता पहले मगर हमारी बॉलिंग माशाल्लाह अच्छी है तो इंशाल्लाह 140 150 पे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इनको All the best Imran Randhawa for the game. Thank you Ali bhai. Right, the news from the toss is that Rawalpindi's captain Haider Ali has won the toss and decided to have a bat first. Yeah, very picturesque night here at Gaddafi Stadium. And the toss is walking in as Bahawalpur and Pindi take on each other. Pindi winning the toss, Captain Haider Ali calling it and electing to bat first. And both the captains at the toss saying that they wanted to bat first. One says his batting is the main strength, the other one says bowling is good. But they both wanted to bat first. And in the huddle now, Team Bahawalpur, final talk, pep talk being given to the boys, making them remember the plans. And all the plannings been going through. Now is the time to do it. And these are the two batters, the two experienced batters. It's Yasir Khan and Nasir Nawaz. Yasir Khan, the man who's been part of the PSL for Multan Sultans. He's performed well every now and then. 100 in the final in the Champions Cup T20. And Nasir Nawaz is somebody who's been around long enough, and it's time to fly higher. And these are the teams: Zishan Malik, another experienced player, Yasir Khan, Nasir Nawaz, Haider Ali, Mubassir Khan, Taimur Khan, Mehran Mumtaz, Abdul Qadir, Jadad Khan, Kashif Ali, Mohammad Nabil. So about 7 players who've represented Pakistan at different levels. Bahawalpur region, Mohammad Sudais, Mohammad Amar, Ali Fazal, Shahid Mirani, Mohammad Umair, Imran Randhawa, the captain, Mohammad Akram, the wicket keeper, Mohammad Junaid, Mohammad Azab, the fast bowler, left arm quick, Ali Shabir, the right arm quick bowler from GIC. It's going to be Yasir to take strike.
as I welcome Mr. Ali Yunus, who's rushed up after the toss, had a quick dinner, and now is ready to join us. Welcome, Ali. Thank you very much, Mr. Salman Butt. Just catching up on my breath. Nasir Nawaz. Take your time. Nasir Nawaz is on the non-striker's end. He spent quite a bit of time in the previous game. He didn't look in rhythm in the previous knock, but maybe that spent time bears the fruits in this game. It's Mohammad Azab, this boy playing PSL for Lahore Qalandars, and they speak very highly of him. Somebody who can bowl quick in-swingers, and we know that left-armers who bring the ball back into the right-handers can be very dangerous. Yeah, straight away looking to bowl it full, trying to extract some swing if available, and played away to backward point. No run of the first ball. Yeah, Yasir Khan, as you suggest, as you said earlier, that he represented Multan Sultans in HPL PSL, and we've seen him in various tournaments, Salman. In fact, at Ghani tournament also, when he scores big. He scores hundreds in this format. So he has a habit of scoring big, and Rawalpindi would want that him to go big. He's off the mark with at least a couple, if not more. Inside edge and the ball going in the gap, getting him a couple to start off with. Yasir and Pindi are off the mark, 2 for none. It was a second ball of the over, and very rightly you mentioned whenever you see Yasir scoring, he scores big. He has that tendency of converting runs into hundreds, but it's been quite some time now since we have seen one of those big knocks from him, and it would be a good time to get himself and his team going if he can repeat one of those innings over here. This is good areas from Azab. Yasir scored a couple of hundreds in the Ghani Glass cricket tournament. Then he scored 100 in Kashmir League as well, and National T20 too, and then in the final of the Champions Cup T20. So he is somebody who has this capability of putting up a big show. Beautifully driven. Glorious stuff this. Right out of this cruise, and not a man moved. 4 to Yasir and Rawalpindi. Yeah, that's superb batting. Very stylish, very effective. Yasir Khan just waited enough and then lean into it. High elbow, weight, transfer. Wonderful. Great start for him and Rawalpindi. They won the toss, batted first. That's a good leave also. It's a perfect example, Yasir Khan, and that shot that he played, Salman. He scores big hundreds without being a slogger. He plays the proper cricketing shots. Absolutely, Ali is one of those who plays most of his cricket correct. And he looks quite balanced while hitting the ball, as we saw in that drive. It was head on top of the ball, knee bending in the stroke, good arm extension. Let's hope that he carries on. This time around, he's just pushed one and ran straight away. So good hustle between the wickets over here. A quick single to finish the over. 7 after the first one, Rawalpindi. Mohammad Basit.
Ghulam Ali, the coach, I was having a word with him before the match. He said, our fast bowling is to look for. We've got some quality fast bowlers. Azab, we know of him. Now it's time for Basit to shine. Some swing in the air. That's good. A good start from Basit. That's what you want to see. Once again, just pushing and running and making it easily. So both the batters look to have good understanding out of the blocks quickly. Have a look at this. Didn't go where he intended, but straight away, good call and good response from the other end. Nasir Nawaz. Wow. Sees the width, flashes at it, doesn't make any contact. Yeah, that's what he does. He sees it, hits it, or look to hit it at least. That's what he does. It's so unfortunate. Two of the best sides of the tournament, they're in the same pool. Fatah and Rawalpindi, both very strong teams. And only one will go to the next round. Great shot. That's some shot from Rasid Nawaz. Just waited for it. Strong wrist coming into play, and the placement too. High class stroke that. Ball coming in with the angle. The left armers that create this angle. Ball swinging back into the right-handers, and it has been taken in front of the pad. And as you just mentioned, strong wrists. Gets the ball away to the boundary. This time down the ground, the intention's very clear. And once again, a quick single. So Rawalpindi starting off very positively. Talk about the format, as you just mentioned that one team. So if there's one team to come out of every group, and then two to go into the next round, then what's the point of final? Whoever tops, automatically they go into the next stage. So it may be a better idea to have a semi-final and maybe then make a move so that two finalists go up to the next round. Maybe, we don't know. Yeah, that's a brilliant idea. Why not? It will just keep two teams interested from each group. Because at the toss, Haider Ali was quite dejected. He was disappointed that after just losing one game, and that of the big one, we'll come back to it, 1195 runs for Yasir Khan. And he was of this opinion that we just lost one game, and that to the big game. And we almost cannot qualify because Fatah looks good. Unless mishap happens with Fatah, it seems like there will be a team hard to beat. 2 done, 15 for none. Field umpire with Mohammad Arshid, the two officiating umpires. TV umpire, Mr. Faisal Afridi. Fourth umpire, Mr. Kamran Khalil, officiating this game. It's too early. Nasir Nawaz is just backing away, trying to create room, and the ball on both occasions followed him. He's already bowled the wide, and that too because he was swallowing the batter and went too far with it. And now this time around, cramps the batter for the room. But having seen how far Nasir Nawaz went, even if he bowled straight into the stumps, it would be hard for Nasir Nawaz to get back to it, the ball.
Yeah, this is good. Tucking him up for the room, and the length also short of a length. Not allowing the batter to free his arms. Imran Randhawa is a very experienced campaigner, played lots of cricket for Suigas and Bhawalpur, and he has featured in numerous tournaments at national levels, and he's somebody who's done well. Yeah, this time around he had the width, went after it. It was there to be taken, but no connections, and Nasir will be disappointed. Yeah, Imran Randhawa is a very smart operator. Sometimes I do get a feel that teams have not quite utilized him or utilized his talent. He's a very handy batter, can bowl well also with the new ball and the old ball. Peshawar Zalmi he played for in HPL PSL. But since then, teams have not really trusted his talent. It's unfortunate. Look at the swing again in the air. He's appealing for it, but he's not going to get that. So he's a better cricketer than what people think of him. Imran Randhawa. Then there are others who've really stuck to where they were from the start. Nasir Nawaz looking to go across the line, not succeeding. So he is still rusty. He's not getting the kind of flow that you would like a T20 opener to have in a power play. We know that he has the capability, but it's just not happening for him. This time it's the outside edge, and once again an educated one goes in the gap, gets to the boundary, and the latest fashion, the third man up in the ring. An MBA edge, as Salman Bhatt says, an educated one, where the edge knows where exactly to go. Good decision making. Education helps it. There was a fielder placed at the third, but it went right between the two, keeper and the third fielder. Hope this edge might breaks the shackles for Nasir Nawaz, and he gets going, because at the moment he's clearly struggling to find the mojo. Still not timing it properly. Straight to the fielder. 3 overs done, 20 for none. Yeah, Bawalpur playing their first game of the tournament on the 4th day of the tournament. Another huge opportunity for that region. Oh, that's beautifully bowled. It's teams like Bawalpur, there are Murad Jamali, Ladkanas, Azad Jammu Kashmir, they're all young sides at this level, been given the opportunity. The best they can do is improve with every game. At the presentation, Azad Jammu Kashmir's captain, I've really felt for him when he said that we don't have many facilities back home. DMJ, sorry. In fact, we don't have a single ground, Salman, with lights on. So the boys have never played under lights. All is this tournament when they come here and play a tournament under lights.
And they're a very good side. They're a very energetic side who's got lots of potential to improve. Yeah, I mean, grounds should be available to all children. And this is something that should happen across board everywhere. The access of the youth to the sporting arenas, to the grounds, the access to the healthy activity is a must. They built the nations wonderfully, pulled across, and just for a one, there was a fielder at the back. These days, there are ample of floodlights in the big cities. Every other ground has floodlights. I remember playing, first time ever under lights was playing the final for Lahore in under 19 grade 1 championships, and it was right here in the Gaddafi Stadium versus Karachi. That is the first time I played under lights in a game. And this is well played. It crammed him for room, but he really managed the ball very well. Nasir Nawaz just tapping on the top of the ball very late underneath his eyes. Beautifully played that. .26 they get to. Just have a look at it where the bat meets the ball. Just opening the face of the bat enough and delaying the stroke to hit through this gap. This time, bottom of the bat, but they will get 1 run. Nice. Good job, Basit. Good ho gaya, Basit. Lovely. Yeah, both not at their best at the moment. Was Yasser and Nasir. Yes, they have scored runs, but not what we expect of them. Just one quality shot from Yasser and one from Nasir. Those two boundaries. Again, not chance, opportunity, not availed. Well, at the moment, both these openers, Nasir and Yasser, are running for everything. They haven't missed a chance. In fact, this last one could have been a close call had the ball hit directly. And this must be a bit painful. Hit him on the lat and barely in. He would have been. Nasir 15 of 12, Yasir 10 of 11. The ball seaming back in, and that is where many batters have found it difficult to hit, because you just cannot hit through the line over here. The ball does do a bit, so you have to be technically tight to meet the ball on regular basis. 4 gone, 28 for none. Right, a big shout out to ABS Developers for sponsoring this event. World's first Sharia compliant. Just like that, they're as good as this shot. He's thumped it over mid-on for 4. He looks so elegant when he's on song and looking to score runs. Yasir Khan for you. Beautifully struck that stroke, taking it off a length and depositing it close to the boundary over the head of mid-on. Yasir now 15 of 13. He can score pretty quickly. At the moment, I think this is just the initial look. One bounce, that's a boundary. So along with the ABS Developers, the other sponsors, the University of Lahore, Pakistan's largest university in private sector, officially confirmed boundary by the umpire Ali Haider. He used to be the under-19 captain of Pakistan
in his younger days. In mid-90s, we are being told. So well done, sir. It's not an easy thing to do, to achieve, to be a Pakistan captain at any level. This is Sudesh wearing jersey number 46. He's a good little player, left-handed, can be very explosive as well. He was one of the captains. In fact, they ended up winning the tournament in the GRT. Captain of Ishal Associates. And there's another example of the bounce and carry available. And sometimes this happens because players are not used to this kind of bounce, so they bang the ball in too short, and then it's called a wide and one of the over. Yeah, if Imran Randhawa can bowl a bouncer of this height that goes over the head of the batter and the wicketkeeper catches it above his head, expect a lot of bounce from the surface. Because, yes, he's a good bowler, but he doesn't have much pace, or he's not tall enough to get or extract any bounce. And if he can bowl a delivery like that, boy, you're in trouble as a batter. But full toss. Very lucky that it didn't go in the gap. Junaid was in the way. Very similar sort of inning from both the openers. Nasir Yasir, 15-15, 14-13, the deliveries that they have played. Yeah, sponsors, they are such a huge part of any sport. And thank you, ABS Developers, University of Lahore, both for sponsoring this event. Great bounce again. Great carry. Imran Randhawa is bowling some bullets, some rockets. Mr. Ghulam Ali, the head coach of Bahawalpur, and with him is Mr. Ansar Javed, left arm fast bowler. He is the assistant coach or the bowling coach maybe. He can be adjusted at any position. He's that good. Again beaten outside the off stump. Good pace shown by Imran Randhawa. And just hands. The feet not quite moving towards the line of the ball. It's all hands. He wanted to guide it towards third. That extra bounce surely has put batters under some pressure. Once again, the power play hasn't cost the bowling side a lot, but one thing is good that no wicket has fallen. Both batters potentially can be very dangerous, still at the crease. This is well struck and in the gap and should be a boundary. Yep, the outfield will take it across. It's a pretty quick one. Ending the 5th over. This boundary takes Rawalpindi to 38. बॉलिंग करने के लिए आए हैं और यासर को गेंद करेंगे। रावलपिंडी 38 बगैर किसी नुकसान के 5 ओवरों का खेल मुकम्मल हुआ है। आगाज अच्छा है लेकिन इतना तेज नहीं जितना होना चाहिए। ऊंची शॉट ऑफ साइड पर बिल्कुल महफूज गेंद चौके के लिए बाहर जा चुकी है। बिल्कुल वैसे स्ट्रोक था जैसा इस सूरत हाल में खेलना चाहिए। महफूज, फोर्सफुल और सही संप में
ये काफ़ी आगे गेंद की थी आजब ने। यह बेहतरीन शॉट यासिर की फुलर वन बॉल थी, मिड ऑफ मिड ऑफ दोनों सर्कल के अंदर थे, तो ये अच्छा महफूज मुकाम था जहां पर हिट मारा। 4 रन का इशारा अंपायर का। ABS डेवलपर नेशनल T20 क्वालिफायर 2025-26 का यह मैच रावलपिंडी भावलपुर यहाँ पर वर्सेस भावलपुर खेला जा रहा है। इसको चेस किया और गेंद बैट के करीब से होती हुई सीधी विकेट कीपर के ग्लव्स में। भावलपुर की क्रिकेट की तारीख बड़ी रिच है। ये पहले चैंपियन रहे 53-54 की काज़म ट्रॉफी के, और ड्रिंक स्टेडियम में 55 में टेस्ट मैच भी खेला गया भारत के खिलाफ। कमेंट्री भी वहाँ से ब्रॉडकास्ट हुई थी। Maharaja Vizay Nagram was doing commentary beside some other to follow, the likes of Jamshed Markar and Umar Qureshi. भावलपुर को ये भी शरफ हासिल है कि इनकी टीम में हनीफ खान मोहम्मद, अलीमुद्दीन, मकसूद अहमद, आगा सादत अली जैसे नामी ग्रामी क्रिकेटर जो और भी बड़े बड़े नाम हैं वो खेलते रहे। और ज़ाहिर के जो प्रिंस्टन स्टेट थी है, इनको बड़ी मराद दी गई, बड़े इनाम कराम दिए गए जब पहला काज़म ट्रॉफी का टाइटल उन्होंने जीता था। तो इस ग्राउंड में जाने का मुझे भी शरफ हासिल है। बड़ी खूबसूरत एक चबूतरा बना हुआ है फॉर कमेंट्री, ड्रिंक स्टेडियम। और इस गेंद को अच्छे तरीके से पुल किया है, शानदार तरीका है। गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। तो अब रन बनना शुरू हो गए हैं। इस ओवर में 2 चौके लगे हैं ऊपर तले, और यासिर ने इस गेंद को अच्छे तरीके से बर वक्त पिक किया और ऐसी जगह पर खेला जहां पर फील्डर मौजूद नहीं थे। ये शॉर्ट पिच बॉल थी, पुल करना चाहते थे लेकिन कनेक्शन नहीं बना, इनर एज लगा, लेकिन फिर भी जो है बॉल जाएगा बाउंड्री लाइन के पार 4 रन के लिए। यासिर अब एक अच्छी फॉर्म में दिखाई देते हुए 23 पर पहुंच चुके हैं। तो भावलपुर के बारे में बातें हो रही थी, और उस ज़माने में स्क्वायर ऑफ लैंड्स दिए गए, इनाम कराम इतने थे कि आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। प्लेयर हायर किए जाते थे। ग्रेट हनीफ का ताल्लुक ज़ाहिर है कि कराची से था, लेकिन उनको वहाँ बुलाया गया एज ए प्रोफेशनल। फिर वहाँ पर बहावलपुर में पाकिस्तान का जो 54 की टीम उसका कैंप भी लगा था। तो हर हाल में इस शहर बेमिसाल की बहावलपुर की खेल के हवाले से बड़ी खिदमत है, क्रिकेट के हवाले से। आई रिमेंबर इंडिया की अंडर 1989 में आई थी, तो आई डिड कमेंट्री देयर रेडियो पर। पहला या दूसरा मैच था मेरा, नेटवर्क पर जा रहा था। तो अहमियत हासिल है इस शहर को, कल्चरली बड़ा रिच है, एक बड़ी प्रिंस्टन स्टेट रही है। और यहाँ पर 6 ओवरों का खेल मुकम्मल हो गया है। रावलपिंडी 46 बगैर किसी नुकसान के। और पावर प्ले का इख्तितामी सिग्नल देते हुए ऑन फील्ड अंपायर। 6 ओवर गुजर चुके हैं, 46 बनाए हैं रावलपिंडी ने। बड़े अच्छे मनाजर हैं ये, खिले खिले पुरमसर चेहरे खुशी से देखे, ये नेचुरल, ये हौसला बढ़ाने वाले जेस्चर्स हैं। फैमिलीज आए हुए हैं और वीडियो शूट हो रही हैं। बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ पर, बेहतरीन मौसम है, बेहतरीन क्रिकेट है। और ये अली शबीर हैं, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं। दिफाई स्ट्रोक ऑफ साइड पर बाहर निकल आए हैं, देखते रह गए और गेंद ने ज़ाहिर है कि वो एम नहीं कर पाए। शबीर अगर गेंद सीधी जाके स्टंप के ऊपर लगती तो फिर लाचार थे, नासिर को बाहर जाना होता, लेकिन बाल बच गए। इतनी तेज़ी, इतनी एक्साइटमेंट की मेरे ख्याल में इस वक्त ज़रूरत नहीं है। वक्त काफ़ी मिल गया था शब्बीर को और निशाना साध के मार सकते थे लेकिन मिस कर गए। बैट्समैन जो थे वो गिव अप कर चुके थे, वो खड़े खड़े देख रहे थे स्टंप्स को, अगर बॉल हिट होगा तो वो पवेलियन वापस, नहीं तो सेफ। और बैटर यहाँ पे सेफ हो चुके हैं। ज़ाहिर है कि जो कुछ करना था वो शबीर ने करना था। नासिर तो ज़ाहिर है कि तमाशाई की चीज़ से देख रहे थे कि गेंद जाकर स्टंप्स को लगती है नहीं, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया। पुल शॉट है, इसमें ज़्यादा कुव्वत नहीं है, और ड्राइव करके गेंद को कैच करने की कोशिश और उसमें नाकामी। अच्छा पुल शॉट था ये, इसलिए हाथ से अटेम्प्ट अच्छी दिया, शॉट अच्छा नहीं था, पूरा घूमे नहीं।
ये शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी और जिस तरीके से इसको पनिश करना चाहिए था वैसा हुआ नहीं। ये किस्मत दूसरी मर्तबा यहाँ साथ दिया है नासिर का। इससे पहले रन आउट और अभी कैच ड्रॉप, मिस टाइम किया पूरी तरह से और बड़ी अच्छी एफर्ट, लेकिन थोड़ा सा मैं कहूंगा कि रेंज में नहीं था फील्डर के कैच। मैंने बड़े बड़े नाम लिए, शकूर अहमद भी बहावलपुर स्टेट की तरफ से खेले, कायजन ट्रॉफी, ऑफ साइड पर प्ले, सीधा पॉइंट पर। आगा सादत अली वाज अ ग्रेट, आगा सादत अली बड़े क्रिकेटर थे, टेस्ट भी खेले पाकिस्तान की तरफ से। और ये हाईलाइट्स हैं पावर प्ले की और इससे आपको अंदाजा होगा कि एक पूरे एतमाद आगाज था। ये बेहतरीन शॉट थी, अच्छा टाइम किया, ये ऑन साइड पर बेहतरीन टाइमिंग वाला स्ट्रोक, क्रॉस बैट से खेलना, जो मिडल हो जाए वो सब ठीक है। आप देख लिए किस तरह ट्रेवल कर रही है गेंद की। अब ये क्लास का फर्क है, फॉर्म का फर्क है, परख का फर्क है, टाइमिंग का फर्क है और ज़ाहिर है तजर्बे का फर्क है। ये दोनों बैटर मौजूद हैं इस वक्त। 47 स्कोर हो गया है 6 ओवर और 3 गेंदों के बाद। यासिर सामना करेंगे शब्बीर का। इनके ओवर की ये चौथी गेंद होगी, पटकी हुई गेंद अच्छे तरीके से संभल कर इसको पुल करने के अंदाज में गाइड किया लॉन्ग लेग की जानिब एक रन के लिए। लेग बाय, तो पूरा घूम गए थे बैटर यासिर। नासिर बड़ी फ्लुएंट बैटिंग कर रहे हैं, ख़वातीन की तादाद भी है। ये तफरी बड़ी ज़बरदस्त है, यहाँ पर आप आएँ, बैठें, देखें, खुला माहौल है, साफ़ सुथरा माहौल है। यहाँ पर गद्दाफी स्टेडियम के बाहर स्पेशियस पार्किंग है, वो जो पहले किसी ज़माने में कशाकशी थी वो नहीं है, सुकून वाला माहौल है जो क्रिकेट का एनवायरनमेंट होता है। इर्द गिर्द हल्की फुल्की ट्रैफिक है लेकिन आप आकर गाड़ी को पार्क कर सकते हैं और जो मुकर्रा रास्ता है उसके ज़रिए मैदान के अंदर दाखिल होकर यू कैन ब्रिंग अ थर्मस विद कॉफ़ी एंड सैंडविचेस। ये बड़ी अच्छी तफरी है, ये ज़बरदस्त पिकनिक प्लेस है इस वक्त। आई वुड से टॉप क्रिकेट है, अच्छी क्रिकेट हो रही है और वैसी ही है जैसी किसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में होती है। चलो जो माहौल है ये बड़ा खूबसूरत है। बैठे हुए हैं आलती पालती मार के कंफर्टेबल हो, ये आरामदेह नशिस्तें हैं, नई नस्ब की गई हैं चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान। इस गेंद को ऑफ साइड पर प्लेस किया और एक रन हासिल किया बैटर ने। अब जो लग रहा है कि गेंद बल्ले पर सीधी आ रही है, एक धमक का एहसास होता है जिसे ग्राम कहते हैं और बड़ा अच्छा ये सारा नज़ारा है। 7 ओवरों का खेल मुकम्मल हुआ, रावलपिंडी 50 बगैर किसी नुकसान के। मोहम्मद जुनैद बॉलिंग करने के लिए आए हैं। ये स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं। ऑर्थोडॉक्स का मतलब वो है जैसे आप फिंगर स्पिनर होते हैं, आप रिस्ट का इस्तेमाल नहीं। अनऑर्थोडॉक्स वो हैं जो कि रिस्ट स्पिनर होते हैं। एक पुरानी टर्म्स भी है चाइनामैन, वो अनऑर्थोडॉक्स को चाइनामैन कहते हैं जो रिस्ट स्पिनर होते हैं। ये सूरत हाल ऐसी है जहाँ पर नासिर और यासिर मुझे स्ट्रोक खेलने की कोशिश करेंगे, इनमें पोटेंशियल है। लीजिए जनाब, ये जोरदार ड्राइव है ऑफ साइड पर, 4 रन हो जाएंगे। बड़ा स्वीटली टाइम स्ट्रोक उस समय में खेला जहाँ पर बैटर को अंदाजा था कि यहाँ पर कोई नहीं इसको रोक पाएगा और एक ज़ोरदार तरीके से गेंद को ड्राइव किया और चौका हासिल किया है। काफ़ी ज़्यादा गैप था एक्स्ट्रा कवर की जानिब, बड़ी जल्दी रीड आउट किया, थोड़ा सा पीछे हटे, रूम बनाया, जगह बनाई अपने लिए और बड़ी ज़बरदस्त ड्राइव और लो रही और बोल्ड कर दिया। अब ये दायरा के ऐसी अटेम्प्ट थी चौके के बाद जो कि मेरे ख्याल में बेवक्त थी। चौका लगा चुके थे, विकेटें छोड़ी और बड़ा क्लेवरली जुनैद ने विद इन द स्टंप्स गेंद की और सीधी जाके स्टंप्स के ऊपर गेंद लगी, मिस हिट कर गए बैटर और इस तरह नासिर को अब जाना होगा
इस तरीके से अगर हम देखें तो स्पिनर्स की आमतौर पे नो बॉल्स कम ही होती हैं। यहाँ से आप देख सकेंगे दिस वाज एन आर्म डिलीवरी, सीधी रही और ज़रूर परेशान होंगे और पछता भी रहे होंगे कि मैं अच्छा खासा खेल रहा था, गलत इंतखाब किया शॉट का और अपनी विकेट खो बैठा। तो इस तरह ये पहले बैट्समैन आउट हुए नासिर। 55 स्कोर है रावलपिंडी का, 7 ओवर और 3 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं। जिशान नए आने वाले बैटर। यासिर के आउट होने के बाद उन्हें ज्वाइन किया है यासिर को। जुनैद ने पहले ही ओवर में पहली कामयाबी अपने नाम की। जिशान के पास जबरदस्त तजुर्बा है और स्ट्रोक मेकिंग बैटर हैं। फील्डिंग का जायजा पूरी तरह से लिया, अब तैयार है फेस करने के लिए। जिशान को एक बड़ा अच्छा आगाज मिल चुका है। 55 पर 1, 7 ओवर 3 गेंदों के बाद इत्मीनान से इनिंग का आगाज कर सकते हैं। आते ही स्वीप किया है, अपील और लंबी अपील है, कोई असर नहीं अंपायर पर। जिशान ने आते ही क्रॉस शॉट खेली है, जरा बल्ला सीधा कर लें क्योंकि अभी बड़े ओवर बाकी हैं, बड़ा वक्त है इनके पास। क्रॉस शॉट खेली, अपील की जुनैद ने। विकेट कीपर ज्यादा पुरुमीद थे, ज्यादा पुरजोश थे इस मौके पर। यह अपील तो बड़ी जोरदार थी। आई थिंक लेग स्टंप से मिस हो रहा था बॉल, जिसका पूरा बेनिफिट जो था वो दिया गया जिशान को। कोई दबाव नहीं लिया अंपायर ने। ये जो शॉट गेंद है ये कहते हैं कि इट्स अ क्राइम। जो लेफ्ट आर्मर है इनको अगर ये शॉट लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद करेंगे ऐसे ही होगा। जैसे आप ये देखते हैं, ये ऐसी गलती कोताही जो है, एक आम सी गेंद थी और ये क्या करना चाहते थे, गेंद नीचे रही और पूरी कुवत नहीं लगाई और ना जो होशियारी होती है वो दिखाई। आपको तेजी से गेंद पर आना होता है और स्ट्रोक का इंतखाब करना होता है। अच्छा खेल रहे थे नासिर, लेकिन यकजक अपना टेम्परामेंट या अपना आप कह लें मिजाज जो है उस पर कंट्रोल नहीं कर पाए और अपनी विकेट खो बैठे। 8 ओवरों का खेल मुकम्मल हुआ। रावलपिंडी 57 1 विकेट के नुकसान पर। ये जज्बा 655 है, जज्बा है। ये जज्बा 55 ट्रेवल है। ये डायरेक्टर साहब जज्बा 55 है। बड़ी ख़राब लेंथ वाली गेंद थी और गेंद को छोड़ दिया। ये देखते हो कि दूर, बहुत दूर है यासिर ने। वाइड के 4 रन और उसके साथ ज़ाहिर है कि इजाफी रन भी, तो 5 रन मजमूई तौर पर हासिल हुए इस बार रावलपिंडी को। शबीर ने एक वेवर्ड लाइन और लेंथ वाली गेंद की जिसका कोई बज़ाहिर मकसद नहीं था। सुपर वाइड इसको कहना होगा। जी हाँ, लाइन लेंथ दोनों ही ख़राब और तोहफा यहाँ पे मिल गया रावलपिंडी को 5 रन की सूरत में। रफ्तार है शबीर के पास, लेकिन अगर इस रफ्तार का सही इस्तेमाल करें तो विकेट्स ले सकते हैं। अच्छे तरीके से स्टीयर किया, नो बॉल का भी इशारा। अब यहाँ पर जितनी भी तारीफ की जाए कम होगी। ये कंट्रोल शॉट था, तेजी से आती हुई गेंद को स्टेयर किया और नो बॉल भी हो गए, तो इस तरह ये फ्री हिट भी मिलेगी और एक इजाफी रन और एक इजाफी बॉल जो है वो हासिल हो चुका है रावलपिंडी को। फ्री हिट का मतलब है कि आप आउट नहीं हो सकते बॉलर की कोशिश से, आप रन आउट हो सकते हैं, लेकिन ज़रा कि एक लग्जरी होती है, एक सहूलत होती है बैटिंग साइड को जब एक ओवर स्टेपिंग होती है। तो ये डिस्करेज करने के लिए जो इन्फ्रिंजमेंट है क्रिकेट में उसको आगे बढ़ के गेंद, तो फ्री हिट का आप ज़ाहिर है कि इस्तेफादा करेंगे जीशान। शबीर तेज़ हुए, देखना होगा किस तरीके से खेलते हैं। ऐसा नहीं हो सकता था, ये मुश्किल शॉट होती है, उसमें ज़ाहिर है कि कामयाब नहीं हुए इसको खेलने में जीशान। अभी सिर्फ 1 रन बनाया है, आते ही इन्होंने एक स्वीप शॉट खेली, उस पर
अपील से बच गए और उसके बाद अब ये स्ट्रोक खेला है। इनको इनोवेशन का लगता है शौक है, इम्प्रोवाइजेशन का शौक है, लेकिन ये तभी होगा जब इनके रन्स बन जाएंगे, ये विकेट पर स्टे करेंगे। जो उछाल है विकेट का, जो बॉल की लाइन और लेंथ और जो रोशनी और एनवायरनमेंट है, उससे अपने आप को एक्लेमेटाइज कर लेंगे। जीशान तैयार हैं, शब्बीर जोर लगा रहे हैं, तेज गेंदें कर रहे हैं, जो अच्छी बात है। ड्राइव गुड लुकिंग, लेकिन सीधा मिड ऑफ पर वापस लौट गए। अब जब आप जोर लगाते हैं ओवर पिच गेंद को, तो फिर आप समत का इंतखाब नहीं कर पाते, उजरत में करते हैं। और जब आप पिछले कदम पर स्ट्रोक को खेलते हैं या स्ट्रोक को चेक कर लेते हैं, फिर आप गैप में खेलते हैं। ये फुल ब्लडेड ड्राइव थी, वापस चले गए। जितनी तेजी से आए थे उतनी तेजी से वापस लौट गए। यह खतरे को बर वक्त भाप लिया था जीशान ने। 4-5 कदम बाहर आ गए थे क्रीज से, लेकिन जैसे ही देखा कि काफ़ी क्विक हैं मिड ऑफ का फील्डर, वापस आने में ही अपनी आफियत जानी और बाखैरियत क्रीज पे पहुंच गए। जीशान कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कभी इनके खिलाफ अपील होती है, कभी ये दौड़ पड़ते हैं और कभी इस तरह भी खेल लेते हैं। अब ये है कि एक बेचैनी है मेरे ख्याल में, वो कुछ कर दिखाने का जज्बा, आप उसको समझ लें। लेकिन 5 गेंदें खेल ली हैं। अब ये स्पीड गन है और बॉलर की स्पीड चेक करते रहते हैं। और जो डिजिटलाइजेशन है क्रिकेट में, उसका हर मुकाम पर, हर सतह पर इस्तेमाल किया जाता है। ये जो स्पीड गन है, इससे जो टीम मैनेजमेंट है उसको अंदाज़ा होता रहता है कि स्पीड हायर साइड पे है, लोअर साइड पे है। स्पीड को बड़ी अहमियत हासिल हो चुकी है फास्ट बॉलर के सिलसिले में। अच्छे तरीके से गेंद को कट किया, लेकिन गेंद सीधी पॉइंट पर गई। ये अटेम्प्ट अच्छी थी, इट वाज अ गुड लुकिंग स्ट्रोक। ये इसमें महारत दिखाई दी है जीशान की, लेकिन अब उन पर दबाव कुछ बढ़ता जा रहा है। 3 डॉट गेंदें हो चुकी हैं, अगरचे एक वाइड का बॉल मिला, एक 2 नो बॉल भी हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो अच्छा अंदाज था। कट लाजवाब थी, लेकिन फील्डर को अगर बीट कर पाते तो 4 रन्स मिलते। हम बात कर रहे थे, रफ्तार है शब्बीर के पास और अब अपनी लाइन भी पकड़ते जा रहे हैं और लेंथ पर बाकमाल इनको एक एज हासिल है शब्बीर को। अब ये एक ऊंचा स्ट्रोक खेलने की नाकाम कोशिश थी जीशान की तरफ से, इसमें कामयाब नहीं हुआ। कुछ ना कुछ जब तक ये विकेट पर मौजूदा होता रहेगा। और ज़ाहिर है कि अब सीधे हो गए हैं, ज़ाहिर है कि दुनिया उनको देख रही है और वो खुद भी अपने आप को देख रहे हैं, नौजवान हैं। अब भी आराम से, जैसे आप वो सूरज के नीचे बैठते हैं, यहाँ पर भी खुला माहौल है, स्पेशियस जगह है, आराम करने के लिए भी लोग यहाँ पर आते हैं। और ये क्रिकेट के साथ है कि आप लोग बाज़ इजी चेयर्स भी ले आते हैं, अब वेस्ट में हम देखते हैं, और यहाँ पर भी ये आरामदेह कुर्सियाँ हैं। अब ये 5 डॉट गेंदें हो चुकी हैं और जीशान पर प्रेशर डेवलप होता हुआ सिर्फ सिंगल का इजाफा। तो इस तरह 9 ओवरों का खेल अब मुकम्मल हुआ चाहता है। रावलपिंडी 65 एक विकेट के नुकसान पर। ये मंजर कशी हो रही है गिरदरमा में, जो कुछ है ये वर्ल्ड क्लास ज़रा कि वीडियो क्लिप्स होंगी। लोग पाकिस्तान आकर, जो पाकिस्तानी नज़ाद हैं, बाहर आकर कहते हैं कि हमें कज़ाफ़ी स्टेडियम ले जाइए, क्योंकि जो इसकी स्क्रीन ब्यूटी है और इसकी तारीख है, वो ज़ाहिर है कि साउथ ईस्ट एशिया में लाजवाब है। यहाँ पर बड़े फाइनल्स खेले गए हैं, बड़े हंगामे देखे हैं, बड़ी तारीख देखी है इस मैदान ने, बड़े अदवार देखे हैं। बड़े ग्रेट क्रिकेटर्स यहाँ पे खेलते रहे, द लाइक्स ऑफ लारा, रिचर्ड, बैनो, कारदार,
नॉट कारदार आई बिलीव 59 में जब ऋषि बैनो की टीम आई थी यहाँ पर डैनिस्टरी को देखा, मियादा, जहीर अब्बास, आसिफ इकबाल, ये बड़े बड़े नाम हैं, ये मेरे चंद नाम नहीं हैं, बड़े और अजीम क्रिकेटर्स यहाँ पर आते रहे हैं। रोहन कैनाई प्लेड हियर, कीथ मिलर भी आए यहाँ पे, इस गेंद को ऊंचा खेल दिया है ऑन साइड पर और गेंद जाएगी सीधी फील्डर के हाथ में। यासर अंडर प्रेशर आए, जो गुज़िश्ता ओवर था उसमें 5 डॉट बॉल हुए और इस बार ऊंचा स्ट्रोक खेलने की कोशिश में यासर अपनी विकेट खो बैठे और कामयाबी हासिल हुई जुनैद को। ये अहम कामयाबी है, ये दूसरी कामयाबी है मजमूई तौर पर। जी हाँ, डॉट बॉल्स का दबाव बढ़ता हुआ, फ्रंट फुट चेक करेंगे। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन, कोई मसला नहीं। एक अच्छा बॉल था, तो कैच के लिए जाना चाहते थे स्क्वायर लेग पर, लेकिन टॉप एज हुई और कोई गलती नहीं की डीप स्क्वायर लेग के फील्डर ने। और इसी के साथ एक और कीमती विकेट गंवा दी रावलपिंडी ने। यासिर खान ने बनाई 27 रन और वो हो गए आउट। और इसी के साथ ड्रिंक्स ब्रेक। ड्रिंक्स के बाद अब खेल दोबारा शुरू होगा। रावलपिंडी थोड़ी स्ट्रगल करते हुए 66 पर 2। ड्रिंक्स से पहले बैट्समैन आउट हुए और उसके बाद अब नए बैटर हैदर आए हैं, हैदर अली। और हैदर अली जो हैं ये जाना माना नाम है, बड़े अच्छे हिटर हैं, अच्छा टाइम करते हैं, इनका एक पस मंज़र है, पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके हैं और मजबूत कदो-कामत के मालिक हैं। जिशान सामना करेंगे अगली गेंद का। जुनैद आए, बेस्ट फील्डिंग, जो क्लीन पिक और थ्रो है ये बड़ा अहम होता है क्रिकेट के अंदर। इस तरीके से आखिरी बैटर नासिर आउट हुए, टॉप एज लगा, मिड विकेट पर गेंद गई जहां पर एक सॉफ्ट हैंड से स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच लिया गया। ये आखिरी बैट्समैन थे जो कि आउट हुए, तब से लेके अब तक ये दोनों बैट्समैन सिर्फ एक गेंद खेल पाए हैं। अब खेल दोबारा शुरू हुआ तो ये पहला 1 रन है जो कि हैदर ने हासिल किया। जुनैद अच्छी फ्लाइट दे रहे हैं, लाइन और लेंथ पर काफ़ी हद तक इन्हें कंट्रोल और अबूर हासिल है। ये लेफ्ट आर्मर होते हैं आमतौर पर, बड़े बड़े बड़ी बड़ी अच्छी लेंथ से गेंदें करते हैं, बड़े एक्यूरेट होते हैं, फुल टॉसेस कम करते हैं, शॉर्ट गेंदें कम करते हैं और बड़े पेनिट्रेटिव होते हैं। इस गेंद को जोरदार तरीके से घुमाया ईशान ने, 1 रन मुकम्मल किया। 1 रन ही का इजाफा होगा तो अब कुछ कुशन ज़रूर देते हैं जुनैद बड़ी हिट के हवाले से। 10 ओवरों का खेल मुकम्मल हुआ, रावलपिंडी 70 2 विकेटों के नुकसान पर।
Rawalpindi have lost a couple of the wickets. They're both openers. They're back in the hut. And it's about Zishan Malik and Malik Haider Ali. Zishan struggling at the moment. 12 deliveries for 5 runs. Opportunity. Fielder obliges. Takes it handsomely. The struggle ends for Zishan Malik. As the fielder, the bowler to get the wicket. Ali Afzal, the fielder. Salman Butt in the commentary box. Lots of superstars around. Thank you, Ali Bhai. As usual, you give me no time. This is perfectly fine. Half and half front foot. No problems. Cross seamer banged in short. And less time for the batter to react. It did come onto him very quickly. And it's Zishan Malik, the last casualty. 5 of 13. So not an ideal knock in the context of the game. It's 70 for 3. He has a job to do. Not comfortable at all, but he's off the mark. Probably these two are the most experienced and established pair of this batting lineup. Haider Ali, he's played quite a bit for the Pakistan side as well. Had a lot of chances earlier on in his career. And he had the game. First time when I saw him was in a Quaid-e-Azam Trophy final against Central Punjab in Karachi. He scored a magnificent 100. And you could tell that this boy had all the makings of a top player. But then he just kind of changed his game from being a proper batter, the transformation into some power hitter. And in the end, he's left in the middle, neither here, neither there. And that is something which we have seen confuse a lot of players. They need to know that batting can lead to scoring quickly. Brilliantly fielded. This is Ali Shabir, and this can be trouble. And the throw is just away. Could have been curtains. Haider Ali is upset with his partner. He's saying it's my call. Thankfully for him and Rawalpindi is back. Ali Shabir was the fielder. Pretty quick to stop the ball. And he was up on his toes and had the ball back in a flash. Yes, all in one motion by Ali Shabir. Haider Ali, he was certain that he wants to come back here. Here he decides. A little delay. Mubasir was never interested. Yeah, one thing that keeper could have done is just maybe he had glove off earlier than he did. Then it would have been better throw by him. But Ali Shabir was the man to look out in this picture. Brilliant. Good bowling. He's quick. He's accurate. He's aggressive. When you're that quick and a batter is that short of time, it might as well be a good idea to have a slip in for a couple of balls. Because a wicket or two over here can really put Rawalpindi on the back seat. Over the head of the fielder. The keeper couldn't do much. It was always flying and always going above him. It was a good sharp bouncer. It was wide signalled. And 4 to add on to that. Yeah, there are such a good bowling side. Bahawalpur region, and somebody who has worked a lot with them from last couple of years. He's been around.
is the head coach. He's basically from Karachi but working with the boys of Bahawalpur. Is the former international cricketer Ghulam Ali, and I really want to have a word with him. He's here with us. Gulu bhai, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप हमें सुन सकते हैं? बिल्कुल सुन A सकते big हैं। smile. आपने कहा था कि हमारी बॉलिंग बहुत शानदार है और आपने सही कहा था। अच्छे पेस, अच्छे रिदम में बॉलर्स नजर आ रहे हैं। जी हाँ, और स्पेशली जो आपको अली शबीर थोड़ा सा एक्साइटेड नजर आए होंगे उनका रिदम, उनका पेस, यंग है अभी, और अभी जो है वो पहला स्टेज है उनका इतना बड़ा। तो गुलाब भाई, ज़्यादा लड़के बड़ी क्रिकेट नहीं खेले आपके भावलपुर रीजन के, ज़्यादा सीजन्स नहीं खेले, तो आप कैसे प्रिपेयर करते हैं उनको इस बड़ी स्टेज पे आके परफॉर्म करने के लिए? देखिए, असल में पिछले हम कई टूर्नामेंट से डेवलपमेंट का तो टाइम इतना मिलता नहीं। इस दफ़ा जो रीजनल एकेडमीज़ का जो सिलसिला शुरू हुआ है, जहां मुझे कुछ टाइम मिला कि कैंप लगा और उसमें हमने मैचेस भी खेले, प्रैक्टिस मैचेस, जिसकी वजह से थोड़ा सा इनका स्किल और दूसरा इनके मेंटल कंडीशनिंग पे थोड़ा सा काम किया है और इनको बड़े स्टेज पे खेलने के लिए तैयार कर रहा हूँ। आपका अपना ताल्लुक तो कराची से है, तो कितना वक्त आप बिताते हैं इन भावलपुर के लड़कों के साथ एक साल में? अभी तो मैं अली तकरीबन दूसरा माह चल रहा है कि मैं घर नहीं गया हूँ और अपने भावलपुर में ही मैं रहा हूँ, और वहाँ पे जितना भी लड़के आ सके, पहले तो रीजन से के जो कैंप था, उसके अलावा जब हमारा तमाम लड़के जब अवेलेबल हुए तो फिर उनके साथ तकरीबन 10 दिन का हमने इनके साथ ट्रेनिंग सेशन किया और इस टूर्नामेंट के लिए आए हम। अस्सलाम वालेकुम गुल्लू भाई, सलमान भट्ट बात कर रहा हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम सलमान। लग रहा है आप काफ़ी थके हुए हैं, काफ़ी काम कर लिए हैं लड़कों के साथ। तो गुल्लू भाई, कैसा बैटिंग टैलेंट है भावलपुर की तरफ? जो नए लड़के कोई ऐसे हों आपकी नज़र में, और दूसरा ये जो अभी करंट जो बैट्समैनों का क्रॉप है, क्या देखते हैं कि क्या चीज़ है जिस पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और यंगस्टर्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए मॉडर्न बैटिंग को? बिल्कुल सलमान, जैसा कि हमारे रीजन है जो कि काफ़ी अरसे से फर्स्ट क्लास या बड़ी स्टेज पे खेलने के लिए लड़कों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, तो अब पिछले 2 साल से लड़के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आए और फिर इनको पता चलना शुरू हुआ कि इस स्टेज पे या इस लेवल ऑफ क्रिकेट में इनकी क्या क्या नीड्स हैं, क्या क्या इनकी रिक्वायरमेंट है जो कि इनको पूरी करनी है, तभी यहाँ पे कंपटीशन में अपने आप को ये पहचान अपनी बनवा सकते हैं। रही बात आप जो बैट्समैनों की बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि स्किल वर्क तो ये लड़के सारा साल करते रहते हैं और हो सकता है कि इनमें और बेहतरी की गुंजाइश है कि स्पेसिफिक स्किल वर्क करें, लेकिन जो मेंटल वर्क है इनका या मेंटल जो कंडीशनिंग जिसे हम कहते हैं कि गेम अवेयरनेस, बैटिंग बॉलिंग की अवेयरनेस, फील्डिंग की, उसमें मुझे काफ़ी कमी नज़र आती है। और मेरा तो जो इतने सालों से मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, तो इनकी मेंटल कंडीशनिंग में बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है, जहाँ पे गेम को कैसे लेके चलना है, मेरा रोल क्या है, गुल्लू भाई, क्या कह रही है। आपने बेतहाशा रन्स किए हैं और आपने बहुत बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स लगाई हैं। आपके साथ शोएब मोहम्मद साहब ओपनिंग करते थे पीआईए में, रिजवान जमान साहब के साथ भी आप खेले हैं। तो ये बताइए कि स्पिनर को खेलने का क्या गुर है, और आजकल का जो बैट्समैन है स्पेशली एशियन, ऐसा क्या हुआ है क्रिकेट में कि वो स्पिनर की कमांड लूज कर गया और ऐसा लगता है जैसे हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको पता नहीं चलता कि हाथ से निकला क्या है। सलमान, असल में सबसे पहले तो आपको हाथ तो रीड करना लाजमी है स्पिनर का, कि अगर इवन ऑफ स्पिनर है तो उसके हाथ को भी देखना है कि उसका स्लाइडर बॉल कौन सा हो सकता है, ब्रेक कौन सा कर सकता है, टॉप स्पिन कौन सा कर सकता है। ये जब तक आपको नहीं आएगा आप स्पिनर को कमांड से नहीं खेल सकते। पहले आपने उसके हाथ को रीड करना है। फिर मैं समझता हूँ कि जो स्पिनर की हमारे ज़माने में कुछ प्लेयर प्रैक्टिस क्या करते थे, ख़ास तौर पे मैं जावेद मियांदाद की बात करूँगा या जहरबाज की बात करूँगा, सलीम अली की बात करूँगा, तो इनकी बड़ी ज़बरदस्त प्रिपरेशन होती थी, स्पेसिफिक करते थे। और जावेद भाई जो उससे हमने सीखा है कि स्पिनर पे जो स्ट्राइक रोटेशन है या आपकी शॉट सिलेक्शन है, ग्राउंड शॉट, विदाउट पैड्स भी हम क्या करते थे, जिससे आपके बहुत ज़्यादा जल्दी पिकिंग एबिलिटी आती थी विदाउट पैड करने से। और मैं यहाँ कराता भी हूँ लड़कों को, ताकि वो लड़के बैट से खेलने को प्रेफर करें, फीट यूज़ करें, और जो लेंथ पिक करने वाली है आगे या पीछे की, उसको जल्दी अडॉप्ट करें। तो बहुत सारे ड्रिल्स हैं, अगर आप स्पिनर पे मैं समझता हूँ करते हैं और फिर उसको मैच में अप्लाई करते हैं बिला खौफ के। आप देखें, फीट यूज़ नहीं करते आजकल लड़के, छक्का मारने के लिए तो फीट यूज़ करते हैं, लेकिन ग्राउंड शॉट के लिए, प्लेसमेंट के लिए फीट बहुत कम लड़के यूज़ करते हैं। तो स्पिनर को अगर खेलना है आपने, तो आपका फीट यूज़ करना, उसकी प्रैक्टिस करना,
आप खड़े खड़े आप एक स्पिनर आपको एक जगह पे गेंद कर आप कितनी शॉटें मारेंगे, ऑप्शन ही खत्म हो जाता है बहुत आपके ही खूबसूरती के साथ आपने सारी तफसील बताई है। मुझे याद आ गया जब आप और मैं लेवल 3 कर रहे थे तो जावेद भाई को उन्होंने पूछा था कि जो जिन प्लेयर्स का सर गिरता है तो उन्होंने कहा कि इसको दीवार के साथ खड़ा करो और कहा अब मार सर। तो जावेद भाई तो जीनियस है, जाहिर है वो तो कह लीजिए आजकल कोचिंग के नए नए तरीके ज़रूर निकले हैं, लेकिन बड़ी प्रैक्टिकल बात थी कि जब आगे ही बैरियर होगा तो आप किधर जाओगे और उसी में एडजस्टमेंट करेंगे। तो ये बड़े प्लेयरों की बड़ी बातें। तो बहुत शुक्रिया आपका गुलू भाई। अली आपसे एक और सवाल करेंगे। जी हाँ, बस मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि भावलपुर में क्रिकेटिंग फैसिलिटीज़ के बारे में आपका क्या कहना है? क्या ग्राउंड्स अच्छे अवेलेबल हैं? क्या अंडर वहाँ पे लाइट्स अवेलेबल हैं? क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि डेरा मुराद जमाली के कप्तान ने ये थोड़ा सा गिला किया कि हमारे पास इतनी लाइट्स वाली फैसिलिटी मौजूद नहीं है, यहाँ पे लड़के आके पहली बार अंडर लाइट्स खेलते हैं। तो भावलपुर का अगर कोई फैसिलिटीज़ का सीन बताइए। अभी फ़िलहाल तो फ्लड लाइट्स की वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन ड्रिंक स्टैंडर्ड भावलपुर में अभी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से फ्लड लाइट्स लगे हैं, लेकिन अभी वो ऑपरेटिव नहीं हुए हैं। और रही बात फैसिलिटीज़ की, तो जो फ़र्क मैं देखता हूँ कराची में, केपीके में, लाहौर में, जो प्राइवेट एकेडमीज़ लोगों ने बनाई हुई हैं, जहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर अपनी एकेडमीज़ खोला हुआ, जहाँ पे फर्स्ट क्लास इंटरनेशनल प्लेयर और लोकल प्लेयर जो आकर के प्रैक्टिस करते हैं, तो उसकी कमी मैं देखता हूँ साउदर्न पंजाब में काफ़ी है। जो एकेडमीज़ नहीं है, जो प्राइवेट एकेडमी जहाँ से बच्चों को बेसिक चीज़ें आपको सीखने को मिल जाती हैं, उसकी कमी मैं समझता हूँ। और ग्राउंड भी क्लब के लिए इतने नहीं है, तो जिसकी वजह से लड़कों के लिए थोड़ा इतना आसानी, तो वो लड़के कोशिश करते हैं जो अच्छी क्रिकेट खेलने आते हैं वो लाहौर जाके खेलें, कराची जाके खेलें। वहाँ बेसिकली प्रैक्टिस फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से और मैचेस वहाँ कम होने की वजह से, तो इस पे अब काम हो रहा है। क्रिकेट बोर्ड भी जो है इस चीज़ को देख रहा है और कि प्लेयरों को ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस की जगह प्रोवाइड करें, मैच खेलने की जगह प्रोवाइड करें, तो उससे मैं समझता हूँ काफ़ी बेहतरी आएगी। चलें, वी आर होपफुल कि वहाँ पे इस तरह की फैसिलिटीज़ जल्द से जल्द बने। एंड थैंक यू वेरी मच गुलू भाई फॉर टेकिंग योर टाइम फॉर अस। थैंक यू सलमान, थैंक यू। 13 overs done, 100 for 3. Edge, field up. Oh, he's not able to grab that one. He was in business for a little while, but could not quite get to that. It's sort of a surface and the ball that edges have carried to third for 6. Lot of time. Here's another opportunity wasted by Bahawalpur. Yeah, unlucky Woodfield, the bowler. Ali Shabir on this occasion is a young fast bowler. He's just made his first class debut for Gunning Glass, has been part of the development program. Rehan Riaz has worked with him a lot on his bowling, and the boy is looking a good prospect. He bowls with good pace, and here he created an opportunity which could have been a possible chance had the fielder tried a touch harder, not to be on this occasion. Yeah, Ali Shabir looks like a good deal. Runs in hard. He's got a good action. Excited and aggressive. Good pace also. But Bahawalpur is under a bit of pressure here because of this partnership which is building. Both Heather and Mubassir, if they stay till the end, you'll see lots of boundaries being hit. And both Mubassir and Heather, they've got a similar story, who showed a lot of talent once they first came into scene and then lost their way. Both of them actually. Both have huge amount of talent.
Especially, I feel for Haider Ali, because when he played for Pakistan under 19, everyone started talking about him. That we found a next superstar in Pakistan cricket as far as batting is concerned. But then God knows what happened. Just lost his way, just lost the path, stopped performing. But he's still young. He has still plenty of time to realize or understand or identify what's missing, what needs to be done. They'll have to settle just for one. It's a curious case for Haider Ali, Salman. Yeah, it has been a promise which hasn't been fulfilled. And it was strange to see last year in the PSL, he was batting number 8. Mike Hesson was the coach, and there was quite a number of changes every game. And Haider Ali, who previously has batted at number 3 for Islamabad United and opened as well, surprisingly, there was a change of plan with him. This is well timed, and this is one of his areas where he is very efficient and times the ball really well. 4 more to him and to his team. So I wonder what plan the team or the coach had for him, but he was batting way down the order, and a batsman like him should be in the top 4. But maybe the team combination demanded something else, because franchise cricket moves differently. So you never really know the plans. Obviously, it's a team thing. Yeah, but a player's development demands something else. It demands opportunity. It demands opportunity at a right place. But he cannot really blame anyone but himself, because he has had a lot of opportunities. He was given a fair run before the World Cup in Australia. So now when a player, as a batter, if you know you are going to play the World Cup in Australia, perhaps Mohammad Wasim was the chief selector then. And if I know that I'm going to play a World Cup in Australia, I have to develop my scoring area square of the wicket and have to put an extra effort on the cut shot, on the pull shot, because you know that Australia is a bouncy place, bouncy pitches, big grounds. So you can't hit many sixes, but you have to hit in the gaps. Haider Ali 27 of 14, Mubassir 12 of 10, and 6 overs to go. 14 overs bowled so far. Randava is back. Yeah, that's where he likes playing. He just times it and places it, Haider Ali. Oh, hurry, hurry. They're appealing for it. He was so casual about it, Haider Ali. Like he's been casual about his career. He's not putting in extra hard yards. Yeah, the fielding side seems very confident. And Haider Ali is now trying to explain something to his partner. Well, if that is going to be given out, then it's very casual stuff. And I think he's made it. Just made it. Yeah, just in time. That was a close call. Had that ball hit directly, it would have been curtains, certainly. Not out is the decision made by the third umpire. 114 for 3 in the 15th over. And both of these batters, they are the ones Rawalpindi will be banking on to lead the charge and get to 180.
175, 180 runs. Right, let's have a look at the running between the wickets. He played it. First, he was confused. Till then, it's fine. But have a look at this. He's coming back for the second and is so casual about it. As you mentioned, a direct hit, he surely would be going back. Yeah, this is too casual. And you make a very good point. And in the first run, he should have dashed towards the other end. One thing to explain to the youngsters is, once you decide to run, then do not ball watch. Can we see it again, please? Once again, if you can see, this is good education for young children. This can be very good education for young children. Just have a look at him. He's just constantly ball watching, ambling across. Look at him. Till he touches down, he's watching the ball. And now look at him, just stroll in the park. And then he realizes there's trouble coming his way. And then he dashes in the last couple of meters. Very lucky to survive, but not the way that you should be running as a youngster. Absolutely. It's the little things that matter. You do these little things correct, they make a big impact. This one was a sharp one from Randhawa. Well directed. Both Randhawa and Azab have used the short ball to great effect because they have directed it at the batter's head. Compared to the other bowlers who've dug it short, either it's been too short or they've been offline, off target. Yeah, once again into the pitch. This is driven hard and this time he has some timing on it. This will get to the boundary. Good stroke that. It wasn't a half volley, but he played it, got on top of it and just played through the line. Mubassir Khan. I remember him scoring 100 in a first-class game in Karachi. His first first-class 100, his first season. And he came in late middle order and played one hell of a knock over there. And he was partnered by Hamad Azam in that partnership. Yeah, he's got lots of talent. Yeah, we must admit. Him alongside Qasim Akram, very similar sort of players. Both have just lost their way a bit. Still very young, lots of time left. Sooner they realize it, better it is for Pakistan cricket. 30 years at the moment, Haider Ali. 16 deliveries for those 30 runs. Good bowling, really good bowling. In the block hole, they say. 15 overs done, 120 for 3. एक सौ 20 पर 3. जब तक हैदर मौजूद हैं बड़ा स्कोर खड़ा करने का एक उम्मीद है, लेकिन 15 ओवर हो चुके हैं, 5 ओवरों का खेल बाकी है, यानी 30 गेंदें हैं. इसमें क्या कुछ होगा ये कहना कबल इस वक्त है, लेकिन हैदर जो हैं वो ज़ाहिर है कि कुछ न कुछ कर सकते हैं. मुबस्सर उनके साथ हैं. ये फैमिलीज़ एक सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल है. इसमें हम तवक्को करते हैं कि और लोग देखने के लिए आएंगे, फैमिलीज़ आएंगी और यहाँ पर बड़ी मुनासिब सहूलियात हैं शायकीन क्रिकेट के लिए, शायकीन खेल के लिए. शबीर गेंद करेंगे और मुबस्सर इनका सामना करेंगे. करीब में डीप गली है, अच्छे तरीके से झुक कर इसको ऑफ साइड पर प्लेस किया. काफ़ी आगे पड़ी हुई गेंद थी, ये फुल लेंथ गेंद थी. हैदर 30 पर हैं और हैदर टिक कर बैटिंग कर रहे हैं. ये बड़े ज़बरदस्त शॉट मेकर हैं, चाको चौबंद हैं, अच्छा पिक करते हैं, लेकिन अब वक्त आन पहुंचा है कि ये ज़रा बड़े बड़े स्ट्रोक्स खेलें, चौके और छक्के लगाने की कोशिश करें. एक तो इनफरादी तौर पर, फिर टीम के लिए ज़ाहिर है कि इन्हें अब तन मन धन की बाजी लगानी होगी. मैदान के चारों तरफ स्ट्रोक खेलने होंगे.
ये मुनासिब कदोकामत के मालिक हैं, देखने में अट्रैक्टिव पुरकशिश हैं। ज़बरदस्त तरीके से गेंद को खेला है ऑन साइड पर, गेंद मिड विकेट पर गई है और 6 रन के लिए बाहर। जैसे मैंने जिक्र किया, इनमें पोटेंशियल है, इनमें ताकत है, इनमें वो खूबी है जो कि एक पिंच हिटर में होती है। ये स्ट्रोक आप देख सकते हैं कितना शानदार था, फॉलो थ्रू कितना अच्छा था हैदर का। या जिस तरह की तवक्को की जा रही थी हैदर से, उसी तरह का शॉर्ट बॉल था, बड़ा जबरदस्त पुल, और जो बल्ले से आवाज निकली वो सुनने से ताल्लुक रखती थी। 6 रन के लिए हैदर अली। इस वक्त तमाम उम्मीदें, तमाम निगाहें रावलपिंडी की हैदर अली की जानिब। अहलियत है इनमें कि आज एक बड़ा डिसेंट टारगेट सेट करेंगे स्कोर बोर्ड पर भावलपुर के सामने। अब हैदर को गेंद करने से पहले ये बॉलर को सोचना होता है कि वो एक छक्का उनकी गेंद पर लग चुका है, सिर्फ 2 गेंदें हुई हैं 16वें ओवर की। अब मैं गेंद करूं तो कहाँ करूं, जाएं तो जाएं कहाँ। ये अब इनको समझाना होगा कि आप एक यॉर्कर लेंथ, फुलर लेंथ गेंद करें। लेकिन ऐसी सूरत हाल में क्या शब्बीर के पास वो ज़बरदस्त किस्म की महारत है, इसके बारे में कुछ सवालिया निशान तो नहीं है, लेकिन ये एक मुश्किल फ़न है। बहरहाल अब इनिंग को कंस्ट्रक्ट कर लिया है हैदर ने, और यहाँ पर उनका विकेट पर मौजूद रहना 19-20 ओवर तक बड़ा ज़रूरी है। ये छक्का लगा चुके हैं, इनके इल्म में है कि मैंने आइंदा क्या करना है। ये अपनी विकेट फेंकेंगे नहीं, इतनी क्रिकेट इन्होंने देख ली है, इतनी बहारें देख ली हैं, इतना तजर्बा है, नामी ग्रामी क्रिकेटर हैं। ज़बरदस्त ड्राइव, बहुत खूबसूरत, शानदार, जनाटेदार गेंद पलक झपकते ही दंदनाती हुई लेग स्टक कवर बाउंड्री के बाहर गई चौके के लिए। ये खूबी होती है बड़े बैट्समैन की, पहले छक्का लगाया और फिर ये फुल ब्रेडेड ड्राइव थी, और ये वो ताकत वाला स्ट्रोक है जो कि T20 क्रिकेट में बैट्समैन का खासा होता है, जुज़ विला यनफक होता है। और ये ड्राइव याद दिलाती है हमें उन पिंच हिटर्स की, उन बैटर्स की जो कि T20 में तेज स्कोर खड़ा करने के हवाले से एक अथॉरिटी रखते हैं। और जी हाँ, रफ्तार का मुकाबला बाज जैसी निगाहों से हैदर अली इस वक्त करते हुए दोनों अतराफ पे बाउंड्री स्कोर की। भाग गए इस बार बॉल। ये दबाव है, ये लर्जा तारी हो जाता है फिर नौजवान फास्ट बॉलर्स को। जब लर्जा तो खैर तारी हो ही जाता है, कोई आम बैटर भी अगर कोई चौका या छक्का लगाए तो उसके बाद बॉलर जो हैं वो थोड़ा घबरा जाते हैं कि हमें इतने रन हो चुके हैं, मज़ीद जब और ज़्यादा रन होंगे तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। काफ़ी टाइट पोजीशन थी रावलपिंडी वर्सेस बहावलपुर, और 131 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 15 ओवर 3 गेंदों के बाद एक मुनासिब पोजीशन है बड़ा स्कोर खड़ा करने के हवाले से। मुश्किल सूरत हाल है शब्बीर के लिए, और इस वक्त चेंज ऑफ पेस कर सकते हैं हैदर अली की गेंद, क्योंकि हैदर अली और नो बॉल चेक किया जा रहा है, इस पर बाउंड्री लगी थी। उसे अगला बॉल जो कि बाहर था, थोड़ा सा वाइड बॉल के निशान से काफ़ी बाहर था, और इस वक्त अंपायर बेहतर एंगल से एक मरतबा फिर इसका जायज़ा लेंगे कि यह नो बॉल था कि वाइड बॉल। तो देखना होगा, निगाहें हैं अंपायर की जानिब, टीवी अंपायर पूरा अपना वक्त लेते हुए। वाइड बॉल का तो चलें रन हो गया, लेकिन अगर नो बॉल होगा जो कि नहीं है तो फिर एक फ्री हिट पे है। अब यहाँ से देखिए मेरे मुताबिक तो ये लीगल डिलीवरी है, क्योंकि अगला कदम जो बॉक्स के अंदर था। बहरहाल पिच के ऊपर भी देखना होता है कि गेंद गिरा या नहीं गिरा, तो पिच का वो जो प्लेइंग एरिया है, या तो ये जो वाइट लाइन है, साइड लाइन जिसे कहते हैं, अगर उससे बाहर जाए तो ये वाइड है, तो ये अब वाइड दे दी गई है। अब ये बड़ी टेक्निकलिटीज़ हैं गेम की, खेल की, और इससे हम एजुकेट करते रहते हैं जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको। बहरहाल ज़बरदस्त बैटिंग करते हुए इस गेंद को जोरदार तरीके से खेला, ऑफ साइड पर आउटरेज लगा है और गेंद पीछे की जानिब जाती हुई पूरी बल्ले पे आई नहीं। और मैं कहूँगा कि जो मिस हिट होती है उसमें भी बाज़ बड़ी कुव्वत होती है, गेंद काफ़ी तेज़ी से पीछे ट्रैवल करती है, वैसा हुआ नहीं। हैदर दौड़ते रहे
और एक रन मुकम्मल कर लिया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। हैदर चौका और छक्का लगा चुके हैं, एक पटला फिर बल्ले को घुमाया लेकिन गेंद कनेक्ट नहीं हुई। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि आप कनेक्ट करें। ये गेंद शायद उस तरह की नहीं थी जैसा जहाँ पे वो स्ट्रोक खेलना चाहते थे। बहरहाल मुबस्सिर अब सामने आ गए हैं, ये भी ट्राई करेंगे। इनको अब बल्ले को खोलना है, तेज़ी से रन बनाने हैं, चौका और छक्का ट्राई करना है। स्ट्राइक अब हैदर के पास आ जाएगी। तो हैदर धारक एक ऐसे बैटर हैं जो कि T20 के लिए बड़े मौजू हैं। आजकल धारक के ये टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन इनमें सलाहियत है, इनमें पोटेंशियल है। एज रॉन्ग साइड पर नहीं है। इनके लिए ज़ाहिर है कि कुछ सब्र आजमा वक्त है, क्योंकि ये टीम में स्टिल नॉकिंग। लेकिन ये इवेंट जो है, ये जो टूर्नामेंट है, ये बड़ा अहम है, शो पीस है। इसमें अगर ये परफॉर्मेंस दिखाने में कामयाब हुए तो मे बी ही विल बी अंडर सम कंसिडरेशन बाय द सिलेक्शन कमेटी। संभल कर ऑन साइड पे ड्राइव किया, 2-2 की आवाज़ है। एक मुकम्मल किया, दूसरा बनना चाहिए। जी हाँ, बन गया। ये अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट है। अब इस मौके पर जबकि 15 ओवर और बल्कि 16 ओवर हो गए, इस तरीके से विकेटों के दरमियान दौड़ना मेरे ख्याल में खुशाइन बात है। तो 16 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ 136 पर 3। ये ऑन साइड पर खेला था हैदर अली ने। पहला रन बहुत ही तेजी के साथ लिया और उसी फुर्ती के साथ पलटे और दूसरा स्कोर भी मुकम्मल किया। एक 136 पर 3, 16 ओवर 24 गेंदें कम अज़ कम बाकी हैं जो लीगल डिलीवरीज होती हैं। तो बच्चे भी देख रहे हैं कि वालिदा क्या कर रही हैं। मुझे खींच रही हैं, मेरी तस्वीर खींची। आजकल के बच्चे जो हैं वो बड़े कंप्यूटर लिटरेट हैं। खुशी का माहौल है, बेहतरीन एंटरटेनमेंट है ये। You can come and you can join all those who are here to witness this coveted the ABS Developer National T20 Qualifier 2025-26 even। हैदर अली को आप देख रहे हैं, हेलमेट पहनेंगे, तैयार हो जाएंगे, कमर बस्ता हो जाएंगे टू हिट 4s and 6s। शाम के वक्त कुछ खुनकी में इजाफा होता है। और अब मोहम्मद उमर आए हैं, ये भी पुराने तजर्बाकार क्रिकेटर हैं। इनका नाम काफ़ी आपने सुना होगा डोमेस्टिक में। उमैर हैं, उमैर इस मौके पर आए हैं जब ताबड़तोड़ हमले करने की कोशिश करेंगे हैदर और उनके साथ मुबशर। खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, गेंद को खेल दिया वापस बॉलर की जाने। भी एक जूसी फुल टॉस थी, नहीं छोड़ना चाहिए ऐसी गेंद को। सिर्फ आम कहा जाता है, नहीं बख्शना चाहिए, इसको ऊंचा खेलना चाहिए। और ये हाई टाइम है। इस बार इसको ऑन साइड पे खेला है, एक रन बनाया है। क्या दूसरा बनेगा ये देखना होगा, नहीं, लेकिन एक रन ही का इजाफा हुआ। अब आ गए हैं हैदर। तो हैदर इज अ मैन इन चार्ज, हैदर इज अ मैन इन एक्शन, और हैदर इज अ मैन ऑफ द मोमेंट। ये 43 रन पर नॉट आउट है। स्पिनर को उतना ही अच्छा खेलते हैं जितना फास्ट बॉलर को खेलते हैं। इनका लाइट बैट है, मोटा ब्लेड है उसका। आउट हो जाएंगे या नहीं ये देखना होगा। चल पड़े, मैं तो समझ चुका था कि ये इसमें कोई शक नहीं है, और खुद भी चल पड़े जैसे गेंद लगी थाई के ऊपर। और इस तरह हैदर की इनिंग्स का बेवक्त खात्मा हुआ और वो रुखसत हुए 43 रन बनाकर। तो ये एक बड़ी कामयाबी है फॉर बहावलपुर। फ्रंट फुट चेक किया जाएगा उमैर का, और उम्मीद तो की जा रही है कि फाइन डिलीवरी लीगल बॉल होगा। इस तरह इख्तिताम नहीं होना चाहिए था हैदर अली का जिस तरह के हुआ। यानी कि बिल्कुल फेयर डिलीवरी। एक लो फुल टॉस थी जिसको पूरी तरह से मिस कर गए हैदर अली। बैक लेग पे थाई पे बॉल लगा, बिल्कुल फेयर डिसीजन अंपायर का।
22 गेंदों का सामना किया, 43 रन बनाए, 2 छक्के 4 चौके लगाकर हैदर अली आउट। रावलपिंडी 137 पर 4। उमैर ने इस ओवर में 2 फुल टॉस किए, दोनों रिसेप्टिव थे। एक पे तो कोई रन नहीं बना, दूसरे पे एक कीमती विकेट उन्होंने हासिल की हैदर की। तो इस तरह उमैर 1 विकेट हासिल कर चुके हैं पहले ही ओवर में 1 रन देकर। खुश नसीब रहे, नए बैटर मैदान में आ चुके हैं और अब तैमूर सामना करेंगे उमैर की अगली गेंद का। माउंट साइड पे ड्राइव, खाता खोल लिया, 1 रन ही का इजाफा होगा। तो इस तरह बड़ा ऐसा मैच है जिसमें आगाज रावलपिंडी का बहुत अच्छा था। हैदर जब तक विकेट पर मौजूद थे लग रहा था कि रन्स बनेंगे, लेकिन वो भी रुखसत हुए। वाइड मुबस्सर को और तैमूर को अब अपने हाथ खोलने होंगे, लॉन्ग हैंडल इस्तेमाल करना होगा। ये इस तरीके से आउट हुए, क्रॉस के लिए एक आसान गेंद था। जोरदार ड्राइव ऑफ साइड पे, लॉन्ग ऑफ की जानिब, फील्डर आएंगे। 1 रन का इजाफा हुआ और दूसरा लेने की कोशिश थी, लेकिन इसमें हाँ हाँ नाना की आवाज़ आप सुन सकते हैं और ये गलतफहमी हो सकती थी। बहरहाल 1 रन का इजाफा हुआ, 140 पर 4 रावलपिंडी। 17 ओवरों का खेल मुकम्मल हो चुका है। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, ABS डेवलपर नेशनल T20 क्वालिफायर 2025-2026। रावलपिंडी का मुकाबला बहावलपुर। रावलपिंडी ने 140 रन बनाए हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। मुबस्सर और तैमूर इस वक्त विकेट पर मौजूद हैं, बासित बॉलिंग करने के लिए आए हैं। अब यहाँ पर हम तवक्को कर रहे थे कि हिट आउट होगा, ऑन स्लॉट होंगी, ताबड़तोड़ हमले होंगे बॉलर पर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कहना होगा कि बहावलपुर ने काफ़ी हद तक कदम लगाई है, ये किस्मत भी इन पर मेहरबान रही है। उमैर ने जो गुज़िश्ता ओवर किया इसमें 2 फुल टॉसेस थी, एक फुल टॉस पे रन नहीं बना, छक्का नहीं लगा, दूसरे पे बैट्समैन हैदर अपनी विकेट खो बैठे। बासित बॉल करेंगे, बल्कि इमरान आ गए। अब इमरान मीडियम पेस गेंदें करते हैं, ये पैड पर गेंद लगी है, इसको ऑन साइड पे खेलने के लिए गए थे और इसको अच्छा गेंद कहा जाएगा जिस गेंद पर रन ना बने, जो डॉट बॉल हो। इस सूरत हाल में जबकि 18वां ओवर जारी है, अगर डॉट बॉल होती है तो वो बहुत उसको अप्रिशिएट किया जाएगा हर लिहाज से, क्योंकि बैटर ऑल आउट जा रहे हैं फॉर हिटिंग 4s एंड 6s। रन वाकई अब तेज़ी से बनने चाहिए। 140 रन बन गए हैं और 18 बल्कि अब 17 गेंदें रह गई हैं, तो इसमें हर गेंद में रन्स बनने चाहिए, चौके और छक्के भी लगने चाहिए। इमरान आए, फिर कोई रन नहीं, मिस फील्डिंग हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था, दबाव में मजीद इजाफा होता। इस मरतबा खतरनाक यॉर्कर डिलीवर किया इमरान रंधावा ने। भावलपुर की आज कमान संभाली हुई है इमरान रंधावा अपना आखिरी ओवर करते हुए, और रन इतने नहीं दिए इमरान रंधावा ने, और इनका जो बॉलिंग स्पेल था वो काफ़ी हद तक तसल्ली बख्श था। ये देखिएगा पिछला लास्ट बॉल, खतरनाक यॉर्कर, इसमें बोल्ड भी हो सकते थे मुबस्सिर। और अगर डेप्थ ओवर की बात करें तो एक बड़ा ज़बरदस्त हथियार होता है फास्ट बॉलर के पास कि वो यॉर्कर लेंथ उनको आता हो, परफेक्ट यॉर्कर मारना। ऑन साइड पर ड्राइव लॉन्ग ऑन की जानिब। अब यहाँ पर सिंगल्स तो हो रहे हैं, कोई ऐसी खतरनाक जारहाना बॉलिंग नहीं है। मुबस्सर को और तैमूर को अपना लॉन्ग हैंडल इस्तेमाल करना होगा, चौके और छक्के लगाने की नीयत से और जिस्मानी और रूहानी तौर पर कोशिश करना होगी। लगता है ज़ेरे कुछ दबाव हैं, कोई ऐसी एक्यूरेट या मुश्किल गेंदें हो नहीं रही। सॉफ्ट डिस्मिसल था मैं कहूँगा हैदर का, वो क्रॉस बैट एक फुल टॉस को खेले, अपनी विकेट दे बैठे। तब से लेके अब तक जितनी गेंदें भी हुई हैं उसमें कोई बड़ा स्कोर नहीं हुआ, एक डॉट बॉल और 2 सिंगल्स हुए हैं, तो हिट आउट करना होगा। अब नहीं तो फिर कभी भी नहीं, कदमों का इस्तेमाल सीधा गली में। तो ये किसी हद तक फ्रस्ट्रेशन होगी फॉर मुबस्सर, सिर्फ सिंगल हुआ। तैमूर 2 गेंदें खेल चुके हैं, 22 गेंदें खेल चुके हैं मुबस्सर, सिर्फ
23 रन के लिए। तो इसमें अब ज़ाहिर के ऑल आउट जाना चाहिए। 6 विकेटें महफूज हैं। ये दोनों मुस्तनद बैट्समैन हैं। बॉलर्स डोमिनेट कर रहे हैं और ये बड़ा क्रिटिकल जंक्शन है इस मैच का। ये 18वां ओवर है। कब हिट आउट करेंगे? सिंगल्स की कतन ज़रूरत नहीं है इस वक्त रावलपिंडी को, चौकों और छक्कों की ज़रूरत है। देखना होगा कि अगली गेंद पे किस तरीके से हिट आउट करते हैं। इस गेंद को जोरदार तरीके से ड्राइव किया ऑफ साइड पर। रवायती तौर पर वहाँ पर फील्डर मौजूद होते हैं, सिर्फ 1 रन का इजाफा हुआ। तो ये अब इम्प्रोवाइज़ करना होगा। वो जो एक उल्टी सीधी शॉटें होती हैं इस मौके पर वो लगानी होंगी, विकेटें छोड़कर। जो रिवर्स स्वीप है या स्कूप है, ये सब कुछ अब कोई दकीका छोड़ना नहीं होगा इन दोनों बैटर्स को। बिल्कुल रिस्क यहाँ पे अब लेना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद सिर्फ 2 ओवर्स बाकी हैं। लेकिन आरिफ इमरान रंधावा की भी यहाँ पर करनी होगी। लगातार फुल बॉल कर रहे हैं और हल्का सा अगर लेंथ मिस किया तो यहाँ तो वो फुल टॉस बनेगी, यहाँ तो वो स्लॉट में आएगी और जिस पर दोनों पर हिट आउट करना बहुत आसान होता है। लेकिन अब तक बहादुरी के साथ साथ एक्यूरेसी भी शो की है रंधावा ने, इमरान रंधावा। जो एक अंदाज था वैसा ही बरकरार है सिंगल्स के हवाले से। तो अब 18 ओवरों का खेल मुकम्मल हुआ, 2 ओवर्स का खेल बाकी है। रावलपिंडी 145 4 विकेटों के नुकसान पर। अब ये कमजोर कोशिश है, गेंद कहाँ जाएगी ये देखना होगा। फील्डर पीछे से आएंगे। 1 रन का इजाफा। अब ये जो आगे पड़ी हुई गेंद है, जो फुल रन गेंद है, गेंद आपके बल्ले पर आ रही है, आप इसको हिट आउट करें, क्लियर करें बाउंड्री को, क्लीन हिट लगाएं। दोनों मजबूत कदोकामत के मालिक हैं। अब ये जो ऊपर गेंद खेली है कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 6 रन के लिए। ये बार बार दोहराना होगा। अभी भी वक्त है, अभी भी मौका है। और ये एक बड़ी उम्दा काविश थी तैमूर की, फुल टॉस को वहीं पहुंचाया जहां ये गेंद जाने की मुस्तहिक थी, यानी लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। इस मरतबा किस्मत उतनी मेहरबान नहीं, मौका देख लिया था तैमूर ने। फुल टॉस बॉल थी, लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक ताबड़तोड़ हमला और गेंद आउट ऑफ द पार्क। सिंगल ऐसी सूरत हाल में होता है और ऐसा ही हुआ। छक्के के बाद छक्का लगाएं, चौका लगाएं। हाँ, इसके बाद 1 ओवर और फेंका जाएगा। इस ओवर के 3 गेंदें बाकी हैं। अब सिंगल्स पर मत इंतजार करें। यू शुड गो ऑल आउट। जिसे कहते हैं तन मन धन की बाजी लगानी होगी इस वक्त मुबस्तर को और तैमूर को। कदमों का इस्तेमाल जोरदार तरीके से स्ट्रोक को खेला है और गेंद गई है लॉन्ग ऑन की जानिब, जहां पर फील्डर ने कोशिश की और गेंद को रोकते हुए फिर लगता है वो उन्हें कुछ चोट आई है। ये सिलसिला कुछ नाजुक अंदाम हो गए हमारे क्रिकेटर जो है, बड़ी जल्दी तिब्बी हमला जो है वो मैदान के अंदर दाखिल होता है। और ये अमल जो है इसमें ज़्यादा तकलीफ में होंगे इस वक्त। अगर हम दोबारा देखें गेंद के पीछे अब नमूदार होंगे गायब से फील्डर। बज़ाहिर तो गिरे हैं, कोई ऐसी चोट लगनी नहीं चाहिए ऐसे डाइव करते हुए। बहरहाल खड़े हो गए हैं और अच्छी बात यह है कि अब शायद अपने ही वज़न से इनको कोई ट्विस्ट हुआ है किसी मसल का। मुतबादिल खिलाड़ी अंदर आएंगे, कुछ देर आराम करेंगे, फिर दाखिल हो जाएंगे। जवां हिम्मत हैं, जवां खिलाड़ी हैं, लेकिन गिरते हुए मेरे ख्याल में ऐसी शिद्दत से कोई ज़रब लगनी नहीं चाहिए या कोई मसल या स्प्रेन जो है या लिगामेंट जो है उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। जवान क्रिकेटर्स हैं और ज़ाहिर है कि कोशिश करते हुए गिर जाते हैं। इस गेंद को अच्छे तरीके से खेल दिया है ऑन साइड पर 4 रन के लिए। अब ये बेराय दुरुस्त आयद वाली बात है, ये चौका लग चुका है,
लेकिन एक मोनूमेंटल टारगेट जो कि 190 प्लस का हो सकता था वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। 18 ओवर 5 गेंदें 161 4 आउट। यहाँ मुबस्सिर खान इस वक्त ताबड़तोड़ हमले करते हुए देखिएगा। फुलर डिलीवरी थी जिसको खेल दिया डीप मिड विकेट की जानिब और दूसरी बाउंड्री मुबस्सिर खान की। और विकेट कीपर रिसीव हुए, ये चौका होगा या नहीं देखना होगा। गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। अब विकेट कीपर भी हैरान और परेशान थे कि ये गेंद बैट को क्यों नहीं लगी। बाय के 4 रन हो गए, लेकिन बाय के 4 रन दिए नहीं, बैट का कोई हिस्सा लगा, नीचे वाला हिस्सा। आप ठीक कह रहे हैं। तो इस तरह 19 ओवरों के बाद अब 165 4 विकेटों के नुकसान पर तैमूर 10 पर और मुबस्सर 37 रन पर। उमर के बाद अब बॉलिंग के लिए बासित आए हैं। बासित को टाइट लाइन और लेंथ से गेंदें करना होगी, जबकि तैमूर चाहेंगे कि वो उनको ऊंची ऊंची ईंटें लगाएं। इस गेंद को जोरदार तरीके से खेल दिया ऑन साइड पर 6 रन के लिए, बहुत दूर स्टैंड्स के सामने एक बड़ा छक्का लगाया तैमूर ने और सही तरीके से इसको लिफ्ट किया। जाहिर है कि ये शॉट बनाई गई है। जी हाँ, रफ्तार उतनी नहीं थी, पूरा मौका मिला तैमूर को हिट आउट करने का बासित के अगेंस्ट। तो पहली बॉल पर खुशामदीद कहा बासित को, वो बासित आए और बॉल गया बाउंड्री लाइन के पार। तो पिछला ओवर ही बड़ा ज़बरदस्त और इस ओवर में भी आते ही क्या ज़बरदस्त वेलकम हुआ है बासित का। मुबस्सिर खान दूसरे नॉट आउट हैं जो 37 रन पर हैं। तैमूर 16 रन पर बैटिंग कर रहे हैं, 6 गेंदों का सिर्फ सामना किया है। तो इस तरह आपको बैटिंग करनी होगी, ऊंचे स्ट्रोक लगाने होंगे। गुलाम अली हैं, उनके तेवर बता रहे हैं कि उनका मिजाज दुरुस्त नहीं है। वो ये देख रहे हैं कि किस तरह की गेंद करनी चाहिए थी, कैसी गेंद कर दी। फुल टॉस ऑन साइड पे ड्राइव और 1 रन का इजाफा होगा। अब ये थोड़े लीनियंट हो गए थे अमूर, इस गेंद को भी छक्के के लिए ट्राई करना चाहिए था। तैयार रहना चाहिए कि इस वक्त बासत पर प्रेशर है, वो कोई बुरी गेंद कर सकते हैं, फुल टॉस कर सकते हैं, शॉर्ट गेंद कर सकते हैं और मुझे तो हिट आउट करना है, सिंगल पर इत्तेफाक करना है। इस मौके पर मेरे ख्याल में कोई मुनासिब हिकमत अमली नहीं है। आई थिंक बेहतर शॉट सिलेक्शन हो सकती थी, फुल टॉस थी, एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेल सकते थे, ओवर कवर मार सकते थे, लेकिन लॉन्ग और टारगेट किया और इसलिए नहीं शॉट लगी। ऊंचा स्ट्रोक ऑफ साइड पर लॉफ्टेड ड्राइव है और गेंद जाएगी छक्के के लिए बाहर। तो एक आइडियल आगाज है, पहली गेंद खेली इस ओवर में मुबस्सिर ने और सीधा छक्का लगा दिया बॉलर के ऊपर से, लॉन्ग ऑफ पर खड़े हुए फील्डर के ऊपर से और गेंद 6 रन के लिए बाहर चलेगी। ये एक पुरलुत्फ मंजर है, ये दिलकश बेहतरीन स्ट्रोक मुबस्सिर का, लॉफ्टेड ड्राइव, इससे बेहतर और क्या हो। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, और लॉन्ग ऑफ भी देखते रहे कि बॉल कब आई, कब उनके सर के ऊपर से गई, 6 रन के लिए। तो पहली 3 गेंदों पर 13 रन बासित ने दे दिए। रावलपिंडी अब 178 पर। कुछ मान या कुछ रिस्पेक्टेबिलिटी ज़रूर रावलपिंडी के मजमूई स्कोर में हम देख सकते हैं, 178 रन। और तवक्को इस बात की है कि जो आने वाली 3 गेंदें बाकी हैं उसमें मज़ीद रन बनेंगे। 185 एक रिस्पेक्टेबल, एक चैलेंजिंग तो नहीं लेकिन एक अच्छा फाइटिंग स्कोर होगा अगेंस्ट बहावलपुर। गुलाम अली जिस तरीके से कुछ गेंदें अब की गई हैं उससे ज़्यादा खुश नहीं हैं। गुलाम अली एक थिंकिंग क्रिकेटर हैं और जो उनका कंसर्न है वो ज़ाहिर है कि जब ये बॉल तब्दील होगा या तो उसकी ज़ाहिर शक्ल बदल गई है क्योंकि कुछ ज़ोरदार हिटें लगी हैं, पर मुआयना कर रहे हैं 19 ओवर्स के करीब जो पुरानी गेंद होगी या जिस गेंद की शक्ल सूरत इस पुराने गेंद जैसी होगी उससे उसको तब्दील कर दिया जाएगा। गेंदों का डब्बा हाथ में था में जो रिजर्व अंपायर हैं वो मैदान में दाखिल हो चुके हैं। अब ज़ाहिर है कि ये वापस जाएंगे कामरान एज ए रिजर्व अंपायर। अब ये बता दिया गया है बैटर को कि गेंद तब्दील हो गया है। आप
कि नोटिस में ये बात लाई जा रही है। ये जो ऑन फील्ड अंपायर है उन्होंने बता दिया है मुबस्सिर को। मुबस्सिर 43 रन पर नॉट आउट हैं। बासित पर अंडर प्रेशर होगा, इस ओवर अंडर प्रेशर हैं। इन पर इनकी गेंदों पर 2 छक्के लग चुके हैं। इस गेंद को जोरदार तरीके से ड्राइव के ऑफ साइड पर 1 रन बना है और सिर्फ 1 रन का इजाफा होगा। मिस फील्डिंग हुई है। इस पर क्या दूसरा रन लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था, ये अलग बात है। लेकिन अब 179 रन हो गए हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। 2 गेंदें बाकी हैं रावलपिंडी के मुकर्रर 20 ओवर्स की जो कि इनको खेलने हैं। और इसमें इन द एंड मैं कहूँगा एक मुनासिब स्कोर हो गया है। इस पर ये फाइट कर सकते हैं, मैच को जीत भी सकते हैं, रावलपिंडी पर प्रेशर डाल सकते हैं। बड़ा कीमती मौका गवाया है। 195-200 रन हो सकते थे लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये आउटरेज लगा और खेलना कहीं चाहते थे, गेंद कहीं गई। बड़ा दिलचस्प और अजीबोगरीब किस्म का ये शॉट था। 1 रन का इजाफा हो गया तो 180 रन बन गए हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी गेंद है और ये मुबस्सिर खेलेंगे। दाएं तरफ देख रहे हैं कि मुझे अगर ये स्ट्रोक आप दोबारा देखें, ये बैट के नीचे वाले जिसे कहते हैं बॉटम पे लगा और 1 रन फिर भी हासिल कर लिया। फील्डर को गेंद को पकड़ते ही थ्रो करना चाहिए था लेकिन लगता है कि ही लेट देम गो कि आप एक सिंगल ले लें। मुबस्सिर आखिरी गेंद खेलेंगे। 44 पर नॉट आउट हैं और ओवर द विकेट आया। इस गेंद को प्लेस कर दिया है थर्ड मैन की जानिब। 1 रन बना है और मिस फील्डिंग हुई। अब ये रोकने का तरीका शायद इसलिए था कि गेंद थोड़ा घूम गया। बहरहाल बैट्समैन दौड़ते रहे और 1 रन मुकम्मल कर लिया। तो इस तरह अब 20 ओवर्स में 181 4 विकेटों के नुकसान पर मुबस्सिर नॉट आउट रहे। उम्दा 45 रन बनाए। इन दी एंड तैमूर ने अच्छी नहीं खेली, 8 गेंदों में 18 रन बनाए। तो बासित जो हैं उन्होंने 3 ओवर्स में 31 रन दिए। तो एक सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है बाय रावलपिंडी बैटर्स। हैदर ने भी उम्दा बैटिंग की और आज जहां पर हमने बड़े अच्छे प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स देखे, मैदान के चारों तरफ छक्के भी देखे, क्लीन हिटिंग काफ़ी हुई और इसमें बॉलर्स जो हैं वो सड़तोड़ कोशिश करते रहे। मेरे ख्याल में बहावलपुर की जो बॉलिंग है उसमें कोचिंग का अमल दखल दिखाई दिया। कोई लूज गेंदें की नहीं और फिर किस्मत ने भी यावरी की। मुतादिद गेंदें ऐसी भी हुई जो ख़राब थी लेकिन उन पर चौके या छक्के लगे नहीं। बिल्कुल मैं सही फरमाया कि बेहतरीन बॉलिंग की कई बॉलर्स ने। यहाँ पर नाम लेना होगा इमरान रंधावा का, अली शब्बीर का, जिन्होंने बड़ी तेज़ बॉलिंग की। और अब देखना होगा कि किस तरह से रन परचेज की तरफ जाएगी भावलपुर। हाईलाइट्स आप मुलाजा कीजिए जिस तरीके से जो रावलपिंडी के बैटर से उन्होंने आगाज़ किया। आगाज़ बड़ा शानदार था। ये प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स हैं। बड़ी टीम जो है इसके बैटर भी बड़े होते हैं और एक अच्छा इंप्रेशन पड़ा, एक मैसेज अच्छा गया है कि ये टीम है इसके पास अच्छे बैट्समैन है। ये आउट होने का अजीबोगरीब तरीका था। रन्स बनते रहे और विकेटें भी गिरी लेकिन ये दरमियान में एक सूरत हाल ऐसी आई थी जब ऊपर तले कुछ विकेटें गिरी लेकिन फिर ज़ाहिर है संभली। हैदर आए, हैदर ने अच्छे स्ट्रोक्स खेले। रही बात ऑन साइड पे, ऑफ साइड पर हम देखें कि ये नाटेदार एक पुल थी। फिर एक क्रॉस शॉट के लिए हैदर अपनी विकेट खो बैठे। उसके बाद फिर कुछ चौके छक्के लगे और स्कोर जो है वो 181 हो गया जो कि एक मैं कहूँगा कि अच्छा स्कोर है। नीचे अब मीरब जीशान हैं, वो एक इंटरव्यू के तैयार हैं। तो आइए चलते हैं मीरब की तरफ। Yes, this is ABS Developers T20 qualifiers and we are here और मेरे साथ मौजूद है मुबस्सिर खान जिन्होंने अभी बहुत ही ज़बरदस्त फिनिश किया है। इनसे बात करते हैं कि कैसा रहा। मुबस्सिर, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा आपने मतलब एकदम से चार्ज किया, बल्ला घुमाया और मतलब रन्स कहाँ से कहाँ बढ़ते गए। कैसा फील कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ और जिस तरह उनके नए बॉल से फास्ट बॉल ने बॉलिंग की बहुत अच्छी की। फिर मेरी और हैदर की पार्टनरशिप लगी, हैदर ने उन पर अटैक किया तो मैं साथ खेलता रहा। मुझे ये पता था कि 2-3 ओवर मैं अच्छे खेलूंगा इंशाल्लाह, तो हमारा स्कोर बोर्ड बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं बिल्कुल ऐसे ही देखिए जिस तरह से मतलब एंकर रोल प्ले करना, फिर उसके बाद खुद फ्रंट से आना, दोनों चीज़ें मैनेज की हैं। अब बॉलिंग की बारी है और मतलब रन्स तो अच्छे हैं ऑन बोर्ड, लेकिन क्या लग रहा है कि मतलब हो जाएंगे डिफेंड? जी बिल्कुल, जिस तरह आप कह रही हैं मैं टीम का मेन प्लेयर हूँ, मुझे यही रोल अदा करना है और इंशाल्लाह बॉलिंग में अब एफर्ट करेंगे और उनसे कम से कम उनको 100 से अंदर इंशाल्लाह उनको आउट करेंगे। अच्छा, आज का मैच जीतना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोई खास प्लान लेकर आए हैं? जी हमारे लिए तो तीनों मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम एक भी मैच आ रहे तो हम टूर्नामेंट से आउट हो जाएंगे। तो प्लान यही है कि हमने इंशाल्लाह उनको
एंड जितना जल्दी हो सके आउट करें ताकि हम अच्छे मार्जिन से जीतें। चले, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। विद दैट ओवर टू द कॉम बॉक्स। थैंक यू सो मच। ये थे मुबस्सिर खान जो अपने तासुरात का इजहार कर रहे थे। इससे पहले हमने देखा कि रावलपिंडी शिकस्त से 2-4 हुई थी। अब देखते हैं बैटिंग स्कोर का। यासिर ने बनाए 27 रन, नासिर ने बनाए 25, हैदर अली उम्दा कारकर्दगी रही आज, 43 रन की बारी खेली। मुबस्सिर खान नॉट आउट रहे 45 पर और तैमूर ने बनाए 18 रन। बॉलिंग में अजहब ने 4 ओवर किए, 11 रन दिए, 30 रन 11 डॉट बॉल थे, 30 रन देकर 1 विकेट हासिल की। सबसे कामयाब बॉलर रहे जुनैद, जिन्होंने 27 रन देकर 2 विकेट हासिल की। 3 ओवर्स में 1 विकेट हासिल की। उमर ने 2 ओवर में 24 रन देकर, बिसाइड सिमरान ने 4 ओवर्स में 28 रन दिए, उनको कोई विकेट हासिल नहीं हुई। फॉलो विकेट भी आप नीचे देख सकते हैं, 181 पर 4 विकेटें कम गिरी। जो ऑल आउट जाना चाहिए था, मुझे लगता है इन दी एंड किसी हद तक कोशिशें कारगर साबित हुई, लेकिन वो जो एक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एक बड़ी टीम के हवाले से कि पिंडी जो है वो बड़ा स्कोर खड़ा करेगी, ऐसा हुआ नहीं। तो भावलपुर की एक डिसेंट परफॉर्मेंस है बॉलिंग के शोबे में। टारगेट 181 का है और ये कोई इतना मुश्किल भी नहीं है, कोई आसान भी नहीं है। कोशिश करना होगी भावलपुर को। तो यहाँ पर लाइट रोलर लिया जा रहा है, लेकिन इस दौरान एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब बहावलपुर की इनिंग्स का आगाज़ होगा तो फिर हम आपके लिए लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए एक मरतबा फिर हाजिर होंगे गद्दाफी स्टेडियम लाहौर।
जी, इनिंग्स ब्रेक के बाद एक बार फिर गद्दाफी स्टेडियम लाहौर से आप तमाम नाज़रीन का खैर मकदम करते हैं। दोनों पार्ट इस वक्त फील्ड में उतरते हुए मैच खेला जा रहा है बसिलसिला ABS डेवलपर नेशनल T20 क्वालिफायर 2025 एंड 6। रावलपिंडी मध्य मुकाबले उतरी हैं आज भावलपुर के। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था रावलपिंडी की टीम ने और उन्होंने अपने मुकर्ररा 20 ओवर्स में बनाए हैं 181 रन। मुबस्सिर खान और हैदर अली की जारहाना बारी की बदौलत ये टारगेट मुमकिन हुआ और अब हम देखेंगे कि भावलपुर की टीम इस हदफ का ताकुब करने में नाकाम होती है या फिर आज कामयाबी उनके कदम चूमेगी। ये ओपनिंग बल्लेबाज इस वक्त मैदान में उतरते हुए इरादे पुख्ता और जो T20 फॉर्मेट के हवाले से जिस तरह की सलाहियत दरकार होती हैं उन दोनों से लैस है ये बल्लेबाज। 182 रन का हदफ और जो दरकार औसत है वो है 9.10। बेहतरीन मनाजिर हैं, मौसम बड़ा बेमिसाल गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। फायर्स फील्ड पर आ चुके हैं, फील्ड सेट होती हुई। लेफ्ट हैंडेड बैटर मोहम्मद सुदेस, लेफ्ट हैंडेड बैटर बैटिंग का करेंगे आगाज भावलपुर रीजन के लिए और उनके हमरा हैं मोहम्मद अमार, ये भी बाएं हाथ के बैटर और अमूमी तौर पर जो बाएं हाथ के बैटर होते हैं ताबड़तोड़ हमलों में बड़े मशहूर होते हैं। काशिफ अली बहुत ज़बरदस्त बॉलर, बड़ी नपी तुली लाइन लेंथ है इनकी और राजा सलीम ऐसा कॉम बॉक्स में मौजूद है। 182 का हदफ है। भावलपुर का आगाज होगा और जो एक टारगेट है वो इतना आसान नहीं है 182 का। शुरू ही से तेज बैटिंग करनी होगी। खाता खोल लिया है, बराह रास्त रोज स्टंप को जाकर लगी है और उसका नतीजा ये हुआ कि 1 को 2 में बदल दिया है। बजाय इसके कि ना हिट किया जाता या कोशिश की, पीछे बैकअप नहीं था तो 2 रन हुए हैं। मोहम्मद अकरम और सुदेश, बड़ी उम्मीदें हैं आज भावलपुर को। मैच जीतना बहुत ज़रूरी है रावलपिंडी रीजन के लिए। यहाँ तक बात है काशिफ अली की, इनकी लाइन, इनकी लेंथ, इनकी एक्यूरेसी वो अपनी मिसाल आप है। और इस वक्त जो डायरेक्ट थ्रो लगी थी रेफर किया गया है थर्ड अंपायर को और बड़ी देर से ट्रैक किया है और बड़ा करीबी मामला है, खतरनाक मामला है क्योंकि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि बल्ला और पांव दोनों हवा में। नहीं, बल्ला तो ऊपर था लेकिन ये है कि ये चीज़ सीख जानी चाहिए कि आपको बल्ला रोल करना होता है हर हाल में। ये कि यू आर नॉट इन वॉकिंग इन अ पार्क जहाँ पर आपने बल्ला पकड़ा हुआ, बल्कि आप एक बहुत ऊंचे लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं। इसमें बड़ा ख्याल रखना होगा। छेड़खानी की गेंद के साथ इस बार नीचे भी रही गेंद थोड़ी सी और टप्पा पड़ने के बाद बाहर भी निकली, तो एक अच्छा आउट स्विंगर था। और अगर जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपको बल्ले को रोल करना होता है। ये वो आखिरी गेंद है, चेस किया, नीचे जाकर झुककर गेंद को कलेक्ट किया विकेट कीपर ने। बयासी का हदफ है, ये आसान नहीं होने वाला सफर। मुश्किलात वक्तन बवक्तन हम देखेंगे काशिफ अली और जहांदाद खान की जानिब से। कदमों का इस्तेमाल करके मिड विकेट मारना चाहते थे लेकिन वंस अगेन आउट स्विंगिंग डिलीवरी देखने को मिली काशिफ अली की। शाम का वक्त है और हेवी एटमॉस्फेयर भी है। टप्पा पड़ने के बाद गेंद बल्ले से कोसों दूर थी। इसको एक बेहतरीन गेंद कहा जाएगा हालात के पेश नज़र। सुदैस आगे बढ़कर इसको खेलना चाहते थे
और ये देखते हुए ज़रा उस जगह पर गेंद की जो रिप केज के करीब होती है, यानी कि मिडिल और लेग को अटैक किया काशिफ ने बड़ी होशियारी से। ये तजर्बाकार क्रिकेटर है, समझ बूझ है इनको। ऑफ साइड और ऑन साइड पर आप फील्ड देख सकते हैं। काशिफ गेंद करेंगे, बावजूद कोशिश के इस गेंद से कोई राब्ता नहीं हुआ बल्ले का सुदैस के। ये वो नौजवान है जो ये क्रिकेट देख रहे हैं, हशाश बशाश चेहरे हैं और इस तरीके से बैट के करीब से होती हुई सीधी विकेट कीपर के ग्लव्स में। यह सब जिक्र किया था कि एक्यूरेसी अपनी मिसाल आप है, और लगातार जो राइट एरिया है उसको भांप लिया है काशिफ ने, और उसी जोन में के बाद दीगर डिलीवरीज बॉल करते हुए काशिफ अली मुश्किलात में है इस वक्त सुदेश, ये कहना होगा। लेकिन जिम्मेदारी का मुजाहरा, दूसरी तरफ सबर का दामन भी हाथ से नहीं छोड़ सकते। बेहतरीन शॉट और मिस फील्ड करती है यहाँ पर। ये जिस लेवल की क्रिकेट है उसमें ये जो बड़ी आम सी कोशिश थी, वैसे होना नहीं चाहिए। यू हैव बीन वॉच्ड बाय मिलियंस यंगस्टर्स, आपको देख रहे हैं कि इस लेवल की क्रिकेट में ऐसा नहीं होता। जो फ़र्क है वो साफ वाजे होना चाहिए। अगर देखें विद द पर्पस, इसको स्टीयर किया थर्ड मैन की जानिब, अब नमूदार होंगे गायब से ये फील्डर। ये कोई तरीका नहीं है, आपको गेंद को कब्जे में करना होता है, तन मन धन की बाजी लगानी होती है, और यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं। गेंद कहीं था, कदम कहीं थे, नज़रें कहीं थी, हाथ कहीं थे। तो इसमें आइंदा पूरी कोशिश करना होगी फील्डर को, इस तरह के कामों में नहीं होना चाहिए। बेहतरीन आउट स्विंग है, टप्पा पड़ने के बाद गेंद बाहर निकली, और ये जो गेंद है ये आमतौर पर बड़ी ख़तरनाक होती है फॉर लेफ्ट हैंड। पहला ओवर ख़त्म हुआ, बहावलपुर 6 बगैर किसी नुकसान के। जहादात खान लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम, ये एक विकेट टेकर बॉलर हैं। वक्तन बा वक्तन है वो झटके देते हैं अपोजिशन को, और आज भी एक बड़ी परफॉर्मेंस इनसे मुतवक्के है। ड्राइव ऑफ साइड पर सिंगल ले लिया है। जहादात एक ज़बरदस्त नाम है, नाम में बहुत कुछ रखा होता है। ये तेज़ गेंदें करते हैं, और पाकिस्तान के जो नामी ग्रामी कौमी सतह के क्रिकेटर हैं उनमें इनका शुमार होता है। अगर इस गेंद को देखें काफ़ी आगे पड़ी थी, इसको जोरदार ड्राइव के ऑफ साइड पर 1 रन तेज़ी से लिया, और 1 रन ही का इजाफा होना था। तवक्को थी कि दूसरा भी बन जाएगा, और ऐसे ही हुआ। ओवर थ्रो हुई, जहादात को विकेटों के पीछे खड़ा होना चाहिए था, वो देखते रहे, गेंद स्टंप्स को नहीं लगी और पीछे चली गई, जिसके नतीजे में 1 रन के साथ फिर दूसरा रन भी जोड़ लिया दोनों बैटर्स ने। अकरम 2 पर हैं, 8 बगैर किसी नुकसान के। ऊपर आती हुई गेंद, जहादात जोर लगाते हैं और काफ़ी एफर्ट्स पुट ऑन करते हैं हर गेंद पर। ज़्यादा भारी भरकम नहीं है। आजकल के फास्ट बॉलर जो हैं वो अपने बॉडी स्ट्रक्चर पे बड़ी तवज्जो देते हैं। ये अगर गेंद हम देखें, शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, देर से बल्ले पर आया, यानी इरादा जिसको ऑन साइड पे खेलने का था वो तजब्जुब का शिकार हो गए। इस बार सुदैस, अब बड़े प्रोटेक्टिव गियर्स हैं, और हम देख सकते हैं कि एक आर्म गार्ड भी है, अच्छी बात है। अब तो चेस्ट पर भी गार्ड होता है, थाई पैड होता है, प्रोटेक्टेड गार्ड होता है, लेग गार्ड्स होते हैं। ये सब कुछ जो कुछ है हेलमेट के अलावा खिलाड़ियों की हिफाजत के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। ऑफ साइड पर जहादात की जो फील्ड है वो आप देख सकते हैं, इसमें गली है, स्लिप के अलावा कवर, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ है। जहादात गेंद करेंगे, नहीं ऐसे हिट नहीं लगेगी, क्योंकि अंदाज़ा हो जाना चाहिए सुदैस को कि गेंद ज़बरदस्त तरीके से स्विंग हो रही है, घूम रही है। इस सूरत हाल में आपको इंतज़ार करना होता है। स्लिप में सिर्फ एक फील्डर है, तो आप ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद। इनकरेज मत करें बॉलर को। इसको ओवर कवर मारना चाहते थे, लेकिन काफ़ी बाहर था बॉल, और ये खतरनाक निगाहों से देखते हुए जहादात खान
ये एक एग्रेशन है फास्ट बॉलर्स के अंदर। हमने देखा है कि अमूमी तौर पर इनका मिजाज जारहाना होता है। ये एक मुस्तैद बैट्समैन का जेस्चर नहीं है, या जो एंटिसिपेशन है, उसे पंजाबी में कहते हैं कूरी वटना, स्टीयर करना और घूरना जिसे कहते हैं। ये फास्ट बॉलर ऐसा करते रहते हैं। पाकिस्तान के एक फास्ट बॉलर थे महमूद हुसैन, वो तो 52 में भी इंडिया पे गए, तो वो इस किस्म के बॉलर थे। यानी उनका कद भी 6 फुट से ऊपर था और पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ 27 टेस्ट मैच खेले और 30 साल की उम्र में रिटायर हो गए, लेकिन बाकमाल बॉलर थे। 52 और 54 का जो पाकिस्तानी टेस्ट मैच जीते थे उसमें उनका हिस्सा था। फाजिल के साथ इस गेंद को खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, गेंद बैट के ऊपर वाले किनारे को लग के गई थर्ड मैन की जानिब चौके के लिए। तो ये चौके का इशारा है। तो अगर हम जहादात एक दिलचस्प किरदार हैं। मैंने महमूद हुसैन का जिक्र किया कि वो बड़े दिलचस्प आदमी थे। उनको उर्फ आम किसी और नाम से ही पुकारा जाता था। जब वो गेंद करते तो उनके एक ख़ास एक मुंह से आवाज़ निकलती थी, तो हम उनको याद करते हैं। बड़े क्रिकेटर थे। ये देखिए जिस तरीके से ऑफ साइड पे खेलना चाहते थे। ये ताली बजाने की वजह समझ में नहीं आई, ये अपने आप के लिए बजा रहे हैं या बैटर के लिए। स्लिप में यहाँ खेलना चाहते थे। 2 ओवरों का खेल मुकम्मल हुआ। बहावलपुर 13 बगैर किसी नुकसान के। ये देख सकते हैं एक बार तो फिर काशिफ अली के हाथों में है गेंद और फील्ड को सेट कर रहे हैं। आप देखें कि मिड ऑफ मिड ऑन 30 यार्ड सर्कल के अंदर मौजूद है। काशिफ पितुली लाइन लेंथ के लिए मशहूर है। इम्तिहान है ये अकरम का। इस वक्त बार बार ऑन साइड पर देख रहे हैं फील्ड को। असाब की जंग इस वक्त जो है वो शुरू हो चुकी है। बहुत जबरदस्त इन स्विंगिंग डिलीवरी, अंदर की तरफ आती हुई गेंद ऑन साइड पर खेला, किसी भी किस्म के रन्स का इजाफा ना कर पाए। तो ये एक सोची समझा मंसूबा है रावलपिंडी का। माजी की तरफ देखें तो पिछले मैच में भी काशिफ ने दबाव बनाया था, डॉट बॉल्स में इजाफा किया था, और जो जहांदाद खान थे उन्होंने धज के हाथ दिए थे, उन्होंने विकेट्स हासिल की थी। क्योंकि ये दोनों बॉलर्स बड़ी ज़बरदस्त लाइन और लेंथ। ये देखिए अब ये जो ईगल जिसे कहते हैं या ये फायर बर्ड कहते हैं, इसको खेलना चाहते थे ऑन साइड पर। एलबीडब्ल्यू की अपील है, लेकिन नहीं, अंपायर पर इसका कोई असर नहीं। दिलचस्प क्रिकेट हो रही है। लेग बाय का 1 रन बना है, 13 रन बने हैं, 2 ओवर और 1 गेंद हो चुकी है। तो भावलपुर का आगाज को बेहतरीन नहीं है। जिस तरीके से ड्राइव्स और कट्स होती हैं ऐसा हुआ नहीं। मिडल ऑफ द बैट स्ट्रोक नहीं खेला गया। गेंद काफ़ी स्विंग ले रहा है, अंदर आती है गेंद, बाहर जाती है, हवा में लहराती है, और बैट्समैन के लिए मुश्किलात हो रही हैं। ये हैवी एटमॉस्फेयर है, और जो फास्ट बॉलिंग को देखने के शौकीन है उनके लिए ये बेहतरीन नज़ारा है। मैं सोचता हूँ कि जो जनरली स्विंग बॉलर्स थे पाकिस्तान के, वसीम, वकार, फजल, अगर वो यहाँ पे होते तो वो क्या करते 2-2 गज और स्विंग करते। सरफराज नवाज इसमें सर फहरिस्त हैं इन बॉलर्स में जिन्होंने स्विंग में रिवर्स को इन्वेंट किया। पाकिस्तान ने फास्ट बॉलिंग के शोबे में बड़े बड़े रक्षंदा सितारे पैदा किए हैं। खान मोहम्मद उनमें से एक हैं, और लंबी फहरिस्त है उन पेसर्स की। आकिब जावेद जो हैं वो बरकत के दरख्त है। ये दोनों फ़कार और वसीम पर वो इतना ऊपर नहीं आ सके जितना उनको ऊपर आना चाहिए था। मैं कल शाहिद नज़ीर को देख रहा था, बाकमाल बॉलर थे। आमिर नज़ीर बड़े अच्छे बॉलर थे, बड़े बड़े अच्छे बॉलर ऊपर आए, लेकिन वो ज़ाहिर है कि इन दोनों से जान नहीं छूटती थी, और वाकई ये बड़े बॉलर थे वसीम वकार।
इनका इन जैसा बॉलर को नहीं था, बेमिसाल थे। और इनको स्विंग में, एक्यूरेसी में, रफ्तार में अथॉरिटी हासिल थी। इस किस्म की गेंदें तो वो आम कर लिया करते थे और टेल को तो वो ठीक नहीं देते थे। और उनसे बड़े बड़े बैटर आजिज थे। मुझे याद है फिर अगर हम बात करें शुएब अख्तर की, जो इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, शुएब अख्तर ने हिट किया था वेस्ट इंडीज़ के ब्रायन लारा को, नीचे गिरा दिया था। मैंने इनकी बहुत तेज़ गेंदें देखी हुई हैं, बड़े शानदार इनके स्पेल्स देखे हुए हैं। लेकिन काश हम फजल महमूद को देख सकते, काश हम खान मोहम्मद को देखते, महमूद हुसैन को देखते। ये बड़े भी बहुत बॉलर थे। इब्तदाई दिनों में पाकिस्तान ने इन बॉलर्स की बदौलत बड़ी कामयाबियाँ हासिल की। इस गेंद को खेला है, नामुकम्मल स्ट्रोक था, लेकिन ऐसी जगह पर जाकर गिरा जहाँ पर फील्डर नहीं थे। तो क्रिकेट ज़रा क्वाइट हो रही है, इसलिए हम कुछ और बातें भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के क्रिकेट के जो मैग्नेट्स थे, जो स्टार्स थे, महमूद हुसैन का मैंने जिक्र किया, तो ये मजंग हाई स्कूल से खेलते थे। वहाँ पर खुर्शीद थे, वहाँ पर खालिद अबैदुल्ला थे, वकार हसन थे। ये चारों उस स्कूल के फिर 52 की टीम में इंडिया गए और लखनऊ टेस्ट में 15 का हिस्सा थे। इनमें से जो 3 थे वो तो 11 यानी फाइनल 11 का भी हिस्सा थे। तो लाहौर की बड़ी खिदमत है क्रिकेट के नुक्ता निगार से। इस गेंद को ऑन साइड पे टर्न कर दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेके जाने 1 रन के लिए। जब 52 में हमने कामयाबी हासिल की लखनऊ में, तो उसमें 11 में से 9 लड़के लाहौर के कॉलेज बॉयज़ थे। 16 रन्स बहावलपुर बगैर किसी नुकसान के 3 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में जो स्टैंड्स हैं वो अजीम क्रिकेटर्स के नाम से मंसूब हैं। कारदार, इम्तियाज़, नज़र मोहम्मद का कराची में भी स्टैंड है उनके नाम से। फिर जो मेन गेट है पीसीबी के सदर दफ्तर का, वो कार्निलियस नाम के साथ मंसूब है। और बड़े बड़े क्रिकेटर्स ज़हीर अब्बास, सरफराज नवाज़, इमरान खान, ये सब यहाँ पर उनके नामों से मुज़य्यन हैं वो स्टैंड, जहाँ पर शायकीन क्रिकेट बैठकर ये मैचेस देखते हैं। 16 बगैर किसी नुकसान के बहावलपुर बॉलिंग करने के लिए नबील आए। इस गेंद को अच्छे तरीके से कट किया है, ये बेहतर कट है, पहला पॉजिटिव स्ट्रोक है। 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगा। ये आगाज कुछ अच्छा नहीं रहा नबील का। पहला ही बॉल डाला और उसी को बाउंड्री के लिए खेल दिया अकरम ने। वाइड ऑफ द ऑफ स्टंप बॉल था, वसीम इन अकरम एनक्लोजर। ये देखिएगा बहुत ही शानदार स्ट्रोक, गैप मिल गया यहां पर। पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर को बाइसेक्ट किया 4 रन के लिए। 4 स्कोर के मदद के बाद स्कोर 20। ये जो हमारे कमेंटेटर हैं अली यूनुस, उनके बड़े भाई वकार यूनुस हैं, और सिंगल हैंडेडली इन्होंने पाकिस्तान को बड़े मैचेस जिताए। बाकमाल एक शाहकार बॉलर थे, लेजेंडरी थे। लेजेंड का लफ्ज़ जो है वो उनके लिए लगता है कि ये इख्तिरा उनके लिए है, वकार यूनुस के लिए। वनडे हो, वाइट बॉल क्रिकेट हो, या और ये अब्दुल कादर, ये मैजिकल राइट आर्म लेग स्पिन बॉलर अब्दुल कादर, इन्होंने भी पाकिस्तान की ज़बरदस्त खिदमत की। हॉल ऑफ फेम में इनका नाम शामिल है, वकार यूनुस का नाम भी हॉल ऑफ फेम में शामिल है। तो ये वो दरख्शंदा सितारे हैं जिनके वजूद से, जिनकी परफॉर्मेंस से हमारी क्रिकेट जो है वो सूरज बनकर चमक रही है। इनका नाम है नामी क्रिकेट की दुनिया में किसी तारुफ का मोहताज नहीं। इस गेंद को जोरदार तरीके से कट कर दिया है बड़े अच्छे तरीके से और एक और बाउंड्री हासिल की। अब लगता है कि रन बनना शुरू हुए हैं। ये काम पहले से शुरू हो जाना चाहिए था। अकरम ने बड़े अच्छे तरीके से अकराम ने इस गेंद को कट किया और चौका हासिल किया। एक ज़बरदस्त स्क्वायर कट थी। लेट खेले, बॉल को अपनी तरफ आने दिया, एक जबरदस्त स्क्वायर कट, और कोई मौका नहीं था फील्डर के पास कि इस बॉल को रोक सके या कोशिश भी कर सके। वो खड़े रहे और बॉल उनके पास से तेजी के साथ बाउंड्री के पार। बढ़ता हुआ स्कोर इस वक्त 24 पर जहां पहुंचा। हैदर अली इस वक्त
आए हैं थोड़ी सी एडवाइस देने। यंग क्रिकेटर हैं नबील, ज़रूरत है थोड़ी सी उनको बूस्ट अप करने की। पुल करने की कोशिश, टाइम नहीं कर पाया। ये जो साइडवेज जो मैंने सबक यहाँ पर गद्दाफी स्टेडियम में हासिल किया था फ्रॉम जेक वॉश और जूलियन मीनर, कि क्रिकेट इज़ अ साइडवेज गेम। आप फील्डिंग साइडवेज करते हैं, बॉलिंग साइडवेज करते हैं, बैटिंग भी साइडवेज है। व्हेन यू एवर, जब आप शॉर्ट गेंद देखें, जब ऑन साइड पे आप स्ट्रोक खेलते हैं, ये एज कारदार है। अब ये पाकिस्तान की क्रिकेट के फादर कहलाते हैं। इन्होंने वाफिक शहर काउंटी की तरफ से क्रिकेट खेली, हिंदुस्तान के लिए खेली, पाकिस्तान के कप्तान बने, पीसीबी के चेयरमैन रहे, सूबाई वजीर रहे, कैम्ब्रिज के ब्लू थे। तो इन्होंने हमारी क्रिकेट को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। 52 में ये कप्तान थे, 54 में ये कप्तान थे। इनकी कप्तानी में फजल महमूद ने 12-12 हर टीम के आउट किए और हर टीम के खिलाफ इन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़े। बड़े पढ़े लिखे थे और बावकार शख्सियत के हामिल थे। ये इनका गुज़िश्ता बरस सेंटेनरी ईयर था और इनकी सेंटेनरी सेलिब्रेशन बनाई गई। तो इनका हमारी क्रिकेट पे बड़ा एहसान है अब्दुल हफीज़ कारदार साहब का। इनके बेटे हैं शाहिद कारदार, वो बड़े शानदार इंसान हैं और एक कामयाब स्टेट बैंक के गवर्नर भी रहे। तो बहरहाल कारदार साहब के हम शुक्रगुजार हैं। इस गेंद को पुल करना चाहते थे बैट्समैन, कामयाब नहीं हुए। तो कारदार वाज सही मानों में इनको कहा जाता है ना कि हमारी क्रिकेट के ही वाज फादरली फिगर। मैंने उनको देखा हुआ, मैंने उनसे बातें की हुई हैं बड़ी नौमरी में। वो फालतू बात नहीं करते थे, वो बड़े रिजर्व थे, तमपन्नत थी, तकब्बुर नहीं था उनमें। बड़े आदमी थे, उनको हमें याद रखना चाहिए। उनके नाम से ट्रॉफ़ी भी होती है। तो बहरहाल अच्छी बातें हो रही हैं। इस दौरान 4 ओवरों का खेल मुकम्मल हुआ, बहावलपुर 27 बगैर किसी नुकसान के। इसके बाद अब किसकी बारी? सर ये मिडल है ना, मिडल सर, ये मिडल है ना। कल सुना वो आ रही है। थैंक यू। जी सर। कट करने की कोशिश और उसमें नाकामी। ये वाइड बॉल करार दे दी गई है। जहाँ तक अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन जोर लगाते हुए बाज गेंदें इनकी ज़रा कुछ ज़्यादा बाहर चली जाती हैं और इस बार भी ऐसे हुआ। अच्छा, ये बड़ा टाइट स्पेल है इनका, उन्होंने काफ़ी गेंदों को बीट भी किया। आखिरी बात कारदार साहब के बारे में इस गेंद के बाद मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए जिस तरीके से फ्लैश किया। हमारे मुल्क में जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट है उसका ये मौजूदा बोर्ड भी ज़ाहिर है उसने दाग बेल डाल दिया, हमने फाइनल भी किया। तो जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट है इसके ओरिजिनेटेड और इसके फाउंडर अब्दुल हफीज़ कारदार थे। ये भी उनका क्रिकेट पे एक एहसान है। लाहौर में जो क्रिकेट हाउस है ये उनका तामीर शुदा है। इस गेंद को ड्राइव करने की कोशिश और विकेट खो बैठे। तो इस तरह अकरम जा चुके हैं, आउट हो गए हैं और जहादात ने कहा कि आप खामोशी से बाहर चले जाएं। ज़ाहिर है कि ये एक खुशगवार उनका अंदाज था, लेकिन अच्छा वक्त नहीं था अकरम के लिए। वो अपनी विकेट खो बैठे हैं। 28 पर ये पहली विकेट गिरी है। जिसका जिक्र किया था हमने आपसे बहरहाल कि जहादात खान एक विकेट टेकर बॉलर हैं, जो इनके मिजाज में एक जारहानापन है। वो आपने देखा एक से ज़्यादा बाय इसे पिछले ओवर में। और ये फ्रंट फुट चेक कर रहे हैं अंपायर और यहाँ से थोड़ा क्लियर नहीं है, दूसरे एंगल से भी देखेंगे। सेटिस्फाइड हैं यहाँ इनसाइड एज और बॉल सीधा स्टम्प्स पे। पहली कामयाबी जहादात खान के नाम। मोहम्मद अकरम 14 रन बनाने के बाद पवेलियन की तरफ रवां दवा। आ जाओ लेफ्टी। अफजल लाए हैं बैटिंग करने के लिए। जो खूबी आजकल के क्रिकेटर्स में होनी चाहिए वो गेंद को बाउंड्री लाइन तक पहुंचाने के लिए। अम्मार हैं, बल्कि अम्मार बैटिंग करने के लिए आए हैं और दुबले पतले हैं, लेकिन ये भी बला के बैटर हैं, अच्छी हिट लगा सकते हैं।
और जहांदाद डोमिनेट कर रहे हैं प्रोसीडिंग को, उनका गेंद काफ़ी स्विंग हो रहा है, लाइन और लेंथ पर इनको कंट्रोल हासिल है। सुदेश दूसरे नॉट आउट बैटर हैं जो इस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं। जहांदाद के इनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। इस गेंद को ड्राइव के ऑफ साइड पर अच्छी ड्राइव है और गेंद जा रही है बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री की तरफ चौके के लिए। पहला ही चौका लगा दिया है। इट वाज कैलकुलेटेड, वेल बैलेंस एंड वेरी केयरफुली executed shot by Amar. या खूबसूरत ड्राइव, हल्का सा वो पिच डिलीवरी थी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बाई सेट किया मोहम्मद अमार ने। पहली बॉल थी और ऐसा लगा कि ये ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आए हैं। 4 रन का शानदार इजाफा, 32 पर पहुंच चुके भावलपुर। आगाज तो अच्छा है, देखना होगा कि किस तरीके से अब दूसरी गेंदों को खेलते हैं। ये थिक आउटसाइड एज लगा, पूरे तमाम स्ट्रोक था, गेंद थोड़ी सी टप्पा पड़ने के बाद बाहर निकली। जहांदाद जानते और समझते हैं ये जिस तरीके से आखिरी बैटर आउट हुए, इसको खेलने गए थे खड़े खड़े ऑफ साइड पर, अंदरूनी किनारा लगा, प्लेड इन हुआ और इस तरह ये बोल्ड हुआ। जहांदाद को कामयाबी हासिल हुई और जहांदाद ने अब एक जेस्चर दिया है कि आप बगैर कोई बात किए चले जाएं। बहरहाल सुदैस और अमार इस वक्त विकेट पर मौजूद हैं। जहांदाद इस ओवर में कामयाबी हासिल कर चुके हैं, तो बाय ऑल मीन ही इज नाउ अ सक्सेसफुल बॉलर। बाएं हाथ के फास्ट मीडियम बॉलर हैं, बीट हो गए। बेहतरीन गेंद, टप्पा पड़ने के बाद सीधी रही, चकमा दे गई सुदैश को। उनको ये उनके इल्म में नहीं था कि गेंद कहां से आई कहां से निकल गई, हैरान कर गई उन्हें। छेड़खानी करना चाहते थे, पीछे हुए कदम भी उखड़े उनके, लेकिन खुशकिस्मत रहे कि देखिएगा बहुत ही करीबी मामला था, कुछ सेंटीमीटर्स का गैप रह गया होगा बॉल और बैट का। हल्का सा भी निक लगता तो विकेटों के पीछे तैयार खड़े थे विकेट कीपर। बेहतरीन बॉलिंग जहांदाद की, पर चेंज ऑफ पेस, शॉट फाइन लेग पे खेला लेकिन किसी भी किस्म का रन्स का इजाफा नहीं होगा इस मरतबा। तो पिछले ओवर में आप गुफ्तगू सुन रहे थे कमेंटेटर राजा असद अली खान साहब की, और वो जो मालूमात आपसे शेयर कर रहे थे हमारे नाजरीन से, वो गौहर नायाब थी। सोने का मोल था उस गुफ्तगू का। अब्दुल हफीज कारदार, फजल महमूद, सरफराज, इमरान, जावेद, रमीज, जिनके जितने भी उन्होंने प्लेयर्स की बारे में उनकी गिरा कराम खिदमात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। पुल कर दिया इस मरतबा बड़े शानदार अंदाज में, एक छप्पा और गेंद बाउंड्री लाइन के पार 4 रन के लिए। अपने आप को बचाया भी लगता है अमार ने और स्ट्रोक भी खेल दिया। तो इस तरह इस चौके के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 37 एक विकेट के नुकसान पर, जबकि 5 ओवरों का खेल मुकम्मल हो चुका है। bowling round. 45 seconds, guys. और पहली गेंद पर चकार किया मुबस्सिर ने, हैरान रह गए मार्किन के साथ हुआ क्या है। अब ये एक ऐसे स्पिनर की गेंद जो कि बाएं हाथ से खेलने वाले बैटर को की गई थी, कोई आसान नहीं थी। अगर इसको हम देखें कि ये गेंद लीगल था या नहीं, बिल्कुल लीगल डिलीवरी है। और ये बेहतरीन ऑफ ब्रेक थी जो कि सीधी रही और सीधी स्टंप्स के ऊपर जाके लगी। तो इस तरह एक कीमती विकेट हासिल हो गई। इब्तिदा ही में मुबस्सिर को और शाहिद को वापस लौटना होगा, बल्कि अमार को
अम्मार आउट हो चुके हैं 5 रन बनाकर, बोल्ड आउट हुए बहावलपुर 37 2 विकेटों के नुकसान पर। अब नए बैटर आए हैं। हम जिक्र कर रहे थे अब से कुछ देर पहले ग्रेट वका यूनुस का, तो इस हवाले से अली यूनुस भी हमारे लिए मोहतरम है क्योंकि वो उनके बरादर असगर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी अपनी अलग एक हैसियत है, एक मुकाम है और एक शोबा है जिसमें उन्होंने महारत हासिल की है, वो है क्रिकेट कमेंट्री। काफ़ी मसरूफ़ रहते हैं और इनकी खूबसूरत आवाज़, शख्सियत को आप टीवी स्क्रीन पर देखते रहते हैं मुल्क और मुल्क से बाहर। इन्होंने कमेंट्री में ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम दी हैं। अपनी मिसाल आप हैं, इस गेंद को खेले ऑफ साइड पर और आते ही अपना खाता खोल लिया। 1 रन का इजाफा। ओवर थ्रो आम चीज़ हो चुकी है, बवजह भी और बगैर किसी वजह के भी। ये अब देखते हैं कि ज़ोरदार थ्रो करते रहते हैं। ये आखिरी विकेट जिससे किसी गिरी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे अली यूनुस साहब ने देखा कि स्टंप्स के ऊपर जाके लगी गेंद सीधी? जी हाँ, टर्न के लिए खेले लेकिन टर्न हुआ नहीं, गेंद सीधा रहा। और ये हमने अक्सर देखा है कि आप जब टर्न के लिए खेलने जाते हैं तो आपका फुटवर्क, आपकी बॉडी, आपकी जो टांगों और बल्लों के दरमियान जो गैप बनता है, इसकी वजह से बैटर आउट होते हैं। ये अच्छा शॉट है, हवा में खेलने, लेकिन फील्डर देखते रह जाएंगे क्योंकि बॉल गया है 6 रन के लिए। स्वदेश में वो दमखम है, इनमें वो तप्पड़ है कि ये मैच जीत सकते हैं अपनी टीम के लिए। 21 पर जा पहुंचे हैं क्योंकि ये जब तक मौजूद रहेंगे उम्मीदें बरकरार रहेंगी। एक बार फिर, लेकिन गैप नहीं तलाश कर पाए। हमने इनको बहुत बार देखा है मैच जितवाते हुए अपनी टीम को लोकल टूर्नामेंट्स में, इसलिए जब तक ये है उम्मीद है। देखिए एक बार फिर, खड़े रहिए, देखते रहिए, मजा लेते रहिए इस शॉट का। 6 रन जैसे आपने डिस्क्राइब किया कि ये मजा लेने वाला स्ट्रोक था, देखने वाले को तो ज़ाहिर है कि लुत्फ आया, लेकिन जिस तरीके से सुदैश ने खेला है, मेरे ख्याल में लुत्फ उनको भी बुरा आया होगा। देखिए खड़े खड़े क्लीन हिट है, लाजवाब। और T20 का जो मज़ा है उसका लुत्फ जो है वो दोबाला हो गया। बहुत बेहतरीन शॉट, 50 रन भी मुकम्मल हुए बहावलपुर के। और ये फ़र्क है असद भाई, जो इससे पहले बैटर आउट होके गए वो यही बॉल टर्न के लिए खेलने गए थे, क्योंकि सुदेश के पास स्किल अलहदा है, तजुर्बा अलहदा है, इसलिए इनको मालूम था कि ये गेंद अंदर की जानिब ही आएगा, जिसको विद द एंगल उन्होंने मिड विकेट की जानिब खेला है। अगर यही शॉट वो खेलते ऑन साइड की जानिब तो फर्क होता। ये फर्क है सुदेश में, जो मैं बात कर रहा था कि इनके अंदर वो तप्पड़ है। गेम ज्यादातर सीधा ही रहेगा, वाइड का इशारा है एम्पायर की जानिब से। एक विकेट हासिल की थी पहले बॉल पे, लेकिन उसके बाद 14 रन दे दिए वो बसर ने। देखिए एक बार फिर उनको मालूम है कि गेंद टर्न होगा नहीं, इसलिए वो ऑन साइड की तरफ ही देख रहे हैं शॉट खेलते हुए। ये एक अच्छे बैटर की निशानी है। 6 ओवर गए, 51 पे 2। सर मलिक सर मलिक सर पीछे कौन जाएगा? मलिक तू। ये सिग्नल है कि 6 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ और ये पावर प्ले दोनों बैटर्स ने बहुत पुरअतमाद तरीके से आगाज किया था। काफ़ी शानदार शॉट देखने को मिले, लेकिन विकेट जहादात को मिली। स्वदेश दूसरी जाने बहुत ही शानदार फॉर्म में लग रहे हैं, अच्छा मिडल कर रहे हैं, अच्छी स्ट्रोक खेल रहे हैं।
ये आखिरी आउट होने वाले प्लेयर थे, लेकिन उसके बाद फौरन 2 छक्के लगाए स्वदेश ने, लंबे छक्के ऑन साइड पे खेल के 12 रन हासिल किए थे 2 बॉलों पे। काफ़ी गहमा गहमी है जो सूरत हाल है। 6 ओवर में 51, 2 विकेट के नुकसान पे कोई इतनी ख़राब नहीं है, लेकिन जो हाई स्टैंडर्ड है बहावलपुर की क्रिकेट के, इनको अब तक 60 रन बनाने चाहिए थे कम ओवर्स में। 6 ओवर में 52, 2 विकेटों के नुकसान पर कोई मायूस कारकर्दगी नहीं है जब 182 रन बनाने हों। नबील बॉलिंग कर रहे हैं और ये हैं सुदैस काफ़ी स्मार्ट क्रिकेटर हैं। इन्होंने एक जो छक्का लगाया जिसको डिस्क्राइब किया अली यूनुस ने, वो जो बड़े और अच्छे छक्के आज लगे उनमें से एक था। जो बाएं हाथ से खेलने वाले बैटर हैं, इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑन साइड और मिड विकेट होता है। बैट के करीब, जिस्म को बैट के करीब रखते हैं। ऑफ साइड पे भी तगड़े हैं। नबील 11 रन दे चुके हैं। अपील हो रही है। काफी गौर से देखा, इसको अज्यूम किया कि ये गेंद कहाँ जाती, और बिलाखिर फिर अब सुदैस को जाना होगा। और मेरे ख्याल में गुलाम अली इज नॉट हैप्पी। 3 डाउन फॉर 52, सुदैस गॉन। जहाँ थोड़ा वक्त लिया अंपायर ने आउट देने के लिए, क्योंकि जो चीज़ उनको देखनी थी कि बॉल पिच कहाँ हुआ है, क्या ये पिच लेग स्टंप के बाहर हुआ है, यही देखने वाला था। यहाँ से और भी कुछ देखना बात पड़ेगी कि क्या ये बॉल लीगल है या नहीं है, क्योंकि इस एंगल से तो लग रहा है असद भाई कि बॉल जो उनका जो पहला इम्पैक्ट है वो लाइन पे है, और लाइन जो है वो अंपायर की है, उनकी मलकियत है। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, नो बॉल। तो इस तरह अब ये फ्री हिट होगी। अब हम देख रहे हैं कि गुलाम अली जो है, उनका मजाज जो है वो गर्म है, और वो अच्छी बात है कि इज ए टॉप प्रोफेशनल क्रिकेटर। ही हैज़ बीन प्लेड फॉर पीआई एंड फॉर पाकिस्तान इन 90s। तो इन्होंने बड़ी मेहनत की है, और बहावलपुर की टीम एक तगड़ी टीम है। सुदैस मौजूद हैं। अब फ्री हिट के का जो लैटिट्यूड है, जो उसका लुत्फ है, उससे लुत्फानंदोज होंगे। ये कहीं भी गेंद को हिट आउट कर सकते हैं। इनका जो बैट है वो रन उगल रहा है, मिडल अच्छा कर रहे हैं। नबील पर प्रेशर होगा, और अब इनको ज़ाहिर है कि गलती नहीं करनी होगी, लेकिन नबील ने अच्छी गेंदें की हैं दरमियान में। पुल कमज़ोर है, 1 रन का इजाफा। जहाँ ये बहुत बड़ा मौका मिला है सुदेश को। एलबीडब्ल्यू की अपील जिसे अंपायर ने आउट दिया था, जरा देखते हैं कि पिच कहाँ हुआ बॉल। अच्छा, ये ऑन लेग स्टंप था, और लेग स्टंप को ही हिट करता है। ये वक्त बहुत लिया था उन्होंने, सिर्फ शायद यही चीज देख रहे थे कि गेंद पिच कहाँ हुआ है। लेकिन अच्छा फैसला किया एंड पे मोहम्मद अरशद, जो कि ऑन फील्ड अंपायर हैं। मौका मिला सुदेश को, भावलपुर को। जैसा मैंने पहले जिक्र किया, ये खड़े रहेंगे तो इनके पास मौका है ये मैच जीतने का। स्किटी है, स्किटी बॉल पढ़ के भागता है। इसी वजह से जो पहला बॉल भी पिछला बीट हुए तो इनकी स्पेस की वजह से हुए थे। एक अच्छी बात यह है कि इस विकेट के ऊपर बाउंस बड़ा अच्छा है, ब्यूटीफुल हाइट पर गेंद आती है, और बैटर्स के लिए मुश्किलात पैदा करती है। ये वैसे खुशाइन बात है, लेकिन अगर बैटर अपने आप को अप्लाई करें तो इनके लिए यहाँ पर मौके मौजूद हैं रन करने के। 182 रन पहले बना चुकी है। ज़ाहिर है कि रावलपिंडी की टीम बहावलपुर अब स्ट्रगल करती हुई 54 पर 2 बैटर आउट हुए हैं, बीट हो गए। यहाँ पर तलाशी करते रह गए उमैर इस गेंद को, और नबील ने बड़ी महारत से, बड़ी चापक दस्ती से इस गेंद को घुमाया, और उमैर बाल बच गए। आपस में बातचीत हो रही है, क्या बताएंगे, वो खुद इस किस्म का शिकार हो चुके हैं। सुदैस मुतादिद गेंदें जो हैं वो उनके बैट के करीब से होती हुई पीछे गई, फिर वो एक सर्वाइव कर गए। एक एलबीडब्ल्यू का जो उनका एक डिसीजन जो पॉजिटिव आया था। जहाँ शायद बात यही होगी कि आप ज़्यादा कोशिश मत कीजिए, खड़े रहिए। कोशिश करते हैं एक पार्टनरशिप बिल्ड करने की। सिंगल लीजिए, स्ट्राइक सुदेश को दीजिए, यही प्लान होना चाहिए। जहाँ यही शायद बात भी हुई थी और यही एग्जीक्यूट भी हुआ, और यही सही तरीका भी है, क्योंकि जब एक बैटर आपका 23 बॉलों पे 28 रन पर मौजूद है,
और ये इनके बारे में तो क्या ही कहें, एबीएस डेवलपर्स पहला शरिया कॉम्प्लायंट रियल एस्टेट कंपनी है ये एबीएस डेवलपर्स। इनका बेहद शुक्रिया असद भाई, क्योंकि बहुत अहम है स्पॉन्सरशिप डोमेस्टिक क्रिकेट में। बिल्कुल, क्रिकेट की और स्पॉन्सरशिप की सरहदें मिलती हैं और ये एबीएस से जा मिली हैं। खुशबख्ती है डोमेस्टिक क्रिकेट की कि एबीएस जैसे नामी ग्रामी इदारे का इनको ताउन हासिल है। गेंद पैड पर लगी लेकिन लेग स्टंप से बाहर जा रही थी। तो एवरी डे इज़ नॉट संडे। अंपायर कतई तौर पर मुतासिर नहीं थे। तो हम जो बात कर रहे हैं दौरान गुफ्तगू, हम दौरान ये ब्रॉडकास्ट हम कुछ तासुरात भी आपको सुनवाते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ताहिर सरवर साहब से बात करें, जो बहावलपुर तारिक सरवर साहब, ये नामी ग्रामी शख्सियत हैं, गवर्निंग बोर्ड के मेंबर भी हैं। इनका ताल्लुक बहावलपुर से और बहावलपुर क्रिकेट एसोसिएशन के ये सरबराह हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे। जनाब अस्सलाम वालेकुम तारिक सरवर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। आपकी तो टीम का एक पस मंज़र है और जो इसका पस मंज़र है वो पाकिस्तान में कम टीमों का होगा। आप तो टेस्ट मैच का इनकाद करा चुके हैं बहावलपुर में, पहली कायज़म ट्रॉफी भी जीत चुके हैं और फिर आपका ड्रिंक स्टेडियम जो है एक उसकी एक पस मंज़र है। ज़रा बताइए कि आप अपनी टीम के बारे में कि इसके क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं और आपको क्या नज़र आ रहा है आगे क्वालिफाई करने के हवाले से। देखिए हमारी टीम तमाम तर नौजवान बच्चों पर मुश्तमिल है। मेजॉरिटी बच्चे हमारे ग्रास रूट से आ रहे हैं, जो अंडर 13, अंडर 19 और उसके बाद फिर आगे हमारी सीनियर टीम में आए। तो इसमें हमारा ज़्यादातर फोकस जो है वो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम पे है। तो हम उन्हीं प्लेयर्स पे फोकस कर रहे हैं जो बच्चे ग्रास रूट से आ रहे हैं। तो अम्मार है, जुनैद है, शाहिद मिरानी है, मोहम्मद इमरान रंधावा हैं और सुदैस हैं। ये सारे वो बच्चे हैं जो हमारे रीजन से एज ग्रुप से आ रहे हैं। तो यही बच्चे हम इनको प्रमोट कर रहे हैं, इन्हीं को आगे लेके चल रहे हैं। अब माशाल्लाह इसी तरह हमारे नीचे जो हमारी एज ग्रुप की टीम्स हैं वहाँ पे बच्चे बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी मोहम्मद हुज़ैफ़ा पाकिस्तान खेल के आए और एशिया कप की जो विनिंग टीम है उसका भी हिस्सा थे, उनका ताल्लुक भी बहावलपुर रीजन से है। तो इस तरह हम ग्रास रूट लेवल पे काम करते हुए हमारे जो कोच हैं गुलाम अली भाई, वो इंतहाई मेहनत से सारा साल बच्चों के साथ अटैच रहते हुए काम करते हैं, जिसकी वजह से हम हर मौके पे हर जगह पे बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। गो के हम थोड़ा सा पीछे ज़रूर हैं, हमें टाइम ज़रूर लगेगा आगे बढ़ने में, लेकिन बहावलपुर की तारीख को इंशाल्लाह ताला हम कामयाब करते हुए इंशाल्लाह इसको बहुत आगे लेकर जाएंगे। जी हाँ, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया है प्लेयर डेवलपमेंट को लेके तारिक साहब। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का भी हिस्सा हैं, आपकी मीटिंग्स में भी आप जाते रहते हैं, तो क्या कोई फैसिलिटेशन के बारे में कभी बात हुई कि जैसे बावलपुर में कई अंडर लाइट्स वाला स्टेडियम नहीं है या और फैसिलिटीज़ जो इन लड़कों को लाहौर या कराची ना जाना पड़े, भावलपुर में ही क्लब क्रिकेट अच्छे तरीके से खेली जाए? जी, मैं आपको बिल्कुल एक बात वाज़ेह क्लियर कर दूं कि हम लोग जिस तरह प्लेयर डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, इसी तरह हम इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। इस वक्त शायद आपके इल्म में ना हो, मगर सादिकाबाद का एक क्रिकेट ग्राउंड है जहाँ पर लाइट्स लगी हुई हैं। इसी तरह लियाकतपुर का एक ग्राउंड है जहाँ पर मुकम्मल लाइट्स लगी हुई हैं और अब ड्रिंक स्टेडियम भावलपुर में लाइट्स की तनसीब मुकम्मल हो चुकी है। इंशाल्लाह आने वाले 1 से 2 महीनों में हम लोग वहाँ पर नाइट क्रिकेट खेल रहे होंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी इस्लामिया यूनिवर्सिटी से आलमोस्ट बातचीत मुकम्मल हो गई है। उनका कोई 50 एकड़ के ऊपर मुश्तमिल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है जो हम 20 साल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको ले रहा है, जहाँ पर हम लोग पूरा पवेलियन बने हुए हैं। हम उनको आगे रेनोवेट करेंगे, पीछे और एकेडमी का पूरा सेटअप हमारा साउथ पंजाब की वो एक बेस्ट एकेडमी होगी जो आने वाले चंद दिनों में इंशाल्लाह ताला उसका हमारा MOU और एक एग्रीमेंट 20 साल का इस्लामिया यूनिवर्सिटी के साथ साइन हो जाएगा। और इसके लिए तमाम तर मेहनत जो है वो चेयरमैन साहब की है, उन्होंने अप्रोच किया, उन्होंने बात की, फिर उसके बाद हमारे डायरेक्टर डोमेस्टिक अब्दुल्ला खुरम भाई इंतहाई मेहनत से इन्होंने उस काम को मुकम्मल करने के लिए दिन रात एक किया हुआ। और इसी तरह मैं वहाँ पर रहते हुए एक भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। हमारा वो एक एग्रीमेंट ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका हुआ है जी जी, वो आने वाले 2 से 3 दिन में साइन हो जाएगा और वो ग्राउंड 20 साल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और भावलपुर रीजन को हैंडओवर हो जाएगी, जहाँ पर हमारी एकेडमीज़ होंगी, सारी क्रिकेट होगी। तो इंशाल्लाह आप आने वाले 1 साल में देखेंगे कि सारी क्रिकेट हमारे पास। और मैं आपको बताता चलूँ, पिछले साल अंडर 15 का टूर्नामेंट हमारे पास हुआ, हमारे 3 सेंटर्स पर हुआ, रहीम यार खान, सादकाबाद और भावलपुर, और उसका फाइनल भी ड्रिंक स्टेडियम भावलपुर में खेला गया था जी। अच्छा जी तारिक साहब,
अभी जो अली यूनुस ने बात की वो बड़ी बजा थी कि आपको मैं समझता हूँ जो विजन है और मिशन है चेयरमैन साहब का कि एक्सपेंड किया जाए पीएसएल को और मैचेस बहावलपुर में हो और वहाँ पर जैसे टेस्ट मैच हो चुका है और फिर वहाँ पर आपकी टीम को तो रिप्रेजेंट कर चुके हैं फजल हनीफ खान मोहम्मद और बड़े इनाम कराम भी दिए गए, तो एक प्रिंसेस स्टेट तो है। तो ज़रा आखिर में ये बताइए कि ये जो आपके नौजवान हैं डू दे नो समथिंग अबाउट द बैकग्राउंड रिच बैकग्राउंड ऑफ द स्टेट, जो एक प्रिंसेस स्टेट थी बहावलपुर और अब एक ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का जुज़ यनफक है। ये शहर जो है बड़ा रिच है क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरे ख्याल में इधर क्रिकेट अब ज़्यादा सरगर्मी से होनी चाहिए। बड़ी खूबसूरत ग्राउंड है ड्रिंक स्टेडियम की जो हमने देख रखी है। जी, मैं आपको क्रिकेट के बारे में बता दूं कि इस वक्त आप ये देखें कि लास्ट ईयर कैरम ट्रॉफी में सारे के सारे प्लेयर्स हम अपने अपने खिलाए थे। इस साल भी हमारे जो लास्ट एंड फाइनल राउंड्स आए तो हमारे जो गेस्ट प्लेयर थे वो चले गए हुए थे, सिर्फ एक गेस्ट प्लेयर हमें दस्तयाब थे। हम उनके साथ खेल रहे थे, अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे। इमरान रंधावा इस वक्त पाकिस्तान के टॉप ऑलराउंडर हैं। मोहम्मद अम्मार आप देख लें कि 1000 के करीब रन्स उन्होंने लास्ट ईयर भी किए, इस साल भी वो कर चुके हैं। और जहाँ तक बात है बच्चों के बारे में तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हम इससे बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे आने वाले सालों। तारिक सरवर साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कराकतरा ख्यालात से हमारे जो नाज़रीन हैं उनको आगाह किया। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। जी थैंक यू थैंक यू। ये थे जनाब तारिक सरवर साहब, ये प्रेसिडेंट हैं बहावलपुर क्रिकेट एसोसिएशन के और इसके अलावा ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गवर्निंग बॉडी के भी मेंबर हैं। तो सूरत हाल 72 पर 2 अली यूनुस तसल्ली बख्श है। यहाँ से एक उठा लेना होगी उमर और सुदैस को, तेज़ी से रन बनाने होंगे और ये जो एक टारगेट नज़र आ रहा है 182 का, इसको हासिल करने के लिए रन रेट पर तवज्जो देना होगी पर ओवर। जी हाँ बिल्कुल, अभी काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है बहावलपुर को। 8 विकेट हाथ में है, ये अच्छी बात है और सुदेश को एक मौका मिल चुका है, ये उससे भी अच्छी बात है। तो ऐसे ही अगर लड़ाई जारी रखेंगे तो पहुंच सकते हैं अपने हदफ पे। अच्छा लगा तारिक साहब से बात करके, उन्होंने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया कि क्या बेहतर होने जा रहा है भावलपुर की क्रिकेट को। सादकाबाद हो, रहीम यार खान हो, इन सारे इलाकों में बहुत टैलेंट है, सिर्फ उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, सही तरीके से अपॉर्चुनिटीज देनी है। जैसे यहाँ पे सुदेश कोई अपॉर्चुनिटी दे नहीं रहे हैं फील्डिंग साइड को, क्योंकि ग्राउंड के चारों जानिब स्ट्रोक्स खेलते हुए एक और चौका हासिल किया उन्होंने, 38 पे जा पहुंचे। अब इसको कहते हैं कि स्पेस बनाना या गुंजाइश पैदा करना क्रिकेट के अंदर इसका, और T20 क्रिकेट में बड़ा तमाम होता है, इसकी ज़रूरत बड़ी है। और आपने देख लिया कि ये नीयत थी, इंटेंशंस थी, क्लियर थी और वाजे थी। जिस तरीके से गेंद को उस जगह पर खेला जहाँ पर फील्डर कोई मौजूद था, या आम बैटर इसको सीधा भी खेल सकते थे, लेकिन अब ये सुदैस को बार बार करना होगा। इससे फिर बैट्समैन जो है, जो बॉलर है, इसकी लाइन और लेंथ जो है उसमें फ़र्क पड़ता है, खलल पड़ता है। इस बार ये गेंद खेलना चाहते थे लॉन्ग लेग की जानिब, जहाँ पर करीब में कोई फील्डर नहीं था। शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद गई, गेंद को फील्ड किया गया। अच्छी बात यह है अली यूनुस के यहाँ पर फैमिलीज आई हुई हैं और ये तासुर देना होगा, इस कल्चर को प्रमोट करना होगा कि ये एक बेहतरीन जगह है फॉर नाइट क्रिकेट एंड नाइट एंटरटेनमेंट। इट्स अ पिकनिक स्पॉट, क्वालिटी पिकनिक स्पॉट। 9 ओवरों के बाद बहावलपुर 78 2 विकेटों के नुकसान पर। ऑन साइड पे काफ़ी अच्छा खेलते हैं सुदेश। इससे पहले हमने देखा कि 2 छक्के लगाए थे वो बासिर को, लेकिन यहाँ पे तब्दीली की गई है। बाएं हाथ से गेंद करने वाले मेहरान मुमताज़ बहुत ही समझदार, चालाक, चतुर बॉलर है ये। टप्पर दिखाना होगा राय साहब।
बॉलर का चलाक होना बड़ा ज़रूरी है। बस बड़े अय्यार क्रिकेटर होते हैं, वो ऐसी चाल चलते हैं, कप्तान बड़े अय्यार होते हैं। बस ये खेल ऐसा है, इसमें आपको हर बार इस्तेमाल करना आता है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए बड़ा फ्रेंडली एनवायरनमेंट है क्रिकेट के अंदर। एक तरफ शायद मोबाइल पर भी मैच देखा जा रहा है। ऑफ साइड पर ड्राइव और दूसरा लेने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हुआ। बैटर सुदेश उमर 15 पर, सुदेश 40 पर। ये अच्छी रफाकत है। इसमें अगर तेज़ी से मज़ीद रन बनते हैं तो फिर बहावलपुर के लिए इस मैच को जीतने में कोई आसानी हो सकेगी। लेकिन तारीफ़ करना होगी रावलपिंडी के बॉलर्स की, उन्होंने अभी थोड़ी बॉलिंग की है, लूज बॉलिंग नहीं की। और शुरू में तो दबा कर रखा बहावलपुर के टॉप ऑर्डर्स को। 9 ओवर 4 गेंदें हुई हैं और यहाँ पर अब अगर हम देखें 62 गेंदों में 100 रन, ये कोई जुए शेर लाने के मुतरादिफ नहीं है, कोई नामुमकिन काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल तरीन काम नहीं, मुश्किल तो है। अच्छी ड्राइव है ऑफ साइड पर, डीप कवर की जानिब 4 रन हो जाएंगे। ओह, सुदेश इज द मैन फॉर द जॉब। इनको हिट लगानी आती है, इम्प्रोवाइज करना आता है और ये एक बेहतरीन स्ट्रोक था। या खराब गेंद बिल्कुल ही मुंह में कर दिया, और इस जगह पड़े हुए गेंद को तो सोते में भी चौका मारेंगे। ये इतने टैलेंटेड हैं, ये नहीं मिस आउट करेंगे। 44 रन पर जा पहुंचे। एक और रन का इजाफा होगा। 10 ओवर्स का खेल मुकम्मल। 87 रन 2 विकेट गवाकर, और अंपायर ने फैसला किया कि चलिए सब पानी पीते हैं, थोड़ा ब्रेक लेते हैं। और ये फॉल ऑफ विकेट्स इनसाइड एज लगा था जहादात खान की बॉल पर, और ये स्विंग के लिए खेलने गए थे लेकिन बॉल सीधा रहा और फिर स्टंप्स में। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खैर मकदम करते हैं तमाम नाजरीन का। मैच बसिलसिला ABS डेवलपर नेशनल T20 क्वालिफायर 2025 और 26। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 10 ओवर का खेल गुजर चुका है। भावलपुर 87 पर बल्लेबाजी करता हुआ 2 विकेट्स गंवाने के बाद
सुदेश आज अच्छे फॉर्म में हैं, टैलेंट है इनके पास मौजूद, रन्स का ताकुब कर रहे हैं। सूरत हाल की हसासियत है, बाखूबी आगाह होंगे इससे उमैर और सुदेश दोनों। जहादात खान को वापस बुलाया गया। ये तीसरा ओवर है जहादात खान का। फील्ड आप देख सकते हैं, डीप पॉइंट पर एक फील्डर मौजूद, मिड ऑफ वो सर्कल के अंदर ही है, शॉट कवर पर एक फील्डर दिखाई दे रहा है। फुल डिलीवरी, अच्छा आगाज 11वें ओवर का। सुदेश को आखिर तक जवाबमर्दी से मुकाबला करना होगा तमाम मुश्किलात का, फिर ही जाके ये जो हिंसा है 182 का, इसको अचीव करने में कामयाबी मिलेगी भावलपुर को। यहाँ इसी चीज़ को समझते हुए हैदर अली अपने सबसे बेहतरीन बॉलर को वापस लेके आए कि आइए ये पार्टनरशिप तोड़ के दीजिए, क्योंकि ये पार्टनरशिप जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, क्योंकि अभी भी 50 रन ये पार्टनरशिप हो चुकी है, और ये जितनी देर रहेगी ये पार्टनरशिप उतनी देर भावलपुर जो है वो गेम में रहेगा। अच्छी बॉलिंग है, एरिया अच्छा है, लेंथ अच्छी है, मुश्किलात में डालती है ये लेंथ जो है वो बैटर की। ये देखिएगा एक्यूरेसी लाजवाब है जहादात खान की, और ये एक मुस्बत सोच है हैदर अली की कि जब मुखालिफ सिमत में एक बेहतरीन बल्लेबाज है तो उसका तकाजा ये है कि अपने भी बेहतरीन हथियार जहादात, काशिफ जैसे बेहतरीन हथियारों को मैदान में उतारा जाए। ऑन साइड पर पुल कर दिया, दूसरा स्कोर के लिए निकल पड़े बड़ी, लेकिन थ्रो अगर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जाती तो शायद एक खतरा खड़ा हो गया था यहाँ पर सुदेश के लिए। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, लेकिन शायद अगर थोड़ा सा जो विकेट कीपर है वो भी थोड़ा अगर स्मार्टनेस दिखाते और अपने ग्लव जो है वो जल्दी उतार लेते तो वो थ्रो करने में भी आसानी रहती। यहाँ पे इनको तो श्योर था कि दूसरे रन के लिए वापस आना है, स्लिप भी हुए और वो तो श्योर थे। यहाँ पे अगर ग्लव उतर जाता और थ्रो डायरेक्ट करने की कोशिश करते, थोड़ा तेज थ्रो करते तो उमैर को मुश्किलात में डाल सकते थे। बहुत बार हम कहते हैं ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत बड़ा फर्क डाल सकती हैं। हवा में गेंद फील्डर तक नहीं पहुंचेगी, सिर्फ एक ही रन बनेगा। जी हाँ, बड़े मुकाबले में जो जीत का मार्जिन होता है वो भी काफ़ी थोड़ा होता है, कलील होता है, तो इस तरह के 1 रन 2 रन बचाकर जो जीत है उसे यकीनी बनाया जा सकता है। बहरहाल इस वक्त सुदेश और उमैर दोनों जवाबमर्दी के साथ मुश्किलात से बाखूबी लड़ते हुए, जहादात खान विकेट अगर ना भी लें, अगर यहाँ पे रन्स बचाएं, 6-7 रन्स भी दें, तो भी एक दबाव तो होगा भावलपुर के ऊपर। एज लगा है यहाँ पर, थर्ड मैन मौजूद, अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा किया यहाँ पर। एक वक्त में ऐसा लगा था कि बॉल फंबल होके शायद बाउंड्री लाइन की तरफ ना बढ़ जाए, लेकिन संभल गए और बॉल को रोक लिया। दबाव बनाते हुए जहादात तलाश में है कि एक ब्रेक थ्रू उन्हें मिले और वो फिर से धकेल सके पीछे। जी यहाँ पे अगर थोड़ी समझदारी दिखाएं ये दोनों, उमैर और सुदेश, और इनके ओवर को जाने दें बगैर किसी रिस्क लिए, चौका लग जाए या छक्का बॉल मिल जाए तो एक खुशाइन बात है, लेकिन अगर नहीं मिल पाता है तो नाजायज़ ये ज़बरदस्ती जिसे बोलते हैं वो ज़बरदस्ती हिट मारे नहीं जाए, इनको ओवर निकल जाने दीजिए। बाकी बॉलर्स मिलेंगे आपको रन्स करने के लिए, क्योंकि ये उनको मालूम होना चाहिए कि हैदर अली इनको लाए ही इसलिए हैं कि पार्टनरशिप को तोड़ा जाए। जख्मी कर बैठे हैं अपने आप को जांदाद, थोड़ा मौका भी मिला है हैदर अली के साथ थोड़ी गुफ्तगू कर सके। यही बार बार कह रहे होंगे कि पार्टनरशिप तोड़ के दीजिए किसी तरीके से, अगर मैच में बने रहना है तो।
ये पार्टनरशिप चलती रहेगी तो मुश्किलात होगी। दोनों टीमों को इस वक्त एक मंसूबे के तहत चलना होगा कि वक्त ऐसा है कि गलती की गुंजाइश इस वक्त ये कह सकते हैं कि सिफर के बराबर। मिस टाइम किया है, हवा में गेंद, फील्डर वहां तक ना पहुंच सके। जहादात खान खुद भाग के पकड़ने की कैच कोशिश की, लेकिन जाहिर बात है काफी दूर था गेंद उनसे। और अब इसी के साथ 11 ओवर के बाद भावलपुर 92 पर 2। और अब चलते हैं मैदान में जहां पर मीर अफजी शान मौजूद हैं, और आइए उनके पास कौन से देखते हैं कि गेस्ट हैं। दिस इज़ ABS डेवलपर्स T20 क्वालिफायर्स और मेरे साथ आफाक रहीम मौजूद हैं, हेड कोच रावलपिंडी। इनसे बात करते हैं। आफाक, देखिए हर मैच जीतना ऑलमोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मार्जिन बहुत कम है, लेकिन अगर हम आज के मैच की बात करते हैं, आपने एक अच्छा टोटल सेट किया बट उसको डिफेंड करना अगेन इट्स अ टफ जॉब। कितना एतमाद है टीम के ऊपर? ओवरऑल तो हमारी बॉलिंग अच्छी है। देखते हैं अब अभी इस टाइम तो मैच बराबर जा रहा है, लेकिन यह एक उम्मीद है हमारे बॉलर अच्छी बॉलिंग करेंगे तो इंशाल्लाह ये मैच जीत सकते हैं। कोई खास प्लान था आपका कि यहाँ पर, क्योंकि टॉस जीत कर जैसे बैटिंग का डिसीजन लिया, फिर उसके बाद कुछ ऐसा प्लान था कि यहाँ पर आकर हम लोगों ने जो है वो कुछ चेंज करना है, कुछ प्लान करके जो है वो लेकर चलना है मैच? हमारा प्लान तो ये था 170 प्लस रन करेंगे, क्योंकि जिस तरह की पिचेज है नया बॉल थोड़ा तंग करता है, लेकिन उसके बाद जो है रन बनते हैं, तो उस वाले से हमने एक अच्छा टारगेट सेट कर लिया, तो उम्मीद है कि हम उसको डिफेंड कर लेंगे। बिल्कुल सही है। विद दैट ओवर टू द कॉम बॉक्स। जी हाँ, बातों ही बातों में एक विकेट गवा बैठे हैं, और बड़ी विकेट। सुदेश देखना होगा। जी हाँ, यहाँ पे कोई मसला नहीं है, इसलिए चलते जाना होगा। सुदेश को जो प्लान जिसकी बात आफाक रहीम कर रहे थे वो काम आते हुए कि उनको भरोसा है अपने बॉलर्स पे कि वो आउट कर लेंगे और ये रन्स नहीं होने देंगे। अच्छी इनिंग खेले, 48 रन की, और लंबी हो सकती थी। नासिर ने कैच किया, मेहरान थे बॉलर 92 पर 3। तो चलिए इंटरव्यू का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां से मुनक़ता हुआ था, बल्कि नहीं करते हैं, क्रिकेट पे ही रहते हैं। क्योंकि मैच इतना इंटरेस्टिंग स्टेज पे आ गया है। 92 रन पर तीसरी विकेट गवा दी है। अली अफजल अब नए आने वाले बैटर है, देखते हैं अब ये कहाँ तक लेके जा सकते हैं अपनी टीम को इस रन चेस में। यहाँ मजबूत असाब यहाँ पर दिखाने होंगे अफजल को, कि सूरत हाल अच्छी नहीं है। और पहली बॉल पर बोल्ड होने से बाल बाल बचे, इनसाइड एज लगा था और एक ठप्पा खाने के बाद लॉन्ग लेग की तरफ बॉल गया, एक स्कोर हासिल किया। सुदेश अच्छा खेल रहे थे और लेकिन विकेट गवा बैठे। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, हवा में बॉल और एक और विकेट। क्या देख रहे हैं नाज़रीन, हमने पहले सुदेश और अब उमैर मेहरान अपनी टीम की उम्मीदों पर इस वक्त पूरा खरे उतरते हुए, और दोनों सेट बैट्समैन को एक ही ओवर में पवेलियन की राह दिखा दी मेहरान ने। यार उनसे उम्मीद भी यही की जा रही थी कि वो आके अपनी टीम को ब्रेक थ्रू दिलाएंगे, लेकिन एक नहीं 2-2 विकेट हासिल कर लिए हैं। मेहरान मुमताज़ ये बहुत ही स्मार्ट बॉलर हैं, अपनी लेंथ को वेरी करते हैं, पेस को वेरी करते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा आहिस्ता गेंद किया, लालच में आए मिड विकेट की जानिब। अच्छा कैच वहाँ पे पकड़ा गया कादिर की जानिब से। 18 रन बनाए उमैर ने 93 पर 4। इमरान रंधावा कप्तान इस वक्त मैदान में उतरते हुए, उनकी टीम इस वक्त भंवर में फंसी हुई है, और मेहरान का ये ओवर तबाहकुन साबित होता हुआ भावलपुर के लिए। एक के बाद दूसरी कामयाबी। इमरान जाहिर है कि दबाव फील कर रहे होंगे, अफजल वो भी प्रेशर में होंगे, मोराल इस वक्त काफी हाई होगा।
मेहरान का। जी हाँ, और शायद कोच अफाक रहीम का भी, जब लास्ट टाइम हमने उनसे बात की थी तो उनका मोराल और अलग होगा, और अब जब हम उनसे बात करेंगे तो वो अलग होगा, क्योंकि तब से लेके अभी तक 2 विकेट्स दोनों सेट बैटर्स वापस जा चुके हैं। शायद यहाँ पे तीसरा भी हो सकता था। तो यही सवाल मेरा ख्याल है मीरब का बनता है कि तब के आफाक रहीम में और अब के आफाक रहीम में कितना फ़र्क है। तो चलते हैं मीरब की जानिब। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अली आपने। मैं भी वही सोच रही थी कि यहाँ पर तो एक अलग रिकॉर्ड बन गया है। वाइल द कोच वाज टॉकिंग तो 2 विकेट्स डाउन हो गई। अभी के आफाक में और इससे पहले के आफाक में फ़र्क तो था, क्या फ़र्क था? कोई इतना उस तरह तो फ़र्क नहीं है। पहले एज ए क्रिकेटर खेलते थे, अब एज ए कोच हैं, तो इट्स अ गुड जॉब एज ए नहीं, वो तो मतलब आपकी पर्सनल जर्नी हो ही गई, बट अभी जब कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे तो तब सिचुएशन मैच की और थी, हाँ, अभी मैच की एकदम और 2 है। विकेटें गिरने से ज़ाहिर है चेंज हो गया। इंशाल्लाह अब 93 for 4 हो गए, तो अब मेरा ख्याल है थोड़ी सी ग्रिप हमारी मैच पे मजबूत हो गई है। अब देखते हैं इंशाल्लाह। मेरा तो ख्याल है कि हम अभी डिस्कशन करते ही रहते हैं थ्रू आउट द मैच। हमारी बात करते करते शायद जो है वो हाँ, जारी रखें तो 1-2 और आउट हो जाए तो मैच और अच्छा हो जाएगा। चले जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसी के साथ मैं चाहूँगी कि एक कमेंट आप ये भी ज़रूर दें कि जिस तरह से टीम एफर्ट कर रही है, अभी मेहरान की मतलब बॉलिंग चल रही है और बॉलिंग चल रही थी, बड़ा अच्छा उन्होंने मतलब एकदम से स्टार्ट किया है, कैसा देखते हैं? हाँ, मेहरान एक अच्छा बॉलर है और उसने अभी 2 ओवर किए हैं, बहुत अच्छे किए हैं। एक आध और विकेट अगर यहाँ पे हमें मिल जाती है तो हमारी मैच पे बहुत ग्रिप अच्छी हो जाएगी। चलें जी, विश यू रियली ऑल द बेस्ट। लेकिन Thank इसी you के जी। साथ अगर हम रावलपिंडी की स्पेसिफिकली बात करते हैं, कितना इम्पॉर्टेंट है जीतना, और मतलब हमने पहले भी जीतते हुए देखा है इन्हें, और अभी ये तो क्वालिफाइंग राउंड है, तो अगेन हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कि नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए जो है वो मैच अपनी ओवरऑल grip हमारी टीम continue तो अच्छी रखें। टीम है, लेकिन पहला मैच हम फाटा से अनलकीली हार गए हैं, लेकिन अभी भी चांस है अगर हम सारे मैच जीते हैं और एक आध मैच में फाटा हल्का खेले तो हम इंशाल्लाह क्वालिफाई कर सकते हैं। चलें, अगेन विश यू ऑल द बेस्ट। विद दैट ओवर टू द कॉम बॉक्स। थैंक जी हाँ, मसाइल तो है अगले राउंड में जाने के लिए, क्योंकि बाकी रिजल्ट्स पे अब दारोमदार होगा। अभी चाहेंगे कि एक अपसेट हो, फाटा को किसी टीम से शिकस्त हो, तभी इनका वो चांस बनेगा, क्योंकि एक ही टीम ने आगे जाना है और फाटा से इनको शिकस्त हो चुकी है। फाटा ने आज बहुत शानदार मैच जीता है। एक और चांस हो सकता है। अच्छी थ्रो चाहिए थी, जोरदार थ्रो चाहिए थी। इमरान रंधावा भी अच्छे ऑलराउंड क्रिकेटर हैं, इन पे भी बैंक करेगा भावलपुर के, ये इनको आगे तक लेके जाएं। 100 रन मुकम्मल हो गए 4 विकेट्स के बाकी। देखिए थोड़ा सा अगर जोरदार थ्रो होती तो मुश्किलात में हो सकते थे इमरान रंधावा। यहाँ पे अगर इमरान रंधावा आउट होते हैं तो फिर बहुत मुश्किलात हो जाएंगी, ये कहना होगा। इससे पहले सुदेश पे उम्मीदें थी, अब इमरान पे हैं। देखिए बॉल सीधा रहा है, टर्न के लिए खेलने गए हैं, और ये पहली बार नहीं है कि बैटर जो है वो टर्न के लिए खेलने गए और बीट हुए। अच्छी शॉट इस मरतबा इमरान रंधावा की, इन गैप को ढूंढने से कासी रही। जो टर्न की आपने बात की इससे पहले, जाहिर है क्योंकि अब ड्यू का फैक्टर भी मौजूद है और गीला बॉल हमने देखा है कि इतना ज़्यादा स्पिन नहीं मिलता बॉलर्स को कि जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं, तो शायद इसी बाइस बैटर जो है वो टर्न के लिए खेल रहा है, लेकिन बॉल ज़्यादा स्ट्रेट रह रहा है। ये अच्छी ड्राइव है, लेकिन एक मरतबा फिर एक ही रन मिलेगा। जो प्लान हमने इससे पहले देखा, दबाव बनाया जहांदाद खान ने और विकेट हासिल की आते ही मेहरान ने, तो ये प्लान काफी हद तक इसमें कामयाबी मिली है रावलपिंडी को। क्या ऑप्शंस हैं उनके पास, विकेट टेकन बॉलर्स हैं। हवा में गेंद ज्यादा दूर नहीं गया है बॉल, फील्डर आ रहे हैं नीचे जिन्होंने कोई गलती नहीं की है। जहांदाद से आप यही तवक्को रखेंगे, ये ऐसे कैच तो वो नहीं छोड़ने वाले हैं। और इमरान रंधावा जिनसे बहुत उम्मीदें थी भावलपुर को, उनको अब वापस जाना होगा। कोई मसला नहीं है फ्रंट फुट का, मसला इस एंड पे है। यहाँ पे हिट मारने गए थे लेकिन ज़्यादा दूर नहीं, ज़्यादा कुवत नहीं लगा सके इस शॉट में, और अब वापस जाएंगे इमरान रंधावा 8 रन बनाकर 102 पे 5। आपके महंगी है आले भाई की शूज से भाई बोल देना प्लीज।
शाहिद मीरानी नया आने वाले बैटर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे खड़े होंगे क्योंकि आखिरी बॉल पर विकेट गिर गई थी इमरान रंधावा की। पहले जहांदाद, फिर मेहरान और अब मुबस्सिर खान। एक और बॉल कर दिया पहली ही बॉल पर। इस वक्त टॉप गियर लगा चुकी है रावलपिंडी की टीम, यके बाद दीगर कामयाबियां हासिल करती हुई। पहले सुदेश, फिर इमरान और अब आते ही अगले ओवर की पहली ही बॉल पर शानदार डिलीवरी। जी हां, बेहतरीन डिलीवरी। जब पढ़ने के बाद सीधा रहा एक और बैटर जो टर्न खेलने गया और ये बॉल आर्मर था और बहुत तेजी से किया हुआ बॉल था ये। मेहरान ने इनको बोल्ड किया है। अली फजल 2 रन बनाए 102 पे 6। मोहम्मद जुनैद नए आने वाले बैटर। इस वक्त विकेट्स गिरने का जो तसलसल है वो जारी है। बहुत थोड़े टाइम में हमने देखा कि 4 बैटर आउट होकर पवेलियन लौट गए। मेहरान की तबाहकुन बॉलिंग जारी। खाता खोला आते ही पहली बॉल पर पिछले ओवर में 2 विकेट्स हासिल की। मुबस्सिर खान आए, उन्होंने 1 विकेट हासिल की और अब फिर मेहरान को मौका दिया गया और आते ही एक और धचका दिया उन्होंने भावलपुर को। एक और बोल्ड, वन मोर। मेहरान इस वक्त छा चुके हैं ग्रादान के अंदर। बहुत ही तबाहकुन बॉलिंग, बहुत शानदार बॉलिंग। जब आप स्टंप्स के अंदर बॉल करते हैं, स्टंप्स को हिट करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे बैटर चूका नहीं और वो बोल्ड हुआ नहीं, और ऐसा ही कहीं मेहरान कर रहे हैं, विद इन द स्टंप्स बॉल कर रहे हैं। ये तो सीधा बॉल लाइन ही मिस कर गए। शाहिद मीरानी पहले ही बॉल पे बोल्ड हुए 103 पे 7। मोहम्मद अजब 9वें नंबर पर आए हैं बैटिंग करने के लिए। इनसे कुछ ज़्यादा तवक्कुआत तो नहीं होंगी, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कुछ परफॉर्म कर पाए अपनी टीम के लिए। नशेबो फराज की अगर बात करें तो क्रिकेट का हुस्न है। एक और बोल्ड, 5 विकेट मेहरान के नाम। यार ये तो हैट्रिक हो गई इस ओवर में, तीसरी विकेट। ऐसा लगा जैसे 3 बॉलों पे 3, क्योंकि एक्शन इतनी जल्दी हो रहा है, विकेट्स हर बॉल पे ही विकेट्स गिर रहे हैं। 5 विकेट हासिल कर लिए और सारे वे बॉल जो हैं वो विद इन द स्टंप्स किए हैं, सीधे बॉल मिस करते चले गए हैं। क्या शानदार बॉलिंग है। तीसरी विकेट इस ओवर की, तीनों बोल्ड। अजब को वापस जाना हुआ 103 पे 8। 2.5 ओवर पहले अली हम बात कर रहे थे कि मुकाबला 50-50 पर है, कोई भी टीम यहाँ से मैदान मार सकती है, और आप तजिया दे रहे थे कि जहादात खान को आराम से खेले तो भावलपुर के लिए भी बहुत ओवर हैं। लेकिन आपने शेबो फराज का अंदाज़ा लगाएं कि 2.5 ओवर में कहाँ से कहाँ हो गया, क्या से क्या हो गया। कुल मिलाकर बात करें तो 6 विकेट्स गिर गई हैं 2.5 ओवर में। यही तो हुस्न है T20 क्रिकेट का कि 16 बॉलों में 6 विकेट्स गंवाई हैं भावलपुर ने, जिसमें से 5 विकेट्स तो मेहरान मुमताज के नाम रही हैं। कैसे काया पलटी है, बहुत ही लम्हा फिक्रिया होगा ये भावलपुर के लिए। चलिए बाकी बात बाद में करेंगे, अभी जो नजरें हैं
वो इस बॉल पे रखते हैं क्योंकि ये बॉल है हैट्रिक बॉल और वो है मेहरान मुमताज के लिए। अली शबीर फेस करेंगे, छोड़ के बॉल कर दिया। क्या ये भी बॉल वैसा ही करते, तेज स्टंप्स की तरफ जिस पे उनको पहले कामयाबी मिली है, तो शायद कुछ मुश्किलात डाल सकते थे। 5 विकेट्स 12 रन देके तीसरे ओवर में है अभी मेहरान। सिर्फ 1 रन दिया, 3 विकेट्स हासिल किए इस ओवर में। 14 ओवर्स के बाद 103 पे 8 भावलपुर। आखिरी ओवर है मुबस्सिर खान का। ऑन साइड पर खेल दिया, बड़ा ही जेंटल टच। मेहरान की 5 विकेटें और ये किसी भी बॉलर का T20 फॉर्मेट में ये ख्वाब से कम नहीं होता। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, देखते हैं क्या होगा नतीजा। नतीजा ये कि बॉल गया आउट ऑफ द पार्क। शब्बीर की एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक, बॉल हवा से बातें करती हुई बाउंड्री लाइन के पार 6 रन के लिए। लेंथ को बहुत अच्छे से परखा, पीछे बॉल पड़ा हुआ था जिससे हवा में खेले, बॉल गया काफी दूर बाउंड्री से 6 रन के लिए। लेंथ को बहुत जल्दी पकड़ लिया था। A proud sponsor, the University of Lahore. काफ़ी ज़्यादा हमें स्पॉन्सरशिप देखने को मिली है और एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है कि डोमेस्टिक लेवल के क्वालिफायर राउंड में लातादाद स्पॉन्सर्स ने पार्टिसिपेट किया है। क्रिकेट में स्पॉन्सरशिप का एक बड़ा मुस्बत किरदार होता है। आई थिंक बॉल को तलाश किया जा रहा है ग्राउंड स्टाफ की जानिब से। तमाशाई महसूस होते हुए T20 फॉर्मेट का जो एक्शन है, सेल्फीज, नौजवान तबका रात के इस पहर गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में ABS 12 पर नेशनल T20 क्वालिफायर राउंड के मैच से लुत्फ उठाता हुआ। और जी हाँ, बॉल डी शेप हो गया और अब फोर्थ अंपायर जो रिजर्व अंपायर है कामरान खलील, इस वक्त आप देख सकते हैं कि ऑन फील्ड हैं। अंपायर चेक करेंगे, मिलता जुलता बॉल जो भी होगा, अब बकिया खेल उसे स्टार्ट किया जाएगा। मुबस्सिर खान ने 2 विकेट्स हासिल किए लेकिन काफ़ी लेंथ शॉट कर दी, इसको उठा के बाहर मारा शब्बीर ने 6 रन के लिए। अंपायर बखूबी जानते हैं कि कौन सा बॉल किस मौके पर लगाना है। और फैमिलीज बहुत खुश होते हुए आज दोनों डिपार्टमेंट्स में मुबस्सिर खान ने बेहतर परफॉर्म किया। बैटिंग में, बॉलिंग में रन्स ज़्यादा जरूर दिए हैं, थोड़े ज़्यादा रन्स ज़रूर दे दिए हैं। लेकिन बात करें विकेट्स की तो विकेट पे पजीराई मिलती है। ये अच्छी लेंथ थी, यॉर्कर बॉल किया मुबस्सिर ने, इसको स्ट्रेट ड्राइव करने की कोशिश की थी शब्बीर ने। 110 पर 8 भावलपुर। कदमों का इस्तेमाल, पलक झपकने से भी तेज
विकेट कीपर ने बेल रिमूव कर दिए हैं और यहाँ पे एक रेफर किया गया है डिसीजन थर्ड अंपायर की तारीफ। कॉन्फिडेंट है विकेट कीपर और लग रहा है कि मुबस्सिर खान ने अपना तीसरा शिकार भी कर लिया यहाँ पर। निगाहें टीवी अंपायर्स की जानिब, ये देखिएगा बेहतरीन, कोई मसला नहीं और मुबस्सिर इसके लिए जाने भी नहीं चाहते कि नो बॉल ज्यादा करते हो। कदमों का इस्तेमाल किया, स्टेप आउट किया, बॉल की लाइन को पूरी तरह से मिस करके बैटर, विकेट कीपर ने बड़े ही चाबुक दस्ती से पलक झपक के इसी रफ्तार से बेल्स रिमूव किए और अब मामलात जो हैं वो शफाफ हो चुके हैं। जा रहा होगा शब्बीर को पवेलियन की तरफ और ये आउट। 110 रन पर 90 विकेट का नुकसान उठाया भावलपुर ने। रावलपिंडी के लिए जीत बहुत जरूरी थी और जीत एक मार्जिन के साथ हासिल करनी चाहिए थी क्योंकि फाटा से मैच लूज कर गए थे। फाटा ने भी अच्छे मार्जिन से अपने मैच को जीता और इस वक्त रावलपिंडी भी बड़े कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री की तरफ गामजन है। मेहरान मुबस्सिर की तबाहकुन बॉलिंग, इसी की मरहून मिन्नत है कि आप देख सकते हैं कि 110 पर 9 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके। अब खेल वाजिया है। क्या शानदार परफॉर्मेंस है मुबस्सिर की, ऑलराउंड परफॉर्मेंस। एक और विकेट और मैच का हुआ इख्तिताम। चौथी विकेट यहां पे मुबस्सिर के नाम रही। 110 रन पर ही ढेर हो गई भावलपुर की टीम। शानदार परफॉर्मेंस तीनों शोबों में रावलपिंडी की जानिब से। या एक और बैट्समैन पहली ही बॉल पर फ्रंट फुट चेक किया जाएगा मुबस्सिर खान का। फेयर डिलीवरी, कोई मसला मसाइल नहीं, आम डिलीवरी थी, इनसाइड एज, बैकफुट पर जाके खेलना चाहते थे और ये मुस्कुराहट जो जीत की मुस्कुराहट है। मुबस्सिर खान जानते हैं कि आज उन्होंने अपनी टीम को एक अहम कामयाबी से नवाजा है। उनकी टीम के लिए उनकी जो परफॉर्मेंस है, मेहरान हो या मुबस्सिर खान हो, वो काबिल सताइश है। इनके ऊपर ज़राई आज खूब मिलेगी इन दोनों को। मैच काफ़ी बड़े मार्जिन से अपने नाम कर लिया है रावलपिंडी ने। क्रिकेट का ये हुस्न है जो हमने मुलाहिजा फरमाया कि T20 फॉर्मेट एक्शन से भरपूर होता है। पहले हम देख रहे थे कभी रावलपिंडी आगे होती थी, कभी भावलपुर आगे होती थी, लेकिन फिर एक स्पेल आया, तबाहकुन स्पेल मुबस्सिर खान का और मेहरान का, जिसमें पूरी की पूरी इनिंग्स जो है वो सिमट के रह गई। उस वक्त 6 कैंड्स जारी हैं। रावलपिंडी की टीम बहुत खुश होगी। 71 रन से रावलपिंडी ने इस मैच को अपने नाम किया, तो विक्ट्री मार्जिन बहुत बड़ा है इस मैच का। ज़रूरी थी ये विक्ट्री रावलपिंडी के लिए। उनका मोराल डाउन था, पहला मैच उन्होंने लूज़ किया था, लेकिन आज खुशी से फूले नहीं समारे होंगे और आज बड़ा दिन था मुबस्सिर खान के लिए और मेहरान के लिए। 4 आउट किए मुबस्सिर खान ने और 5 विकेट हासिल की मेहरान ने। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर। आज दोनों मैचेस जो हैं वो एक तरफा रहे। हमने देखा कि फाटा ने भी बड़े ह्यूज मार्जिन से कामयाबी हासिल की और अब रावलपिंडी ने भी। मैच हाइलाइट्स, अंपायर दाखिल हुए, खिलाड़ी दाखिल हुए, बड़ी अच्छी शॉट्स देखने को मिले ये बाइसेक्ट के दोनों फील्डर को और ये पहली विकेट जहांदाद खान ने हासिल की। बीच में बड़े अच्छे शॉट लगे, अच्छी ड्राइव थी, ये बड़ा जबरदस्त पुल। विकेटों का तसलसल भी जारी रहा, रन्स भी आते रहे और ऐसा लग रहा था कि एक बड़ा कामयाब मैच देखने को मिलेगा। ये भी एक और अच्छी शॉट, लेकिन यहाँ से विकेटों का तसलसल शुरू हुआ। मेहरान आए, उन्होंने आउट किया सुदेश को। ये एक और विकेट मेहरान के नाम और फिर विकेट्स का गिरने का जो तसलसल था वो थम ना सका। जो एक तबाहकुन स्पेल था वो जारी रहा और ये देखिए एक और बोल्ड, सीधा सीधा बॉल किया मुबस्सिर खान ने राइट एरियाज में और चारों शाने चित। ये शुक्र बजा लाए मेहरान। ये एक बड़ा शॉट जरूर खेला शब्बीर ने आते ही, ये कदमों का इस्तेमाल, ये स्टंप किया और आखिर में इनिंग्स सिमट के रह गई 71 रन से।
रावलपिंडी ने मैदान मार लिया। एक नजर बैटिंग कार्ड की तरफ। सुदेश बहुत अच्छा खेल रहे थे आज, 38 गेंदों पर 48 रन बनाए। उमैर ने बनाए 18 रन, अकरम ने बनाए 14 रन, और उसके बाद आप देख सकते हैं एक लंबी फहरिस्त है क्योंकि डबल फिगर्स में भी ना दाखिल हो पाए। 110 रन पर ऑल आउट हो गई भावलपुर रीजन। बॉलिंग कार्ड, जहादाद खान 3 ओवर्स किए, 22 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया। मुबस्सिर खान तबाहकुन रहे, 3.5 ओवर्स में 4 विकेट्स हासिल किए, रन थोड़े ज्यादा दे दिए। उसके बाद मेहरान 3 ओवर किए, आउट क्लास कर दिया ऑपोजिशन को। 3 ओवर्स में 5 खिलाड़ी अपने नाम किए। विकेटों का तसलसल आप देख सकते हैं कि 102 के बाद किस तरह एक एक करके विकेटें गिरती रही भावलपुर रीजन की। मैच हाइलाइट्स। रावलपिंडी रीजन ने मुबस्सिर खान ने बनाए 45 रन, हैदर ने बनाए 43 रन, यासिर खान ने बनाए 27 रन। बॉलर की तरफ निगाहें डालें, जुनेद ने जो 2 विकेट्स हासिल की, आजाब ने 1 और उमैर ने भी 1 खिलाड़ी को आउट किया। भावलपुर रीजन की तरफ से सुदेश ने 48, उमैर ने 18, अकरम ने 14। और बॉलिंग में अगर देखें, मेहरान 3 ओवर 5 विकेटें, मुबस्सिर खान 4 खिलाड़ियों को आउट किया और जहादाद खान ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। रावलपिंडी won by 71 runs. A comprehensive victory for Rawalpindi region. एक छोटा सा वक्फा कहीं मत जाइएगा और छोटे से वक्फे के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए अली यूनुस आपके सामने हाजिर होंगे।
Yes, complete dominance by Rawalpindi region as they beat Bahawalpur by 71 runs in match number 8 of ABS Developers National T20 qualifiers. Such a fantastic performance by the Rawalpindi region. Congratulations to Haider Ali and his boys for the show. Welcome to the post-match presentation, and in the presentation party, I have the pleasure of having the Senior General Manager of Pakistan Domestic Cricket, Mr. Junaid Zia with me. First of all, let's talk to the player of the match for his fantastic performance. He's just given away 12 runs and taken 5 wickets, Mehran Mumtaz. And Junaid Zia will hand him over a check of 25,000 to Mehran Mumtaz, who's very eager to call upon his teammate, Mubassir Khan. He wants to share the award with Mubassir Khan. 4 wickets, 40 runs, brilliant, both of them. फैंटास्टिक एक टीम ऐसे ही पता चलता है जब आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को बैक करते हैं। अनन, सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि इतनी अच्छी स्टेज पे मैंने 5 आउट किए, और जहाँ तक इसकी बात रही, इसने अल्हम्दुलिल्लाह बैटिंग में भी रन किए हैं और बॉलिंग में भी हमें 4 आउट करके दिए हैं, तो ओबियसली इसका भी बनता है। जब आप बॉलिंग करने आए थे तो मैच काफ़ी इवन स्टीवन था, लेकिन 2 से 3 ओवर में मैच बदल दिया आपने। विद इन स्टंप्स बॉलिंग कर रहे थे, क्या यही प्लान था? देखें, जब लेफ्टी खेल रहा था तो लास्ट मैच में भी मेरी इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं हुई अगेंस्ट लेफ्टी, लेकिन जब 8 ओवर के बाद मैं आया, मैंने यही सोचा कि मैं वो बॉलर हूँ जो मैं मैच चेंज कर सकता हूँ, तो वैसे ही रहा अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा हैदर भाई के साथ प्लान करके, इसके साथ प्लान करके बॉलिंग की, तो वो सक्सेस मिली। आपकी टीम को जब हम देखते हैं, इतने शानदार प्लेयर हैं, तो वो जो पहला मैच आ रहे हैं उसकी वजह से अगर आगे ना जा सके तो उसका अफसोस तो रहेगा, मुझे शायद ज़्यादा होगा। जी बिल्कुल, हमें भी बहुत ज़्यादा है कि हम ग्रेड 2 खेल रहे हैं, और ऑब्वियसली हमारी टीम में सारे ही बहुत अच्छे प्लेयर हैं, नीचे से लेके ऊपर तक सारे अच्छे प्लेयर हैं, तो कोशिश करेंगे जो नेक्स्ट 2 मैचेस है वो अच्छे मार्जिन से जीतें, अच्छी जगह पे फिनिश करें। चलिए आपके साथी से बात करते हैं। काफ़ी अर्से बाद आपको इस जगह पे देख रहे हैं, फाइनली आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आना शुरू हो गई। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बड़े अरसे बाद। बस उसके बाद मेहनत करता रहा और अपनी प्रैक्टिस जारी करता है, तो अल्लाह ताला ने सिला दिया। आपको दोनों शोबों में प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आप बैटिंग में भी शानदार परफॉर्मेंस देते हैं, बॉलिंग में भी, तो कैसे मैनेज करते हैं? बस जिस तरह बैटिंग करता हूँ उतनी बॉलिंग भी करता हूँ, तो दोनों चीज़ें एक जैसी रखता हूँ, तो कामयाबी मिलती है। Congratulations both of you, very well done. These are the 2 players of the match for today's game, Mehran Mumtaz and Mubassir Khan. Now it's time to talk to the losing captain first, Imran Randhawa for Bahawalpur region. डिसअपॉइंटेड होंगे क्योंकि एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि रन चेज अच्छा खासा जा रहा है, लेकिन 2 से 3 ओवर्स में मैच हार गए। जी बिल्कुल, ऐसे ही लग रहा था। 90 रन पे 2 आउट थे, तो ऐसे लग रहा था कि मैच में हम तो वो मेहरान था बहुत आउटस्टैंडिंग स्पेल कर गए, तो इसलिए थोड़ा सा। देखिए, कुछ हमने जब उनको देखा बॉलिंग करते हो तो सिर्फ विद इन द स्टंप्स बॉल कर रहे थे वो, लेकिन आपके बैटर्स ऐसा लग रहा था कि लाइन भी कवर नहीं कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल, अब अभी पहला सीज़न है उनका, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट मैचेस में अच्छा करेंगे। चलिए, ज़्यादा जज नहीं करेंगे हम, आपको अगले मैचेस में देखेंगे अगर इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी आपकी इस परफॉर्मेंस में। जी इंशाल्लाह। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर रिमेनिंग गेम्स। इमरान रंधावा, द कैप्टन ऑफ Bahawalpur region. Now time to talk to the winning captain for Rawalpindi region, Haider Ali. The smile says it all. एक satisfaction होगी as a captain इस performance से। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये पूरा क्रेडिट टीम को जाता है। उन्होंने बैटिंग बहुत अच्छी की है, उसके बाद बॉलिंग अच्छी की है, ये सारा क्रेडिट टीम की बॉयज़ को जाता है। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे हाफ वे थ्रू 10 ओवर्स तक जब बैटिंग अच्छी जा रही थी कि 3-4 ओवर में मैच खत्म हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन बॉयज़ को ये था कि हमें अपनी जितनी भी बॉलर उस पर कॉन्फिडेंस था, तो कोशिश यही थी कि हमने बॉलिंग मोमेंटम को थोड़ा सा कैरी ऑन करना है और थोड़े से हमने उन पर प्रेशर डालना है, तो हमें वो रिज़ल्ट मिलेगा। तो सेम ऐसे हुआ है कि जहाँ से ब्रेक थ्रू मेहरान ने दिलवाया, उधर से हमारा पूरा मोमेंटम चेंज हो गया था। इधर आपके हाथ में तो यही है कि अपने आने वाले मैचेस अच्छे मार्जिन से जीतें, और बाकी रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा आगे जाना आपका। जी, हम तो अपनी पूरी कोशिश करेंगे, जो भी नेक्स्ट मैच है उसमें कोशिश करेंगे कि हम मैच जीतें और अच्छे मार्जिन से जीतें, लेकिन ये पार्ट ऑफ गेम है, वो डिपेंड करता है उस सिचुएशन पे और कंडीशन पे। चलिए, बहुत मुबारक हो आज के मैच के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर रिमेनिंग गेम्स। दैट वाज Haider Ali, the winning captain for Rawalpindi region, and that sums up the post-match presentation. The action will come again tomorrow, same time. There are 2 fantastic games lined up, so see you then. Until then, take care and goodbye.